Hello and welcome to Taiwan Excellence Gaming Cup 2021 8th edition. 8th year in a row Taiwan Excellence Gaming Cup आपके लिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा dominating games लेके आया है. And this year around we have 3 interesting games जहाँ पे of course हमने कल भी देखा Valorant की games followed by COD and then we also have Rainbow Six Siege जहाँ पे 3,770 teams participated लेकिन उसके अंदर से of course सिर्फ ये 12 टीमें कल निकल के आई थी जो क्वार्टर फाइनल्स के अंदर पार्टिसिपेट करी थी एंड आज वहीं पे हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे बिकॉज दे आर रनिंग फॉर अ प्राइस पूल. यहाँ पे प्राइस पूल रहेगा 10 लाख रुपए, 4 लाख for CODM as well as Valorant individually and 2 lakh रहेगा for R6 and alongside all of that of course once again sadly we are online. Yes, TEGC पहले LAN हुआ करता था लेकिन because of the pandemic we are stuck to being online but hopefully next year if things go well we will definitely be seeing you in one of those perfect looking stages. But alongside all of that it is going to be all thanks to these wonderful brands that हमेशा हर साल हिस्सा लेती हैं यहाँ पे and हर साल dominating hardwares लेके आती हैं सिर्फ आपके लिए. आप इनविन की बात करें, ट्रांसेंड की बात करें, I mean the list just goes on and on and on for all of these wonderful brands. But उसी के साथ साथ of course I'm going to be your host Blora. Let's get the show started off and it is going to be none other than Aisa joining today along with Say to take us through the grand finals. How are you guys doing today? Yeah, I'm doing super awesome, but I just have to say कि आपको mention ही करना था TEGC का LAN क्योंकि I missed those. Yaar, I missed my opportunity to go to the last TEGC LAN Taiwan Excellence का जो LAN हुआ था और उसके बाद से जब मैंने decide किया कि चलिए अभी event miss नहीं करना है तब से online चल रहा है but still it has been exciting. It has been very exciting. जैसे हमारे tournaments होते रहते हैं and Valorant is so far looking very interesting. Yeah, definitely. कल के मैचेस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे एंड आज ऑफ कोर्स ग्रैंड फाइनल्स बेस्ट ऑफ 5 और भी मजा आएगा. Absolutely. BO5 यहाँ पे of course शुरू होने वाला है Valorant के अंदर and for that we have two incredible teams that have moved on forth into the grand finals itself. कल का काफी dominating play देखा गया था हमें from these teams but in the end of course it was a BO3 that resulted in well being won by both the teams with a 2-0 scorecard. But आज का जो journey रहेगा BO5 का it is definitely going to be that much more exhilarating. उसके साथ में अगर हम प्राइस पूल की बात करें जैसे हमने पहले टच किया था for Valorant we're looking at 4 lakh rupees on the line. वहाँ पे first prize को मिलेगा guaranteed 2 lakh and alongside that we do know one of these teams today of the two is definitely walking away with 1 lakh in the bank. Yeah, आज बंटवारा हो जाएगा पूरा. आज अच्छे से बंटवारा हो जाएगा कि किसको मिलेंगे 2 लाख और कौन यहाँ से वापस लौटेगा सिर्फ 1 लाख के साथ. But let's not forget, prize money के साथ साथ our wonderful sponsors have been kind enough to make these players even more happy क्योंकि goodies भी वहाँ पे included है. So it's going to be very exciting to see कि किसको क्या मिलने वाला है at the end. True, definitely true. उसी के साथ में हम जब teams की बात करें तो let's move on through to the brackets and of course find out जो कल का हमारा let's recap actually जो कल का हमारा दिन था वहाँ पे हमने starting के अंदर देखा था upper bracket के अंदर of course it was True Ripper Esports going up against God Particles जहाँ पे वो वाला गेम हम पहले ही देख चुके थे and the result had been well True Rippers moved on fourth. उसी के साथ साथ as we moved on through Enigma Gaming went up against Team EXO and EXO वहाँ पे आगे निकल के आती हुई. So upper bracket का हमें finally जो result था that was True Ripper against Team EXO जो कल हमने देखा जहाँ पे Team EXO 2-0 जैसा हमने बताया से clear आगे move on fourth करी but now they are going to be going up against Enigma Gaming and well BO5 what do you guys anticipate? I mean a close call 3-2 का scoreline हम सब expect कर रहे हैं. CA is going to agree with me when I say this. This is the matchup everyone was waiting to watch since the start. Yeah, definitely. I think दोनों टीम्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन. कल इंटरव्यू में भी बात हुई थी दोनों प्लेयर से यही इरादा था दोनों का कि you know we both consider कि this is going to be very close and we talked about it. It's that big IGL big star matchup Sai versus Antidote. Very exciting. Big brain plays. Yeah. Talk about big brain. I mean, ये भी कल हमने interview में बात करी थी से with of course the team as well that YB is also being part of that coach lineup basically, right? And that definitely is going to boost up the morale of the players. And उसके साथ में अगर हम history की बात करें, so we do know YB काफी ज़्यादा impact लेके आते हैं and from the previous tournaments as well that we've seen him, he is definitely going to be an X factor for the team. उसी के साथ में हम map veto की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे of course ये BO5 का जो journey है शुरू होएगा. TEGC 2021 edition के अंदर where indeed the map veto on our screens. Exactly, यहाँ पे Haven, Ascent, Bind और Split हमको खेलते हुए नजर आएंगे ये टीम्स एंड डिसाइडर जो है हमारा आइस बॉक्स रहने वाला है. लेकिन शुरुआत होगी यहाँ पे Enigma Gaming के पिक पे on Haven and EXO यहाँ पे डिसाइड करते हुए they are going to start as defenders. Ban जो किया गया है that is Breeze little heartbroken over there क्योंकि I would have loved to see
ब्रीज हैपन, बट चलिए कोई नहीं, हेवन की बात करते हैं सबसे पहले से। I mean, I guess Enigma भी आपके साथ agree करेंगे 100%. They would have loved to see that breeze, but unfortunately, it's not gonna happen. And देखते हैं, right? The Haven start especially key because both of the teams are very good on that map. Enigma ने pick जरूर किया, but at the same time, we saw how good EXO can be just yesterday on that map. So it's gonna be a close one. It definitely will be. But on the other front, I mean, I'm liking the fact that the map जो यहाँ पे select करे गए हैं, these are the easy custom ones to go to. Yeah, exactly. And so that way, the decider makes it that much more of an impact. I mean, देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है, but ये है कि मैप्स थोड़े पुराने हैं, तो उस वजह से टीम्स के स्ट्रैट्स जो है वो काफी ज्यादा रिफाइंड होते हैं, प्लस दीज गाइज प्ले अगेंस्ट ईच अदर क्वाइट ऑफ्टन, तो उस वजह से आपको सामने वाली टीम का भी एक अंदाजा रहता है कि चलिए इधर से इतना तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी स्ट्रैट्स के अंदर, मॉडिफिकेशन इतने ही कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड पोजीशंस होती है जो कुछ प्लेयर्स प्रेफर करते हैं खेलना, और वहां पे आपको यूजुअली वही नजर आने वाले हैं, एंड इट्स द सेम थिंग दैट्स गोना रिपीट इटसेल्फ। Absolutely. But on the other front, अगर हम यहाँ पे X factors की बात करें, so in terms of the picks themselves, do we anticipate say a different pick being selected from these teams? Would it be similar to what we saw yesterday? What do you think? So there's 3 perspectives. I want a chamber perspective number 1. Perspective number 2, Hikka ne bola that there is going to be something new coming today. So maybe. And then there's a third perspective where I think from the side of Enigma, especially as you guys mentioned, YB has a huge impact. So I feel like that Hikka interview as well as YB being there, Enigma is going to come up with something spicy, I feel like. I mean, I agree with this, क्योंकि हमने Antidote से काफी पहले हमारी उनसे बात हुई थी when he was just switching to becoming a primary IGL, and especially being under someone जो YB का जो experience है, not just with the Indian scene, but as a whole जो international competition का उनका experience और exposure वो लेकर आते हैं, that is going to help this team out quite a lot. लेकिन दूसरी तरफ भी let's not forget कि वहाँ पे भी दिग्गज बैठे हैं जैसे साय और एक्स कैली, तो वो भी काफी प्रॉब्लम्स खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं एनिग्मा के लिए, and it's definitely going to be a very tough matchup. Well, again, we did touch on this as well yesterday, and this was basically the rivalry. From the previous game to this game, it's been continued on amongst these two players basically, and not the teams themselves. So वो भी कहीं ना कहीं will definitely be an impactful event, and of course BO5 है, so we can definitely anticipate कि proper icebox तक जाए. But again, we'll find out if that will be the case or not. For now, the only thing that we can be damn sure of is the fact that काफी exhilarating यहाँ पे game रहेगी starting के अंदर ही. So let's talk about Haven यहाँ पे जो first pick होने वाला है यहाँ पे Enigma की तरफ से. So what exactly say will you be anticipating from their side on this map? I want to see the reads, right? And I want to see who is strong, but I believe we have the game ready. Yes, the game is live, and with that, let's jump right into the action, and it is over to you. For Johnny answer. Exactly. पहला मैच, पहला मैप इस BO5 सीरीज का हेवन हमारे सामने शुरू होता हुआ हमें कुछ ही देर में नजर आएगा, and I guess वीटो के हमको थोड़े hints मिल गए थे सीए. Yeah. Standard compositions. Yeah. The double initiator, of course. From the side of EXO, शायद कुछ changes देखने को मिले. In fact, अगर बात करी जाए compositions की, in Champions, KO is very very popular amongst the underdog teams, but of course EXO की agents नहीं दिखे थे, तो we'll be showing that agent selection one more time, बस एक झलक लगा दे दोनों साइड के ऊपर. बट वही बात हो रही थी जॉनी. सो लाइक वी वर सेइंग, इन चैंपियंस KO की पॉपुलैरिटी काफी इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द काउंटर स्ट्रैटिंग जो आप लेके आ सकते हो विद KO. सो राइट नाउ आई वांट टू सी if EXO have prepared something for Haven, or if they just run it back the way they did yesterday. I think, I mean, run it back करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, वो पुरानी चीजें दोबारा से नहीं ट्राई करेंगे, because if you want to take on Enigma right now, you have to think outside the box. And वो चीज करने में I think साय सबसे ज्यादा माहिर है, क्योंकि he understands Antidote, he understands these players, Rexy, RVK, Rafuel, Hikka, इनके against लंबे अरसे से खेलते आ रहे, plus he is a very experienced, like उन्होंने as an IGL भी काफी ज्यादा अपना experience gain किया है, and because of that he knows how to play with their minds. वो एक चीज़ है, प्लेयर्स की मेंटालिटी को अगर आप समझना स्टार्ट कर जाते हैं कि चलिए इनकी सबसे कॉमन टेंडेंसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मान लीजिए चलिए 4v3 एडवांटेज पे है एनिग्मा ऑन द अटैकिंग साइड और एक्सो जो है डिफेंडिंग साइड पे जस्ट लेफ्ट विद 3 प्लेयर्स, साय को इतने अच्छे से पता है कि एंटीडोट क्या करने की कोशिश करेंगे, एंड आई थिंक दैट जस्ट माइट हेल्प हिम आउट टू ब्रेक डाउन दोज मिड राउंड एग्जीक्यूट्स. बट यहाँ पे अब कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि दूसरी तरफ से एनिग्मा अब क्या प्रेप अप करके आई है, क्योंकि ऐसी चीज़ आई थिंक उन्होंने भी थोड़ी बहुत एंटिसिपेट करी है, एंड इट्स गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि गेम के अर्ली कुछ राउंड्स किस तरह से जाता है. आई थिंक हेवन का फर्स्ट हाफ ही हमको एक आइडिया दे देगा कि बाकी की हमारी सीरीज कैसी होगी. Yeah, बिल्कुल. एंड वहीं पे we will have to see, right, how
both of the teams approach, and more importantly, आप देख सकते हो in the cameras itself, the discussions already going on. So that pre-match preparation कैसे हुआ है? Where have they found those small edges, small crannies? Of course, EXO की kitchen पे एक झलक. I wonder आज breakfast में खाया क्या था? Whatever it is, hopefully काफी सारा coffee, because they need that energy. I think ज़्यादा coffee नहीं, because then you can't stay focused. I mean that happens to me, but still, I mean उम्मीद रहेगी कि जो भी breakfast में किया हो, exactly, jitters होते हैं थोड़े बहुत, too much of caffeine rush. But यहाँ पे I think इन players के लिए अभी EXO के ऊपर जब हम नज़र डाल रहे थे, they were looking very very calm, काफ़ी ज़्यादा composed और collected हमें नज़र आते, तो ऐसा लग रहा है कि stress बिल्कुल नहीं है इस matchup का, which is actually a good thing, क्योंकि कभी आप overthink कर जाते हो और उसी वजह से आपका जो matchup है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब performance देखने को मिलता है. So remaining calm before an important match is also very crucial, calm but focused. दूसरी तरफ अगर एनिग्मा के ऊपर नजर डालें, अभी भी discussions जा रही हैं, कभी discussions खत्म नहीं होते. They're always talking about the game, and there's the coffee. Air quotes में coffee. Yes. For Enigma game. Caffeine. Exactly. There is caffeine. Lots of caffeine in that. Yes. With that, you can see players ready हो चुके हैं, and we are ready. I'm sure the fans are as well, and I'm excited to see which team starts off strong. बात करें, if we had to talk about the compositions, of course, from EXO we expect that breach to come out. Blackhawk on that breach especially. It's all about enabling Excali, right? And एक बहुत interesting, tactical narrative setup कर देता है, because now on one side you have someone like Excali being set up for success with that breach, support देते हुए, utility देते हुए, सब कुछ Excali के लिए. But on the other hand, Raw Fuel, a similar like high caliber player, but not necessarily the same level of support, क्योंकि they have the sky in their hand, so much more default focused Enigma game. I think apart from that, ये matchup जैसा आपने Excali की बात करी, उनको और Raw Fuel को अगर हटा दे तब भी काफी ज़्यादा intense matchup बन जाता है, because look at the backup options to pop heads these teams have. एक तरफ Ghost और Sai हमको नजर आते हैं और दूसरी तरफ Antidote और Heka. तो ये जो trios है दोनों teams के, ये काफी ज़्यादा deadly हो जाते हैं, and along with that Wimp की तरफ से हमने देखा कितने बेहतरीन तरीके से अपने players को ये he is a very very good enabler for his team success. और वो एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बनाती है EXO को, along with the Blackhawk का जो एक्सपीरियंस है उसको भी आप ऐड करें. सो ओवरऑल एज अ यूनिट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड EXO में नज़र आती है, बट कहीं पे वही चीज़ है कि जो टेंडेंसीज होती हैं इन प्लेयर्स के अंदर टू बी अ लिटिल टू ओवर ईगर, टू ओवर अग्रेस, वहाँ पे कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं. तो अगर थोड़ा सा कंट्रोल खेले, आई थिंक EXO दे विल हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ बीटिंग एनिग्मा टुडे. Yeah, absolutely. I think you said it perfectly, especially because EXO's biggest strength is their biggest weakness, right? Yes. Their creativity comes from those unnecessary, overextended plays. So they need to find that balance. जहाँ पे they are comfortable still making those plays, because without those plays, Enigma का discipline, it will just take over. But at the same time, अगर आप बहुत ज़्यादा वो plays करें, if you push into it too much, then you will get caught, and hopefully we don't get to see that. But you can see the claps coming in, motivation for the players, and of course some hydration as well. We are ready to get started and straight into Agent Select. Of course, no surprises here. It's going to be that double initiator comp for both teams. Just the difference in initiator choices. The breach for Blackhawk versus the Sky for Heka. Well, let's see. I mean, देखते हैं कि जैसे आपने बात करी, breach हमको नज़र तो आता है, but it's on someone. It's on Blackhawk right now from the side of EXO. Enigma की तरफ से Antidote अपनी Astra को hover कर रहे हैं. Heka on that Sky hover for now. Raw Fuel की Jet Lock हो चुकी है. Haven पे मेरे को याद है अभी भी, I still can't forget the moment जब Bladestorm के साथ ही almost got an ace clutch. थोड़े महीने पहले की बात है, in a different tournament of course, but it was definitely it was a very close moment. He almost had it, and I think he actually did get it. I think there were several moments. There was one moment where he almost had it, there was one moment he did have it, and there was one moment where he was not supposed to have it and he still had it. Basically बहुत अच्छा jet खेलते हैं. बट दूसरी तरफ अगर बात करें, चलिए जहाँ पे एक तरफ एनिग्मा हमको अभी भी अनडिसाइडेड नजर आ रहा है कि एक्चुअली लॉक इन क्या करें. EXO इज डन. दे आर लाइक ठीक है हमारा सेट है. Yeah, they're like we don't want to risk the last agent select again. जहाँ पे कुछ भी select नहीं हुआ, instant lock करो boys, सबके सब band. पूरी टीम इंस्टा लॉक. But we are ready with the game. Of course, Heka and Raxi will auto lock in, and
going into the map straight up, we'll have to see immediately IGL's ki taraf se what is the start, what is the calls, how are we anticipating the basic conditioning to be represented, and especially from Enigma's side, this is important to see now. This is Enigma's map choice, so EXO get to decide the side, and I'm assuming they went for the attacking half, especially with that breach. That's where they'll find their strength. I think Hika just went to get himself some caffeine as well. मैच से पहले मैच स्टार्ट ही होने वाला है, so it's definitely going to be important to stay on point. जितना ज़्यादा आप focused रहेंगे उतना ज़्यादा better होगा इन players के लिए. And with just a few seconds to go, ladies and gentlemen, हम भी चलते हैं players को join करते हैं मैप के ऊपर. Haven हमारा सबसे पहला मैप इस Taiwan Excellence Gaming Cup के 8th edition के finale का, Valorant का सबसे पहला मैच BO5 सीरीज का, with Enigma starting on the attacking side. उन्हीं का मैप पिक था. EXO को डिसाइड करने मिला था कि कौन सी साइड पे वो स्टार्ट करेंगे, and they chose defenders. Quite interesting because again the breach ka strength really comes on the attacking side, and we'll have to see how ये approach क्या देखने को मिलती है from Team EXO. Of course, Excali on the op is another devastating factor that we can account for, but for now it's just the pistol. And Sai aggressively already taking alt-top control, gonna get some information and back right up, but from Enigma Gaming standard defaults. Of course, वो A lobby का conditioning करने की कोशिश है, trying to make some presence there, but otherwise just waiting for some aggression from EXO. I mean, aggression का इंतजार तो कर रहे हैं, but I think यहाँ पे Black Hawk जिन्होंने पीक करने की कोशिश करी, B ramp उनको pick off किया जाता है, and it was a very aggro position from the players of Enigma Gaming, but उनको उस चीज़ का फायदा भी मिला. Excali अभी garage window पे यहाँ पे पीक लगा के बैठे. Already turret जो था RVK का उसको destroy किया गया. Wimp का हल्का सा counter push आता हुआ जो RVK ने anticipate नहीं किया था, and he gets taken out as well. बचे हैं 4 players दोनों ही teams की तरफ से, but Enigma Gaming की तरफ से जो Astra है उनकी HP काफ़ी ज़्यादा कम. स्मोक के थ्रू यहाँ पे शॉट्स लिए जा रहे थे, बट इट्स नॉट गोना कनेक्ट ऑन एनीथिंग. एंड साई अपने टीममेट की पोजीशन और उनकी पोजीशन जो है, आई थिंक इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी. Look at this! Wimp coming in, leading the charge on the retake already. One kill picked up, and Excali heaven se utarte hue catching Rafael off guard just like that. EXO's retake is on, and Enigma poorly coordinated on that post plant. Even Hika all alone, it's a easy round win for Team EXO and a great start. Yeah, definitely a great start. I mean, that was such a clean retake here. Even though, I mean, उनको पता था कि defenders spawn की link से players आ रहे हैं, they still couldn't hold that off. And I think वहाँ पे Rexy का थोड़ा सा over eager होना पीक करके check करने के लिए वहाँ पे backfire हुआ. Had he held that position तो at least mental pressure रहता, unless they pushed, और अगर वो push करते तो आपके पास वो sewer side से एक crossfire setup हो रखा था, so trade आने की possibility थी. Was a much safer option. लेकिन चलिए EXO ने उन छोटी गलतियों को like the unawareness की, चलिए counter push भी हो सकता है, B ramp वो चीज़ avoid करी गई. EXO ने ये छोटी गलतियों को काफ़ी अच्छे से पनिश किया और पहला शुरुआती पिस्टल राउंड में अपने नाम किया उन्होंने. Exactly right. Even Wimp's push from B, trying to catch out RVK, was absolutely on point, and we'll have to see now how Enigma bounce back. And remember that it's not normal for a team on Haven to choose defense for the first half, but EXO choosing that, looking to start on the defensive half, a pattern from yesterday really. Yesterday as well, जो भी उन्हें map option मिला था, they chose to stay on the defensive half, trying to get a strong start and then take that momentum into the attacking half. And I think it can work out for a team, क्योंकि if especially you are a team like EXO जो अपने momentum पे ज़्यादातर खेलना पसंद करती है, if they have a very strong start तो finish भी strong ही देखने को मिलेगा. अगर start weak हुआ तो recovery भी I mean थोड़ी सी इनको ज़्यादा दिक्कत दे जाती है. And साथ ही साथ these guys know, जैसे हमने पहले बात करी, वो mental pressure किस तरह से create करते हैं, इनको काफ़ी अच्छे से पता है. आज तक मैंने Excali के जितने, चाहे पिछले जो गेम खेलते थे उसकी बात करें या Valorant की बात करें, मैं जब भी आता हूँ एक ना एक प्लेयर को तो ये चक्कू मारते हुए नजर आता है. तो वो एक चीज़ है, and it's very triggering जब एक competitive game में आपको नाइफ होता है तो. So yesterday actually, PM King himself, game के बाद on the camera, I believe he was showing Ajmola Amchur to try and say two ripples show. So you can see the PM King is very much still the PM King. Hajmola is for a different purpose.
Yes, Yeah. but I think maybe the optional flavor. I'm not sure, but I think he was trying to say that they choked because they did kind of choke. But कॉफ सिरप फिर थोड़ा ज़्यादा. yeah, but Shayad he doesn't use cough syrup. You never know. But hey, Yeah. back to the round itself. Wimp and of course EXO on that anti. Beautiful first blood for EXO. Anti waiting in the shadows. RVK gets another one on those sheriffs, and suddenly this anti-eco not going so great, Johnny. Yeah, definitely काफी ज़्यादा खराब already anti को हो चुका है, and it's gonna take EXO to a reset. Enigma के लिए एक बहुत ही बेहतरीन advantage, but एक शेरिफ को तो यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है. जो शेरिफ यहाँ पे निकाले गए that was towards B, और B के लिए प्लांट भी किया गया. एंटीडोट को भी पिक ऑफ किया जाता है घोस्ट के द्वारा, but he's very close to Rexy, and position उनको नहीं पता थी. एग्रो जाने की कोशिश करी. It's down to a 2v1 जहाँ पे Rexy जो है यहाँ पे मिड पे वॉच करने की कोशिश करेंगे. साई हैज बीन स्पॉटेड आउट. थोड़ा सा केयरफुल उनको भी रहना पड़ेगा. रेक्सी बैकअप का इंतजार करते हुए, बट क्योंकि स्पेक्टर पे अपग्रेड कर चुके हैं, इट्स गोना बी एन इजी क्लीन अप फॉर एनिग्मा. और एक एक का स्कोर लाइन अब हमको देखने को मिलता है. द मोमेंट इट स्टार्टेड विद एंटीडोट एंड आरवीके गेटिंग दोस पिक्स, आई थिंक इट वाज डन. And once again, we get to see entry fragger antidote on the Astra, Yeah. leading the charge from the front. This is something we highlighted even yesterday, that it needed to get punished from True Rippers. It did not get punished, and again, from an antidote with that sheriff just walking in as the Astra, no punishment. I think Blackhawk equally surprised, but a huge round for Enigma Gaming. On that eco, now they have the weapons and forcing an eco for EXO. I'll say honestly, like in any match that I'm playing, I would much rather win a thrifty than win the pistol. Yeah. I mean sure. I mean आपके पास दोनों चीज़ों से advantage, एक sort of similar advantage आपको मिलता है. You can possibly take it to a 2-round advantage जहाँ पे जो Enigma करने की कोशिश करेगी. And Vandal यहाँ पे अब आ चुकी है Antidote के पास, and Hicka as well upgraded rifles के साथ जब आप move करते हैं तो वो long distance duels और भी ज़्यादा आसान बन जाते हैं. But let's see. C long यहाँ पे पुश किया जा रहा है Hicka के द्वारा, while the entire team is on A, and Hicka will be shut down. Sai का एक काफी अच्छा sheriff headshot connect होता हुआ. EXO still holding strong with 3 players. जो breach है उनकी HP काफी ज़्यादा कम है, but दूसरी तरफ A site पे spike plant हो चुका है. Yeah, Sai will be able to recover one weapon, but at this point, there's not much hope. It's just all about the damage factor, how much they're able to do. You can already see Blackhawk playing for the exit frags, and now Sai, with the recon, going to try to get some of his own antidote. This is the entry fragger Astra, happy to take the 1v2 and pull it out of thin air. Just tap, 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 tap. And I have to point out, once again, Anti, उनके style में continue करते हुए, he's one of the few players who does not like skins. He likes the default weapons and he uses them. Sure, why not? But चलिए देखते हैं कि अभी जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या उसको आगे तक ये कंटिन्यू कर पाएंगे, and how he uses the setups that the team has for themselves. But दूसरी तरफ एनिग्मा जैसा एक्सपेक्ट किया था, I mean कुछ उसी तरह का स्टार्ट यहाँ पे देखने को मिला उनकी तरफ से. बट एक्सो की तरफ से देखना चाहूँगा कि अब आने वाले जो अगले कुछ राउंड्स होते हैं, जब when they'll be starting off with a decent buy, तब हमको क्या रिस्पॉन्स एक्सो की तरफ से देखने को मिलता है. बिकॉज दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड फॉर एक्सो. ये उनका फर्स्ट हाफ एटलीस्ट एक कंट्रोल्ड पोजीशन उनको फिनिश करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है. ऑलरेडी द डोर गेटिंग स्पैम्ड, बट एस्कैली अपना डैश यूज करके काफ़ी अग्रेसिवली मिड पे आगे पुश कर चुके हैं. 4 प्लेयर्स थे उनके सामने, बट क्लाउड बर्स्ट डाल के उन्होंने किसी ना किसी तरह से विजन देना, इन्फॉर्मेशन देना अवॉइड किया है कि एग्जैक्टली कहाँ पे. थोड़ा सा पीछे है, बट सी लॉन्ग तब तक पुश हो जाता है. एंटीडोट गेटिंग एक्सकैली एंड द सेकंड गोस गेटिंग टेकन आउट. तीसरा और चौथा पिक भी मिलता हुआ एंटीडोट को. साई ब्लैकहॉक हेडिंग टुवर्ड्स एन एस. 5 HP थी, हील आ चुका है. आखिरी प्लेयर बचे हैं यहाँ पे टीम एक्सो के, किलजॉय, जो किसी ना किसी तरह से कोशिश करेंगे कि ये एस ना मिले एंटीडोट को. ही इज क्वाइट क्लोज टू द अदर किलजॉय, आरवीके के काफी ज्यादा करीब, बट एंटी ही इज गोइंग फॉर द हंट. एस चाहिए, एंड देयर it is. Antidote getting the ace in the 4th round of the game. 3rd round, I'm sorry. I mean, you would think that after yesterday's matchup, EXO would be like, we need to shut Antidote down. But no, instead they're like, we need to fight Antidote. And yahi natija, even with 5 HP, the spray is just perfect, right? The spray and usage of that wall to get a few shots in wall banged as well.
doing it to perfection. 10-2 on the Astra, the IGL leading from the charge. He wants this win right here, Johnny. Yeah, he is hungry for it. क्योंकि आप देखिए एक्सो ने भी वो पुश उस तरह से एंटिसिपेट नहीं किया था. They did not think एंटीडोट इतना ज्यादा अग्रेसिव जाएंगे. जब एक्सकैली ने मिड पे पुश किया, he heard 3 players. I think उनको लगा था कि कहीं ना कहीं सी लॉबी में प्लेयर्स वेट करेंगे, थोड़ा सा वो वापस गराज जाके चेक करते हैं, और सी लॉन्ग से एंटीडोट पुश कर चुके हैं ऑलरेडी. तो बहुत ही एक बुरा अनप्लेजेंट सरप्राइज यहाँ पे मिला था एक्सो को. बट एज सून एज वी स्टेप इनटू द नेक्स्ट राउंड, एक्सकैली ऑन हिज ब्लेड स्टॉर्म इज गोना फाइंड रॉ फ्यूल ट्राइंग टू पुश टुवर्ड्स ए. और एक एडवांटेज लेने के बाद इस राउंड में मैन एडवांटेज यहाँ पे टीम एक्सो के फेवर में जाता है, 4v5. Thrown from both of the sides will spot out the players. You can see garage पे इधर Enigma के players spot out होते हैं. Sai in a very bad position, going for the shock dart without the support again. Small miscommunications needed. Ghost right there, but instead Ghost is gonna get isolated just the way Sai did. Both of them taken down very cheaply, but Excali trying to be the hero. Able to get one kill, but not so much. Enigma starting to run away with this matchup, Johnny, and really, you have to wonder if it's all because of that first antidote sheriff shot, then an antidote ace. It's like they lost the pistol, but they immediately found the antidote to their problems. That is perfectly said, CA, क्योंकि that is exactly what's happening right now. पहले I mean कुछ करके confidence build किया, and again एक ace निकाला पिछले राउंड में, इस राउंड में भी 3K निकाला एंड्रॉइड ने. He found the opening into the side, उसके बाद साइड पुश कराई अपनी टीम के साथ. क्लीनली काफी उन्होंने क्लियर किया गोस्ट की पोजीशन को, एंड अब 4-1 के साथ यहाँ पे अटैकिंग साइड पे जिस तरह से एनिग्मा ने शुरुआत करी है, इट लुक्स लाइक दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग. मोमेंटम उनके कंट्रोल में है, बट ये राउंड थोड़ा संभल के खेलना होगा. सामने ऑपरेटर आ चुकी है, और वो ऑपरेटर बहुत ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट बिकम्स अ पिवटल राउंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सो. यहाँ से वो गेम को बदल सकते हैं अपने फेवर में. Definitely, and you have to see that operator's first shot. How does it land? Where does it land? But talking about Enigma themselves, the defaults now once again try to go for that C. They are sure we've broken it once, we can break it again. But this time the operator there for backup. But Antidote is unstoppable. Already picking up a 2K. Blackhawk with the trade though, but it's still a 2v2 with the health advantage for Enigma Gaming, and so is the flank. Rexy will get one. RBK holding on to defender side spawn, but Sai beams off his fans alive. Rexy putting him down to 16 HP, and now Sai, he is stuck. Rexy with another fake. Sai going for the shock dart, spots out that the plant is not going down, and now round in the hands of Rexy. Johnny 1v1. Sai कोशिश कर रहे हैं गराज से आने के लिए, but what? टाइमिंग और किस्मत थोड़ा साथ देते हुए यहाँ पे साई की एचपी बहुत ही ज्यादा कम थी, बट स्टिल एज आई सेड एक्सपीरियंस है, प्लेयर्स के दिमाग के साथ खेलना जानते हैं. देयर इज अ वेरी क्यूट पपी राइट बिहाइंड मी, बट क्यूट चीजों की बाद में बात करेंगे. फिलहाल ये राउंड तो काफी ज्यादा इंटेंस था. Just that इधर 1v1 पे when Sai is so low, कहीं ना कहीं I think anticipation रहनी चाहिए from the side of Rexy that he is going to come from garage if he's not immediately pushing. Either he's going to be on your face while you're planting, or he's going for that long rotate and going to come through from the garage. But still, you can see that the economy situation not so great despite the win. Excali no shields, Wimp stuck on a Spectre, and Ghost with just light shields, while another player, Blackhawk on the Spectre, so still Enigma with a small advantage. I mean, हाँ, एनिग्मा के पास एक स्टेबल कैश फ्लो अभी उनका थोड़ा बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है, मगर अगर इस राउंड में भी हार गए तो फिर दिक्कतें उनके लिए बढ़ जाएंगी. एंड एक्सो के लिए ये राउंड जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन अनदर पिवटल राउंड, क्योंकि यहाँ से गेम पूरी पलटी जा सकती है. पिछला राउंड जीत के उन्होंने शुरुआत करी है, स्कोर लाइन को थोड़ा और कम लेकर आया, और एनिग्मा का जो एक बैंक बिल्ड हो रहा था उसमें डेंट डाला है. अभी उस बैंक को पूरा तोड़ सकते हैं ये. एंड लुक एट व्हाट इज हैपनिंग. RVK, हाउ इज ही बिहाइंड एनिमी लाइंस? पूरा बी साइड पुश करके ए पे बैकस्टैब करने आ चुके हैं, एंड द प्लेयर्स ऑफ टीम एक्सो विल बी कॉट ऑफ गार्ड. ये स्मोक जाने का वेट करेंगे. ही वांट्स टू सी बोथ द प्लेयर्स फर्स्ट, एंड ही विल गेट द सेकंड एज वेल. और इसी के साथ ए साइड फ्री में मिल गई. Yeah, I think the basic call from the side of Team EXO, guys, we have the Rolling Thunder, we have the Lockdown, let's just retake B, right? And that makes perfect sense. But to retake B, you need some information of what is happening in B. They leave B completely empty. And RBK is like, oh, okay, thank you very much. Casual stroll to the summer park, and oh boy. I think रॉफिल वहाँ पे कोशिश थी कि पहला शॉट ही हेड पे कनेक्ट हो, बट थोड़ा सा एक्सकैली को बताया उन्होंने कि मैं यहाँ पे हूँ. एंड या अब ऑपरेटर पे अपग्रेड कर चुके हैं.
It's down to a 1v4 situation for EXO with a killjoy जो भागते हुए हमको नजर आ रहे हैं मैप के दूसरे साइड पे, बट उनको भी अकेला नहीं छोड़े जा रहा है. RVK already on the hunt. This is brutal to watch, man. Yeah. Gun भी नहीं बचाने देंगे एक भी. Yeah, just the perfect lurker. We saw the strength of RVK yesterday in the semifinals as well. Jahan pe it was on the map of Ascent, I believe, continuously able to exploit these small gaps in the opponent's defense. And here you can see the trigger control is just picture perfect because he's able to get the flank. He also frees up raw fuel and the entire site. I mean, we saw entry fragger Astra. We are used to entry fragger raw fuel. Ab entry fragger Sentinel idhar RVK bhi aate hue. I wonder, like, RVK, please give us Chamber. Surely you're the one who can do it. I mean, I think yes, I completely agree with you. अगर Chamber यहाँ पे खेलते हुए नजर आते हैं तो I think काफी ज्यादा exciting होता. इनके लिए बहुत swift होता because look at how he moved in the previous round. B ramp push किया, B to A link गए, A site clear करी, वहाँ पे अपनी टीम को एंट्री दिलाई, फिर A lobby से घूमते हुए इन्होंने C पे जाके पिक निकाला है गराज से. So कहीं पे टिकना पसंद नहीं करते, साइड कंट्रोल आ गया उसके बाद मैं अपना काम करूंगा बेसिकली. बट इट वाज स्टिल अ वेरी नाइस स्टार्ट फ्रॉम एनिग्मा गेमिंग. 5-2 का स्कोर लाइन हमको देखने को मिला. एक्सो की तरफ से आता हुआ एक टैक्टिकल टाइम आउट, एंड आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे उम्मीद ये रहेगी कि फिगर आउट कर लिया हो कि कहाँ पे इनको रोकना है. लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड वाज, जैसा आपने मेंशन किया कि अगर बी रीटेक पे खेलना था आपको गराज पे थोड़ा एग्रो नहीं जाना था, यू नीड टू प्ले फ्रॉम द विंडो. एक्सकैली ने वहाँ पे डोर पे काफ़ी अग्रेसिवली पुश किया था, एंड उनका इंटेंशन काफ़ी क्लियर था क्योंकि बार बार उनको वो जो एक ये मिड डोर जो होता है वहाँ से लोग रोटेट करते हुए नजर आ रहे थे, सी लॉबी की तरफ जाते थे वहाँ से. तो ही वॉन्टेड टू टेक दैट फर्स्ट पिक फ्रॉम दैट पोजिशन, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ. इस बारी प्लान्स थोड़े स्नीकी थे टीम एनिग्मा गेमिंग के, और उसी चीज़ का फ़ायदा भी काफ़ी अच्छे से एनिग्मा ने उठाया. लेकिन चलिए अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक बार फिर से एक्सो की तरफ से क्योंकि इकोनॉमी खराब है, दे वांट टू प्ले दोस क्लोज एंगल्स, तो काफ़ी ज़्यादा पीछे ही हमको खेलते हुए नजर आ रहे हैं. एंड दिस टाइम द ए साइड हैज बीन लेफ्ट अनअटेंडेड. Yeah, once again, I completely agree with the economy part. Yes, they need to play it safely. They need to play with each other. But I was expecting aggression. That was the trademark of EXO yesterday, the strength, where they were continuously moving forward with the breach in early rounds and then coming back, getting information, getting damage and coming back. But right now it feels like they're almost scared and they're letting Enigma play their game, freely walking into site, a free spike plant, and you have to certainly expect now, like A is most likely the hardest side to retake when you compare the way the crossfires are set up right now, and EXO without the weapons is going to be near impossible. Like Scally just trying to beat the Zeus Bomber, already getting one, but that's all it's going to be. Enigma once again will clean it up, and Johnny, this is starting to look like a very much one-sided affair. The side that EXO picked, the defense not working out for them whatsoever. I mean, let's see, क्योंकि बात ये भी ऐसी है कि this is a BO5 series. Yeah. अगर पहला मैप एनिग्मा डोमिनेट करके क्लीनली जीत भी जाती है, उनको 2 और जीतने पड़ेंगे बैक टू बैक, एंड इट्स बेटर इफ यू शट डाउन एक्सो एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि एक बार ये प्लेयर्स वार्म अप हुए, एक बार एक्सकैली, साई, गोस्ट इन्होंने मारना चालू किया, फिर ये नहीं रुकेंगे. And we'll have to see if these players can find that momentum, can find that groove, you know, really, and try to come into their best selves. Because yes, definitely it's a BO5, but I have to say, like, from a player like Antidote, who has seen just demolish players in the past as a duelist, on controller, on Astra right now, 16-4. I'm not sure if he gets to continue this level of form, whether EXO stands a chance, even if they come into form. I mean, I agree with that for some sort, क्योंकि एंटीडोट को देखे कैसे खेल रहे हैं. Yeah. I mean, जैसा आपने अभी भी मेंशन किया, पहले ड्यूलिस्ट खेलते थे, I think अभी भी वो मसल मेमोरी जो है वो गई नहीं है. Still being the front line, like always, पीछे हट के खेलना पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी. एंड जैसी मैं कहता हूँ वैसी पूरी की पूरी टीम हमको रुकी भी नजर आती है. देयर नॉट मूविंग, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं. एंड आई थिंक ये एक चीज़ है जो एनिग्मा को काफ़ी स्पेशल बनाती है, देयर एबिलिटी टू स्विच पेस इंस्टेंटली. अभी पिछले कुछ राउंड्स हमने देखे हैं जिस तरह से खेले, दे वर ऑलवेज जस्ट पुशिंग फॉरवर्ड, राउंड स्टार्ट हुआ, ठीक है 1 2 3 गो, रेस लगती थी साइड पे भागने की. एंड नाउ 50 सेकेंड्स ऑन द क्लॉक, अब जाके सीकर्स डिप्लॉय करे गए और उनके साथ में
धीरे धीरे करके एनिग्मा हमको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए एक के बाद एक ब्लाइंड्स डाले जाएंगे साइड को क्लीन अप करने के लिए। रॉफ्यूल को हल्का सा यहाँ पे डेज पड़ता हुआ और कॉस्मिक डिवाइड के साथ साइड को कट ऑफ कर दिया गया है। दे स्टिल हैव 35 सेकंड्स टीम एनिग्मा, और वो डिसाइड करते हैं कि स्विच अप करके हम बी की तरफ भागेंगे, वेयर अ स्लाइट एज ऑफ दैट बी साइड इज एक्सपोज्ड, तो अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट फॉर दैट दे नीड टू गार्ड गराज और ए लॉबी से कोई बैकस्टैप ना आए, वो चीज भी इनको प्रोटेक्ट करनी होगी। गराज पे यहाँ पे आरवी के काफी एग्रो मूव कर रहे हैं, एक्सकैली उनको फ्री में पिक करते हुए हमें नजर आएंगे। दैट मींस साइड कंट्रोल कहीं ना कहीं मिल सकता था एनिग्मा को, बट दे डिसाइड टू गो टुवर्ड्स द ए साइड और अपने कॉस्मिक डिवाइड के साथ कट ऑफ कर दिया है इन्होंने एक्सो की पूरी टीम को, एंड द स्पाइक इज डाउन ऑन ए। You just have to wonder if that gravity well had come down a second earlier, or maybe if the shock darts had just waited for a second, udhar Rexy finish ho jate and the retake would be so much easier because you would have that 5v3 advantage. But still, the lockdown coming in, the rolling thunder invested as well. The now Hunter's Fury to try and trade off one, but it's Excali who gets the kill, and immediately you can see it's all about that Suez. Excali clearing off Suez, long pe pressure dalte hue, but Rexy holding on, and Exo's retake, it will come through. Just the ultimate power, right? They used two huge ultimates, Rolling Thunder as well as Lockdown, to secure this round, but they needed this round. This was crucial. Exactly. I mean, काफी ज़्यादा crucial तो था, and as I said earlier, एक बारी मारना चालू करेंगे तो रुकेंगे नहीं। And this round it was Excali who popped off 3K उन्होंने निकाला अपनी टीम के लिए। यहाँ पे साई ने कोशिश करी थी कि उनका इंटेंशंस बस क्लियर था कि मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है इन्हें। Excali ऑलरेडी सुअर्स तक जा चुके थे, पीछे से Excali का भी थ्रेट था कि अगर वो सुअर पुश कर जाते तो यहाँ पे एनिग्मा के प्लेयर्स पिक ऑफ हो जाते, तो एनिग्मा वाज ऑलरेडी सेकंड गेसिंग कि कहाँ पे देखें, कहाँ से देखें और कैसे इस रीटेक को डिफ्यूज को होने से रोके। सो साई जिस तरह से आगे बढ़े, थोड़ा सा उन्होंने इरिटेट करने के लिए स्टेप्स लिए, सेल्फ सैक्रिफिशियल रोल जो होता है वो प्ले किया, एंड ही गॉट हिज टीम द राउंड। बट अगले राउंड में एक्सकैली ए लॉन्ग और आगे पुश करते हुए रॉफ्यूल को एक बहुत ही ज्यादा ऑफगार्ड पोजीशन में पकड़ा गया, एंड द ओपनिंग पिक फॉर टीम एक्सो 4v5 सिचुएशन। It's because every single round Roffuel को free entry मिल रही थी. He is able to walk in into A long and just get the entry into the side. This time Excali though surprising. Just hold on, RVK on the lurk. RVK is angry. Excali took him out last time. Now trying to be the entry fragger and clearing up the side for his team. He gets taken down, but because of the team being right there, the trade coming through, now a 2v2 and a free open site around that started, that it looked like Excali was going to continue that momentum. Enigma just saying, no, we're not going to let that happen. I mean, अभी उनकी कोशिश तो वही है, but एनिग्मा की तरफ से यहाँ पे गोस्ट और वेम्प, सॉरी एक्सो की तरफ से गोस्ट और वेम्प आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रेक्सी और हिक्का बचे एनिग्मा की साइड से, हेल्थ की पोजीशन यहाँ पे खेली जा रही है। रेक्सी की तरफ से वेम्प को बाहर निकाला गया, गोस्ट स्टिल सर्वाइविंग एंड ही इज गोना गेट हिम एज वेल। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एंकर पोजीशन यहाँ पे खेली गई, काफी ज्यादा अच्छे शॉट्स रेक्सी कनेक्ट करते हुए हमें नजर आया है, एंड इम्पोर्टेंट एज वेल। जैसा आपने बताया, यहाँ से मोमेंटम भी शिफ्ट हो सकता था, बट नॉट अलाउइंग टीम एक्सो टू डू दैट। एनिग्मा डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन दिस मैच। 7-3 का स्कोर लाइन ऑलरेडी हो चुका है। Yeah, and immediately, like you talked about, we have to mention the tactical narrative of this entire thing, where the change of pace by Enigma is continuously surprising EXO. In this particular round, early round, EXO got the better of it. The change of pace, they actually surprised Enigma, but the strength of Enigma is that they don't stop with their plan. Once they have a plan, they try to execute it all the way through, and that's what brought them to win. And once again, trying to do exactly that. Even though they lose an unnecessary kill in RBK, they don't stop, they don't wonder. They're like, round के बाद में बात करेंगे, अभी घुसो। Exactly, राउंड के बाद बात करेंगे, अभी साइड क्लियर करना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट। हिक्का एंटीडोट गेटिंग द ट्रेड्स, विम्प ने वहाँ पे रॉफील को पिक किया था, बट उसके बदले में विम्प और ब्लैक हॉक दोनों डाउन हो जाते हैं। अब टीम एक्सो के मात्र एक अकेले प्लेयर साई बचे हैं, जो किसी ना किसी तरह से इस 1v3 सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, विद द फैंटम इन हिज हैंड्स एंड अ ड्रीम। अगर यहाँ पे 7-4 का स्कोर लाइन देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती थी, सॉरी सेकंड हाफ में हमको रिकवरी देखने को मिल सकती थी एक्सो से। लेकिन अगर गलती से भी 8-4 का स्वैप होता है, एनिग्मा के पास एक अच्छा कंट्रोल रहेगा। इफ दे विन द पिस्टल इन द सेकंड हाफ, उनकी गेम ऑलरेडी काफी ज्यादा सेट हो जाती है। साई बीइंग स्पॉटेड आउट इन सी लिंक, एंटीडोट थोड़े शॉट्स फायर किए थे, ट्रेड लिया यहाँ पे डैमेज का दोनों प्लेयर्स ने। साई रिकॉन के साथ कोशिश करेंगे पोजीशन क्लियर आउट, बट दैट्स नॉट गोना हैपन। इंस्टेड हिज पोजीशन गेट्स रिवील्ड। एचपी बहुत ज्यादा कम, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं टिक टिक करके, और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है इनके पास। देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट, ही हैज़ टू डिसएंगेज, रन अवे एंड ट्राई एंड सेव हिज वेपन। Yeah, he's going to do exactly that, but the hunt is on for Enigma Gaming.
trying to deny that one last weapon in this one last round in the first half, and Last round they're before the unable to switch. do that. Sai able to get one except frag, but the loss of a weapon won't matter to Enigma Gaming. Their economy is boomed 8-3. They have a 5-round lead, and if they're able to secure this next round, which they should be able to given the economy situation, it will mean that a 9-3 lead, it's basically done and dusted for Team EXO, because a team like Enigma is not going to be able to just throw away such a big lead. And very, very dicey situation right now for Team EXO, and we'll have to keep an eye on Excali. आप देख सकते हो already on the garage, waiting for the push, has his breach for support, and that's where all of Enigma right now. The timing of this peak, the timing of the Trailblazer is key, but the Trailblazer comes before the fault line, and it's the Enigma Jet that gets the kill. But hold on, Blackhawk was there for the support. They had no idea. He finds the double. वेल डबल किल तो यहाँ पे निकाला है, बट दूसरी तरफ से एंटीडोट को देखिए, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना काफी अच्छे से जानते हैं. 2 वर्सेस 2 की सिचुएशन. एनिग्मा के पास अभी लॉकडाउन जो है आरवी के पास वो अवेलेबल है. दे कैन यूटिलाइज दिस, बट अभी नहीं यूज करेंगे. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेट फॉर द लास्ट राउंड ऑफ दिस हाफ, जो अगला ही हमारा इनफैक्ट राउंड होने वाला है. एंड इट्स दिस इज इट एक्चुअली. अभी यूज ही करना पड़ेगा. मेरी मैथ्स काफी ज्यादा खराब चलते हैं, बट स्टिल एज आई सेड फर्स्ट हाफ का लास्ट राउंड है, एंड देयर इज द लॉकडाउन पोस्ट प्लांट में इस्तेमाल किया गया है just to delay things from the side of Team EXO, and it's very important क्योंकि अब जो है they have basically thrown the kitchen sink, and look at what EXO is doing. पूरा सी लॉबी तक गए हैं आगे पुश करने के लिए. लॉकडाउन तो डॉज किया, बट बैक साइड पे एंटीडोट मौजूद. 1 पिक कमिंग थ्रू. 1 वर्सेस 2 सिचुएशन. साय अकेले बचे हैं. कॉस्मिक डिवाइड के दूसरी साइड गए थे बचने के लिए, बट आई थिंक दिस राउंड इज एनिग्मास. इट्स ओवर. What? He tapped him, right? Yes, he did. Avike being like, Kapitan, my Kapitan, you take the kill. You're the top dragon, you take the kill. And look at Sai as well. वो भी एंटीडोट पे फोकस थे. Did not turn around at all. He's like, but yeah, like again, miscommunication all the way through. I don't understand. Like that lockdown honestly actually helped EXO because it put them in a situation where they could force Antidote down. All they had to do was force Antidote to fight right there, come back, one person diffuses while the other person covers him. But instead they wait and sit there for the lockdown, and it becomes a situation where it's just entirely not feasible for EXO to try and push back without that communication. With that breach Sova especially, wo communication factor, it's showing me the difference. Of course, communication and the antidote diff, that's not anything you can do about. I think एक combination था वो लॉकडाउन और कॉस्मिक डिवाइड का, जिसने झिझोड़ के रख दिया वहाँ पे टीम EXO को. क्योंकि देखिए पोजीशन किस तरह से किया था कॉस्मिक डिवाइड को. It wasn't there to protect antidote necessarily. It was also there to protect that lockdown and that killjoy. क्योंकि अगर आपको ऐसे कॉस्मिक डिवाइड के थ्रू पुश करना है तो दिक्कत काफी ज्यादा रहती है. लेकिन दिक्कत है ऑलरेडी एक बार फिर से इस पिस्टल राउंड में EXO के लिए रॉ फ्यूल और रेक्सी ने यहाँ पे पूरी ए साइड अकेले संभाल रखी है. एंड देखते ही ये पहला पिस्टल राउंड सेकंड हाफ का खत्म हो जाता है. Yeah, Enigma, they're not willing to just, take it slow, take it cautiously. They're not willing to just ride it through the end. They put pedal to the metal. We want to get it done with immediately. You can see that intention across the map. On the replay itself, if you're noticing, mid se aggressively push karte hue, the Sky and the Killjoy in RVK and Hikka, with the assumption that, hey, we are getting hit on aggressively on A, hum wo area le sakte hain for ourselves towards that B garden area, and that communication is the difference. Like the team telling them, or rather Antidote making the call, guys, there is an aggressive hit happening on A, try to get some space back, try to give me some information on the other side of the map, and the players deliver rightfully so. EXO being caught off guard once again, but look at this, EXO, they're going to try to go to garage, Johnny, and there's a crossfire here. Well, एक काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है. 2 पिक्स रॉ फ्यूल के हाथ में आते हुए. एंटीडोट तीसरा पिक दूसरी डायरेक्शन में निकालेंगे. हिक्का गेटिंग द 4th, और EXO कोशिश थी उनकी कि कुछ वैसा ही एंटी को दे एनिग्मा को जैसा फर्स्ट हाफ में उनको मिला था, बट द अटेम्प्ट्स दे आर ऑल इन वेन. 11 राउंड्स यहाँ पे आ चुके हैं टोटल एनिग्मा के हाथों में अभी तक, एंड आई थिंक विद द वे दे आर प्लेइंग मैच पॉइंट पे भी जल्दी ही पहुंच जाएंगे. Yeah, and at this rate, I'm honestly scared that जल्द ही end तक भी पहुंच जाएंगे the entire series, because
so far the close matchup we expected has not delivered. So far the thing that we expected, that both of the teams are going to be on the same page skill wise, we're likely going to see at least 38, 39 matches, not happening. Enigma dominating all the way through, and this might as well be match point right here, because this is a bonus round for Enigma. Even if EXO win this and get damaged too much on their economy, it's over. जी हाँ, I mean, जैसा आपने बोला, अगर इकोनॉमी में भी बात आ जाती है तो वहाँ पे भी ये गेम, ये मैप ऑलरेडी खत्म हो सकता है. लेकिन चलिए, एक शुरुआती ट्रेड देखने को मिला है, बट दैट्स नॉट गोना मैटर. एनिग्मा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल. देखिए सी लॉन्ग के स्पीड से यहाँ पे पुश किया है एंटीट्रोड और उनके टीममेट ने, वाइल साई ऑन द अदर साइड इज जस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन. एचपीज बहुत ही ज़्यादा कम, बट वैंडल है हाथों में तो शायद उसका एडवांटेज मिल सके. एंटीडोट स्पॉटेड आउट. हिक्का ऑल्सो पोजीशन इनकी भी रिवील हो चुकी है. एक्सकैली अकेले ये बैक लाइन से जो बैक स्टैब आ रहा है इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और अलॉन्ग विद दैट स्पाइक भी उन्हीं के पास है. स्पाइक इज विद द प्लेयर्स ऑफ एनिग्मा नाउ. Yeah, I understand Antidote's calls now. He's like, I know you guys are gonna steal my top frag position if I wait in one side, so I'm W. मैं बस W दबा रहा हूँ, मैं आके मारूंगा, तुम लोग को किल शराज नहीं दूंगा. It's exactly वही होता हुआ. 3v2 situation. We were talking about if EXO win and damage happens. Forget the if. Enigma able to secure this bonus round itself. Blackhawk in an impossible situation. There's no way out of this. His location is not known. His position is not known. Sure. But with Bear, I think he has just 20 HP or so. It's going to be next to impossible. I mean, impossible already हो चुका है. Spike देखिए. Spike is with the players of Enigma again. Excali ने किसी तरह से कोशिश की थी Spike उठाया, dash करके निकले, but जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी उनके पास. 10 seconds एक बार फिर से Spike drop हुआ, and जैसा आपने mention किया, Blackhawk, this round was already over the minute Excali was taken out, और उसके बाद बस एक ही option बचता है उनके पास, save the weapon, save the gun. Save the date होता है, but यहाँ पे save the gun चलता है. But they save the weapon, certainly, but I'm not sure if they will be able to save their map itself right here. Because boy oh boy, Enigma have been on another level, and I have to wonder if this is possibly the influence of Vibe, right? Just the dominance they're showing. Of course, nothing to take away from Enigma, specifically Antidote has been performing amazingly, but the confidence and the decisiveness with which they're coming in, they know what they're doing. They have a game plan and they're executing it to perfection. Of course, their game plan has just become W karo. The other team doesn't have any confidence. They are going to die. I think जैसा हमने YB की बात mention करी, I think हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो as a team को help करते हैं. But I think much more important than that, role that he plays in the team as a coach. ये बातें मैंने पिछले उनके under जो players रहे उनसे सुनी है. He focuses on individual growth and mental health as well of the players. और वो चीज़ हम हमेशा से discuss करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा important होती है. But Indian e-sports scene में थोड़ी सी ज़्यादा backfoot पे रहती है the mental health aspects की players को काम करना है. मैच से पहले players के दिमाग में clear picture set करनी है कि हमारा expectation ये है, ये रिजल्ट हमको चाहिए और इस तरह से हम इसे अचीव करेंगे. वो सारे डायरेक्टिव्स बहुत क्लियरली लेआउट करके रखना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो होता है टीम के ऊपर से हटा देता है. एंड द टीम इज फ्री टू प्ले इनसाइड द गेम. और अभी हमें खुली हुई एनिग्मा हमारे सामने देख रहे हैं, विच इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. एंटीडोट एक बार फिर से ओपनिंग ढूंढते हुए, आरबीके एंड रेक्सी सपोर्टिंग हिम क्वाइट नाइसली. रेक्सी डूइंग अ फिनोमिनल जॉब जस्ट एंकरिंग डाउन दिस ए साइड. और देखते ही देखते ये जो 13वां राउंड है उसमें अकेले टीम एक्सो के आखिरी बचे हुए प्लेयर विम्प यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से एनिग्मा को शट डाउन करने की. ही इज गोना फाइंड वन, बट द फाइनल से will be in the hands of Antidote and Team Enigma, जो पहला मैप हेवन अपना ही पिक जीत के ले जाते हैं एक बहुत ही अच्छी स्कोर लाइन के साथ. Absolutely, an insane performance by Enigma Gaming. 13-3 on map 1. Definitely their map choice, but still the scoreline itself, to be able to achieve that, it is a fantabulous, honestly, just a fantabulous experience throughout. And I have to say, like you said, the freedom point, right? Yeah. You can see that in Antidote. Top fragger Astra. Yeah. Exactly. And I think Blotter will agree with me on this. This is the Antidote we were used to seeing 2 साल पहले. बिल्कुल. I will completely agree with that. But अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हो रही है यहाँ पे Enigma की तरफ से, right? I mean, yes, you can talk about that. Yes, this was their pick, so of course they had to deliver. But deliver in style, deliver with momentum, deliver with such immaculate results. 13-3 final result यहाँ पे आते हैं, of course, towards Enigma's side. A beautiful game being showcased from there, and the communication on their front was just so, unparalleled to any other. On the other front, Team EXO, they were just completely blocked and choked through and through.
I mean, to be fair, I think हेवन का पिक था, तो I think वहाँ पे जैसे हमने पहले बात करी थी कि टीम्स काफी अच्छे से प्रिपेयर करती हैं इस मैप को, तो उसी चीज के चलते एनिग्मा ने अपना एक स्ट्रॉन्ग पिक उठाया, परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग दिया उन्होंने. अब एक्सो के ऊपर बात आ जाती है कि अगला जो पिक है वो उनका होने वाला है. दे नीड टू डू द सेम थिंग, दे नीड टू रिटर्न, लाइक उनको रिटर्न भी काइंड में ही देना होगा यहाँ पे. और अगर वैसी चीज नहीं कर पाते तो एनिग्मा कहीं ना कहीं आने वाले कुछ मैप्स पे थोड़ा और कंफर्टेबल फील करेगी अगर क्लोज भी जाता है तो. बट एक्सो दे नीड टू फाइंड एन ओपनिंग राइट नाउ अगले मैप पिक पर ही. Absolutely. Another point that I wanted to discuss with you guys is that while watching the game itself, it felt almost as if the communication on part of EXO was just so very much lacking on the other front. When it came down to Enigma, they knew exactly what they were setting up for, and they were waiting with their crosshairs completely lined up and precisely set up for. They knew that their opponent is going to be coming through across from that exact angle, and that is something that, again, I mean, it's like getting into the opponent's head. And EXO वहीं पे कहीं ना कहीं choke हो गई बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से. Would you agree? Definitely. I think, like Johnny also said, what YB brings to the team is mental strength, right? And what we often don't realize is that in communications, that mental strength matters a lot. Big time. How you're giving a call, for example, if you just got one tapped by a random Astra walking in, you could say, hey, Astra, admit, or you could be like, भाई ये गलत मार दिया मुझे. That 2 seconds will change the entire game. Definitely. With that, of course, the first game coming to an end in this BO5 series, यहाँ पे grand finals of TEGC 2021, where 13-3 का scorecard आता हुआ against Team EXO. Enigma Gaming leading the charts with, of course, Antidote right there with, I mean, just phenomenal play from this team, man. I mean, वो भी Astra के ऊपर going 25 and 6 deaths and just 2 assists. I mean, हमको ये देखना होगा कि इनके यूटिलिटी यूजेज कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट भी था इस गेम के अंदर. सो इट वाजंट जस्ट हिम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइंस बट डूइंग द एस्ट्रा पार्ट ऑफ द गेम एज वेल. एंड इस चीज़ के लिए मैं गेम को ब्लेम करूंगा कि हमारे जो एंटीडोट थे वो हमसे छिन गए थे, बट नाउ ही इज कमिंग बैक इन फॉर्म. डजंट मैटर व्हाट एजेंट ही प्लेज, ही इज स्टिल गोना पॉप दोस हेड्स. और जैसी कम्युनिकेशन की बात सीए ने करी अभी, टू बी फेयर, आई मीन एक्सो इज एन एक्सपीरियंस टीम, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत जोर की पड़ी है. वो चीज़ हमको ऐसे कंपेटिटिव प्लेयर्स के ना, हाई टियर प्लेयर्स के, चाहे कॉम्स में वो बात नजर ना आए बट उनके एक्शंस में क्लियरली दिखती है व्हेन दे स्टार्ट ओवर अग्रेसिंग इनटू सर्टेन पोजीशंस. और वो चीज और ज्यादा आपके आने वाले राउंड्स को हैम्पर करती है. But then again, I mean, this is just the start, right? अभी तो सिर्फ एक गेम हुआ है. We are getting too dissecting right now for the gameplay that was showcased on the side of EXO, right? I mean, it's absolutely fair and square. It's a BO5 series, लेकिन उसके साथ-साथ यहाँ पे हमारा first game, of course, खत्म होता हुआ. But alongside all of that, as we move on across, ये है TEGC का 8th edition 2021, and it's all thanks to these wonderful brands. And brands की अगर बात करें, so let's discuss a couple of them. I mean, starting right off the bat, यहाँ पे graphic आ जाना चाहिए, which is going to be the Predator Helios. And this is an incredible monster that you need to have at your desktop, and it is just the perfect thing because it'll give you RTX, well, 20 plus. Along with that, you will get i7 10th gen, and you will get some perfect stats, which is of course going to be, well, those hertz, the screen, 144 hertz की screen यहाँ पे आपको इसके साथ में मिलती है. But that's not it. Yes, आपके पास में लैपटॉप आ गया, लेकिन उसके साथ में आपको of course, I mean, लैपटॉप पे गेमिंग करना, you know, the keyboards, you need another keyboard altogether, right? And that is where XPG का यहाँ पे summoner keyboard comes in, and this is a beauty all by itself. 100% anti-ghosting इसके अंदर available है, along with of course RX Cherry Red as well as blue keys, along with 7 RGB color जो आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं. Different modes जो भी आपको comfortable लगे आप वैसे सेटअप करिए, because it is after all in the end you being comfortable when you're sitting down on your desk to get into that gaming zone. Along with that, now as we move on through, XPG का समर आपने कीबोर्ड ले लिया, आपके पास लैपटॉप आ गया, उसको भी और टॉप करते हैं, उसको भी टॉप करते हैं ROG Flow 13 से, because this laptop is a behemoth, it's a monster, it's a beast. and जब भी आप लैपटॉप की बात करें, it's always about, यार ठीक है मैंने लैपटॉप तो ले लिया, लेकिन उसके ऊपर charging, you know, it's always about gaming on a laptop, it's always about charging. This thing delivers 50% in just 30 minutes. In just 30 minutes, आपका लैपटॉप 50% चार्ज हो जाएगा. This itself is a huge undertaking, and उसके साथ साथ this laptop can convert it into a tablet. So आप आराम से उसको फोल्ड करिए and just relax with the entire being. And उसी के साथ साथ यहाँ पे हम जाते हुए थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक की तरफ, उसके बाद में of course we'll continue with our BO5 series.
Fast. Fluid. Flexible. Flow. Hello and welcome back once again to Taiwan Excellence Gaming Cup 2021 8th edition. यहाँ पे हम ग्रैंड फाइनल्स की तरफ बढ़ते हुए एक गेम खत्म हो चुका है हमारा BO5 सीरीज के अंदर इन द Valorant segment and उसी के साथ let's move on through to the next game. उसी के साथ of course let's cue in our casters and analysts. It's going to be Super Johnny and Say to take us through these games. First game done. Yeah. काफी dominating game रहा from Enigma, but now it is time for the comeback. The comeback story from EXO better be strong. अगर नहीं होता तो मजा नहीं आएगा आज के दिन में बिल्कुल. I have to say and क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था चाहे कोई भी टीम जीते हम चाहेंगे कि 3-2 का स्कोर लाइन हमको देखने को मिले. That way the matches are going to be very very fun to watch. लेकिन मजा तो अभी भी आया पहले गेम में. आपने इतने अच्छे लैपटॉप्स की बात करी है. I think I might just take one today. Well. Again, I mean, we'll keep on conversing about that because यहाँ पे मेरे सामने G66 है, and this is another wonderful beast जो 240 hertz देता है again, so compared to the 144 hertz. And again, I mean, you know, it's all about the class. It's all about what you are comfortable with. जैसे हम agents की बात करते हैं, right? This is another conversation that we had yesterday as well. Yeah. Every single player will move on from one agent to the other until they find the best one that they're comfortable with. Exactly. And वो comfort level होना बहुत जरूरी है आपके products के साथ में, आपकी game के साथ में, and आपके agent selection के साथ में. Exactly. I mean, जब आप comfortable feel करते हैं, आप अपना optimal performance deliver करते हैं, and that thing, I think अब इस time पे अगर players की बात करें, जो agents ये लोग खेलते हुए आ रहे हैं इतने लंबे अरसे से, उन पे तो definitely काफी ज़्यादा comfortable feel कर रहे हैं. It's just the change in timings of stuff that happens, जो वहाँ पे थोड़ा सा off throw कर सकता है, और उस चीज़ के लिए communication, it needs to be on point. Precisely, and that is something that I definitely saw lacking from Team EXO's side in the first game. But once again, I mean, nothing taken away from that because it's a BO5 series. तो अभी तो दिन का शुरुआत हुआ है, सिर्फ पहला game हुआ है. It's just a warm up, so to say. But little too aggressive of a warm up is what I would say, because the 13-3 is a deciding game. You know, it's just not that comparable जैसे हम बात करना चाहेंगे. But again, it is nothing taken away from Team EXO's side because यहाँ पे side dreams and so many other talented players are definitely there. तो उनकी तरफ से हमें comeback देखने को जरूर मिल सकता है. But now let's move on to the map itself. Map अब यहाँ पे change होने वाला है. It is going to be Team EXO's pick. Yep. So उसके हिसाब से, what are your anticipations going to be from that team? I believe it is Ascent up next. Yes. So I have to say, if this goes the way of Enigma, I think it's going to be a quick 3-0 because map 3, which is Bind, is arguably EXO's weakest map among the 5. It's also arguably Enigma's best map among the 5. So this is crucial right here for EXO. It's do or die. I completely agree with this क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी मेंशन किया था ये बात कि अगर एक्सो को कुछ ना कुछ करके वापस आना है सीरीज में, they have to go with this win. अगर असेंट हाथ से चले गया, as CA said, चांसेस लग रहे हैं कि 3-0 हमको देखने को मिल सकता है. Along with that, I mean, अगर असेंट तक बात चले जाती है, if EXO get away with this one, 1-1 कर देते हैं यहाँ पे, 2-1 भी हो जाता है, चलिए असेंट पे आके, तो कोई दिक्कत नहीं. आपके पास फिर भी 2 ऑप्शंस और बचते हैं जहाँ पे बेसिकली डिसाइडर तक अगर किसी तरह EXO लेकर चले जाती है तो कॉइन टॉस होगा वहाँ पे. Anyone can take the decider. Absolutely, icebreaker के अंदर, I mean, it's just the perfect map for the decider itself, right? Icebreaker. But on the other front, again, अगर मैं predictions की बात करूँ, so based on just not the play that we saw right now, but throughout, अगर Team EXO की बात करें हम, throughout, what will your prediction be for their play on this map? Honestly, I'm a little terrified because the EXO I know, when they are scared, when they are backs against the wall, like Johnny said, you see the over-aggressive plays, you see unnecessary pushes. Last match, we saw none of that. They were scared, they were desperate, but they were almost resigned, like they gave up. More on that later, because right now it's time to jump right into the action where game number 2 of the BO5 is going to get started. Over to you, mate. Exactly. एक बार फिर से हम हमारे second map की तरफ बढ़ते हुए, एक बार फिर से नहीं, इस बार हम second map की तरफ बढ़ेंगे, एक बार फिर से game की तरफ बढ़ेंगे, and एक recap हमारे दर्शकों को देंगे कि पिछले map पे जो कि हमारा Haven का map pick किया था Enigma ने, EXO ने choose किया defending side पे start करने का,
मैप में बैक एंड फोर्थ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हुआ नहीं। वन साइडेड स्वीप यहाँ पे एनिग्मा की तरफ से हमको देखने को मिला। अब मैप 2 पे आए हैं, एसेंट जो कि एक्सो का पिक है, एनिग्मा स्टार्टिंग ऑफ ऑन द डिफेंडिंग साइड। कोशिश रहेगी किसी तरह से 7 से 8 राउंड यहाँ पे पिक करे। अगर उससे कम रहता है, अगर 7 राउंड से कम आते हैं, मान लीजिए 6 आए या 5 राउंड्स आए एनिग्मा के हाथ में, तो एक्सो के पास मैं बोलूंगा गोइंग इनटू द सेकंड हाफ दे विल हैव रियली नाइस प्रेशर। Absolutely, this first half is going to be crucial for both of these teams. Of course, EXO की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट एक इवन प्लेटफॉर्म के साथ वो सेकंड हाफ में जाए, so that then the power of Excali on Ascent can really come through. But immediately I will mention much more comfortable for EXO this map, not just map wise but agents wise too. Blackhawk back on his favored Astra on that controller, he can give a lot more support to the entire team rather than be focused around Excali alone. And the same goes for Ghost, like as compared to playing Astra, now on the Sky he can lean back into his duelist tendencies, use those power flashes like a Phoenix would, for example, with the way the Sky plays. So वो aggressiveness Ghost से शायद हम फिर से देखें। I agree. I mean, वो aggression अगर हमको देखने को मिलते तो मैं एक चीज चाहूंगा कि हमको पूरी एक्सो से साथ में देखने को मिले। लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि जैसा हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा अनकोऑर्डिनेटेड थे, तो वही है, एक्सकैली आगे जा रहे हैं, साए आगे जा रहे हैं, बाकी के प्लेयर्स विम्प जो हैं वो एक प्लेयर के साथ ही मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा वो पीछे रह के खेलना प्रेफर कर रहे थे। सेम विद ब्लैक हॉक। मैं चाहूंगा अगर एक्सो को एग्रो खेलना है, दे गो टुगेदर एज अ टीम। 1 2 3 you just start press W and surprise Enigma with a brutal push. लेकिन चलिए मैच बाद में स्टार्ट होगा, पहले ही टेक्निकल टाइम आउट आता होगा, cause online era, ladies and gentlemen. Yes, but like you said, right, this is exactly what I meant earlier too, कि I was scared because we didn't see that aggression from EXO in Haven. I was expecting वो domination जो चल रहा था, especially जो antidote गंदी तरीके से आगे बस walk in करके मार रहे थे. I thought after that surely EXO would just get angry, be like, nah, we can't let this happen to us, and start doing W gaming. But that never happened, and you have to wonder if EXO has that fear. We can't W into Enigma. They are going to expect it, but hold on the attack right now, pushing it already. That arcane sheriff skin looks so damn good, and it looks even better when Excali gets the first blood. Yeah, definitely looks really really nice. लेकिन चलिए देखते हैं EXO का, जैसे हम aggression की बात कर रहे थे, इस बार mid पे देखिए कितना ज़्यादा deep control आ चुका है EXO के पास, and it looks like कहीं ना कहीं वो B की तरफ रैप करना चाहेंगे, जहाँ पे B लॉबी पे 2 प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं। Ghost catching RVK completely off guard. कोई रिस्पांस नहीं है यहाँ पे एनिग्मा के पास अभी इन शुरुआती राउंड में। वेम्प देखिए टैरेट के साथ पोजीशन रिवील हो चुकी है, डैमेज काफी ज्यादा दिया है। रॉफील को उनके साथ हिक्का मौजूद है, दैट्स नॉट गोना मैटर। फर्स्ट रॉफील इज गोना बी टेकन आउट एंड देन यहाँ पे हिक्का को हंट डाउन किया जाएगा। बहुत ही ज्यादा क्लोज एंगल तक पहुंच चुके हैं अपनी क्लासिक के साथ, और यहाँ पे कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा राइट क्लिक करके फिनिश ऑफ करें इस आखिरी प्लेयर को, एंड देयर इट इज। पहला शुरुआती राउंड एक बार फिर से पिस्टल राउंड एक्सो के ही हाथ में। जैसे आपने बोला, once again in the hands of EXO, like we saw on map 1, but hopefully it will not repeat the same pattern in the sense that antidote will not just start popping off and ruin EXO's life. So we'll have to see in this next round if EXO can stabilize a little bit, try to find that a good anti-eco and create that bonus so that they can walk into that third round, which will be the bye round for Enigma, with a good semblance of economy. But right now, of course, back to the standard defaults, Ghost marking that A main angle, and this becomes a conditioning factor. Every single round you can see Ghost using that guiding light very aggressively to get information. At some point his teammates will join him. Right now what they think is Ghost is alone, we can push him, but that's where the conditioning factor comes in and when they move in. But right now mid control taken by EXO. Rofil in a very bad spot. Yeah, Rofil की position यहाँ पे काफी ज़्यादा खराब थी, but still finding Excali and another one. Not like this. उस frenzy के साथ 2 picks निकाले. What is happening? What is happening? 2 बार anti-eco. Yeah, exactly. Pehla anti-eco was anti-kahiko, but this is time it's raw fuel coming in. Hold on, Blackhawk wants to have a say in it, is able to pick up 2 kills back, and suddenly it looks like EXO will pull it back. That got scary for a second. Yeah, it definitely did get scary. अगर Blackhawk वहाँ पे down हो जाते हैं तो पूरा round चले जाता है एनिग्मा के हाथ में। लेकिन चलिए EXO भी किसी से कम नहीं है। हमें like we should never forget this is one of the best teams in the country. I mean top 5 for sure. और उसी चीज के चलते यहाँ पे they know how to deal with situations like these. Weapons थे, advantage को काफी अच्छे से इन्होंने utilize किया, and
Wimp just praying for the 3K in the very end. यहाँ पे क्लीन अप करेंगे अपनी टीम के लिए. 2-0 की शुरुआत उन्होंने काफी अच्छे से सिक्योर करी है, बट अब बारी आ चुकी है असली गेम के शुरू होने की. Because Enigma, they will have, well, something in their hands at least. Yeah. Of course, the buy round for Enigma. You're being so aggressive, gonna catch out Excali actually. Excali was the one who spotted him out first, but Rockfuel's reactions, I mean, I should not be surprised at this point, right? We've seen some insane flicks from this player, but I still get surprised, man. How is he able to pull off flicks like that? Well, I mean, अगर हमें पता होता तो हम भी वैसे ही मार रहे होते. But True. ये the simple answer, सालों की मेहनत और बहुत ही डेडिकेटेड प्रैक्टिस से आप ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं, which well we are too lazy for. Well, I did lots of talking practice, which is why I'm here. So Yeah, I mean that level of confidence requires you to be committed to a next level, and वो commitment यहाँ पे दोनों teams की तरफ से हमको देखने को मिली है, because the trade has already happened, but Antidote यहाँ पे shut down करेंगे EXO का कोई भी push होने से पहले ही, and it's down to a 3v4 situation. EXO के plan में हल्का सा switch up, short to A जाना चाहते हैं, but A side पे इनका इंतजार RVK और हिक्का हमें करते हुए नजर आ रहे हैं. Blinding light के साथ यहाँ पे players की position reveal की जाएगी, पहला pick निकाला जाएगा RVK के द्वारा, but he gets shut down. Sai and Blackhawk बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन डिस्प्ले करेंगे, साइट छीन लेंगे यहाँ पे एनिग्मा से, बट एंटीडोट अब रोटेट करते हुए आ चुके हैं. ए साइड पे स्पाइक प्लांट हो जाएगा, बट रीटेक क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज़ एचपी ऑन द टू प्लेयर्स इज वेरी लो, बट नॉट गोना हैपन. एंटी नॉट गोना हैपन. डिस्ट्रैक्टेड थे, जनरेटर की तरफ फोकस था, एंड साई इज लाइक रियलिटी चेक. yeah, and just again, small errors in decision making. I mean, I think the confidence for Enigma really playing into this, because you can see at that point in towards the A side, the flash and peek from Hika and RBK was perfect. They got the first kill, they dropped the spike carrier. That's where the call needs to come. RBK, come back. You don't need to take a second peek. We've dropped the spike carrier. We can play for time, wait for Antidote to come on the rotation. But I think he's feeling the confidence. He's like, keep them 13-3. I'm just going to go for the second kill. I think, yeah, I completely agree with that. कि कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह से बूस्ट हो रखा है, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सो अपने लिए यूज करिए. लुक एट दिस, रॉफिल एक बार फिर से काफी ज्यादा आगे रह के खेलने की कोशिश करते हुए, ही इज गोना बी टेकन आउट. एनिग्मा ने एक ट्रेड तो निकाला है विद आरवीके फाइंडिंग गोस्ट. विम्प एंटी को शट डाउन करते हुए 3 वर्सेस 4 नंबर्स जा चुके हैं एक्सो के फेवर में. एंड आई थिंक विद अगर यहाँ पे हमको वो सोवा का पिक भी देखने को मिलता है, वो बी साइड पूरी तरह से खोल दी जाएगी और वो एक्सो के ही कंट्रोल में आने वाली है. एक्सो जैसे हम बात कर रहे थे, they need to make sure कि ascent इनके ही हाथ में है. They are doing a phenomenal job of making that happen so far. Huge lead, and even in this round, it looks like they are set to take it all away. But they don't check a crucial corner. Rexy, you have a weapon, Rexy! You had a phantom in your hand. Did not change though. Blackhawk able to get the trade, and look at this, look at RVK's position though in the boathouse, so sneaky. Sai is not checked it just yet. Their attention completely on Hika. Hika trying to buy the time, he will get taken down, but RVK is still in that sneaky spot. They do check it eventually, and EXO with a 4-round win streak. Yeah. It's like they might dominate the way Enigma dominated them. Yeah, exactly. और Excali को देखिए कितना effortless दिखा रहा है, just sipping on a milkshake and getting those heads. I mean, बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे प्ले हमको एक्सो की तरफ से देखने को मिल रहा है. And why not? It is their map. They need to win this one. अगर सीरीज उनको कहीं ना कहीं अपने लेकर जानी है तो. एंड अब यहाँ पे एनिग्मा की तरफ से मैं वो देखना चाहता हूँ कि एक बारी थोड़ा सा कैश फ्लो उनका स्टेबल हो. अगर वाइज अच्छा है तो फिर क्या करते हुए हमको नजर आता है. आई थिंक दिस बिकम्स द राउंड टू मेक दैट हैपन. बहुत ही पिविटल एक इंपॉर्टेंट राउंड होगा. अगर जीत जाते तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में ये एक रिकवरेबल पोजीशन अपने लिए बना लेंगे. अगर नहीं आता है ये राउंड, फर्स्ट हाफ में कोई भी स्कोर लाइन हो, एक्सो का काम हो चुका है. Exactly. This round crucial, especially because of that operator. Rofuel Pay going for the peak right now, I believe. And he did not find it, so it's gonna back up. And because of that aggression that Enigma showed towards B main, they had to give up mid control. And with this mid control, Excali moving on further, and you can see the simple calls made by Enigma. Contest mid, leave B to Antidote, wo anchor karenge, and on the A side, hold the A side in the crossfire. Raw Fuel finds one shot, trying to survive the second, but
Excali able to find the trade. Still, Excali is stuck, and that trade worth it for raw fuel because the rest of Enigma now taking mid control back and taking it with success. जी हाँ, काफी ज्यादा सक्सेसफुल काउंटर पुश यहाँ पे एनिग्मा की तरफ से किया गया था, बट अभी चलिए देखते हैं एक्सो के 2 प्लेयर्स बचे हैं इन अ 2v3 और एनिग्मा का रीड ये है कि एक ही तरफ हैवी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, बट इट्स कंप्लीटली ऑफ. It's completely off. I think because of the numbers advantage, कोशिश यही है to and try lockdown and as well. retake the B side, but I think, like you said, the lockdown they do have, but maybe they've forgotten to notice that Wimp himself has it. Okay, now Wimp going for the proactive lockdown. This basically, I think, hands the round to the sides of Enigma because as long as they play it properly and together, they have the lockdown, they have the numbers advantage, they should just be able to trade. Yeah, I agree. I mean, lockdown से यहाँ पे plant किया गया है, plant करने के लिए use किया इन्होंने, टीम एक्सो वालों ने अपने lockdown का प्रयोग उस चीज़ के लिए किया. Enigma के पास lockdown बचा है, recon भी available होगा, and you have the Astra, तो काफी important हो जाता है. As long as RBK stays alive, this should be the round for Enigma. Yes, he does. Rex ने एक अच्छा trade निकाला, but Rexy को both shut down करेंगे. Now it's on RBK. Lockdown भी destroy कर दिया गया है. 2v1 situation. He's gonna find RBK as well, down to a 1v1. Seekers यहाँ पे use करे गए हैं. Anti के against. Anti gets distracted and goes for the 1v3 clutch. Impressive. This is what we were talking about. Exactly, and again, poor decision making from Enigma involving RBK again. There's no reason to push Ghost. The call needs to be made one way or another. Yeah. Right here, 3v1, as soon as Rexy dies, you know Ghost is in the first lane. Anti's just like, okay, I'm going to go for the flank, go for the defuse. RBK needs to just get the heck out of there. He cannot afford to die right there because since he dies, it gives Ghost space to come back into the space that RBK has, and he cannot get flanked by Antidote. Small decisions going wrong for Enigma and going perfectly right for EXO. Ghost with a huge clutch, and now Enigma with a huge lead. The operator gone from EXO with a huge lead. The operator gone from Enigma's hands. I mean, जैसी बात करिए, again the overconfidence playing an issue for Enigma in this map. EXO काफी अच्छे से, काफी cleanly उस चीज को exploit कर रही है. I think उनको भी realize हो गया कि ठीक है, आपको लग रहा है आप हमें हरा सकते हैं, try me. Try us guys. And EXO की तरफ से it was just impressive क्योंकि शुरुआत काफी खराब हुई थी. They lost a lot of bodies in the process, but जैसा आपने mention किया, the decision making playing a critical aspect. और यहाँ पे एक बार फिर से Enigma की तरफ से जो aggro pushes आ रहे हैं, desperate Hail Mary backfire करते हुए हमको नजर आ रही है. Down to a 2v5 situation. Numbers advantage again with team EXO. एक trade देखने को मिला है with Hika shutting down Ghost, जिन्होंने कुछ ही second पहले, in fact लिटरली 1 सेकंड पहले वहाँ पे एक पिक निकाला था अपनी टीम के लिए. नाउ इट्स डाउन टू 1v4. स्पाइक प्लांट हो चुका है. नॉट इनसेन, दिस इज द राउंड ऑफ 6-0. एन इनक्रेडिबल स्टार्ट फॉर टीम एक्सो. Team Ace to boot, like you said, Excali just sipping on that milkshake, having a good time. He's got the jet in the game and he's got the milkshake outside the game. I think that's my ideal combo as well. Yeah. So right now, Excali, he's just feeling himself. Unfortunately, does not want to share his milkshake with us. Maybe he turned off his camera. Like, oh, come on, Excali, sharing is caring. Well. I think वो आराम से enjoy करना चाहते हैं. He's like, let me enjoy this. This is आंख लगा रहे छीन लेंगे. Exactly. अचानक से बहुत अजीब टेस्ट कर रहा है. Like, are people watching me? Like, all right. But still, I mean, ठीक है, जैसा आपने mention किया, in game you are being hyper aggressive and काफी ज़्यादा brutal नजर आ रहा है. Real life में अंदर से बहुत ही calm है. And that's how it should be. जैसा आपने भी अभी कुछ इधर mention किया. But Enigma की तरफ से I think this is going to be very important कि यहाँ पे क्या switch ups दिखाते, because the first half is basically it's off to a not so good start. Yeah, a very poor start, and it really plays into EXO's hands because going into that second half on the defense, they're going to be so much more comfortable. These small decisions going against Enigma Gaming, they're going to become so much more obvious. But hold on, actually, Enigma's still able to get that operator through barely with the light shields. I don't think he's going to have much utility either. That's okay. It's all about that first shot. Raw Fuel needs to be picture perfect, and like, you have to remember the way this match is set up, the domination Enigma showed in the first half. If EXO is able to find a similar scoreline here, it would be perfectly balanced for us going into buy. Well, let's see. I mean, अब 4 ultimates यहाँ पे available है Enigma के पास to try and figure out a way to stop Team EXO.
रॉ फ्यूल एक काफ़ी एग्रो पोजीशन, वाइनरी की तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं, ऑपरेटर के साथ मिसेस द फर्स्ट शॉट, अब बहुत ज़्यादा प्रेशर एकदम से आएगा, तब ब्लाइंडिंग लाइट सेविंग हिज लाइफ and he falls back into the sun. That's the one and the only one time Rafi will be like, thank you for flashing me. Every other time, like, why did you flash me, bro? I would have killed him. Like, no, that is the one time. Thank you, brother. Thank you, Hika, very much. And we'll see if he is able to bounce back. Because right now, once again, this factor mid control that Enigma is taking. That EXO is taking for themselves is completely destroying Enigma's defense. They're not able to hold on. The proactive Killjoy ultimate from the side of RBK to just deny and delay entry into this B side. They tried to trade it with a Hunter's Fury, but not work out, and they get detained. Like, slight mistakes here by Sai. I'm not sure why the Hunter's Fury did not take down the lockdown. I mean, but still, it's not gonna matter. यहाँ पे अब जिस तरह से आगे पुश किया जा रहा है एक्सो के द्वारा, एनिग्मा ऑलरेडी फाइटिंग कंट्रोल ऑफ थिंग्स. 12 सेकंड यहाँ पे बचे. विम्प इन अ वेरी फॉरवर्ड पोजीशन. ब्लैक हॉक उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं. साइड क्लीन अप करने की कोशिश. रेक्सी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं बोट हाउस के अंदर. इज गोना फाइंड वन मोर. 3 सेकंड्स बस जिंदा बचना है, बस जिंदा बचना है यहाँ पे, एंड ही इज गोना टेक द राउंड अवे. टाइम पे यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं. ही इज लाइक, ठीक है आप लास्ट पिक ले लीजिए. इट डजंट मैटर टू अस, वी स्टिल गेट द राउंड. Yeah, they do get the round, but because they're all gone, their economy is still broken up, but they'll take it. At this point, the round itself is extremely important because it gets a win on board for their squad, and now opportunity to try and use this momentum once again. But a lot of individual mechanical mistakes from the side of EXO, not something we expect whatsoever. First of all, the Hunter's Fury missing entirely. Actually, no, scratch me. I was wrong. I believe it was Rexy's Hunter's Fury and not Sai. So rather the question becomes, why did Sai not use the Hunter's Fury to trade out the lockdown? And I wonder if he's going to use it aggressively rather in this round to try and find a pick. But once again, this is what I was talking about, Johnny. Every single time they only rely on an alarm bot to hold down mid, and EXO get mid control for free. एग्जैक्टली यहाँ पे मिड कंट्रोल तो एक्सो को मिल चुका है, लेकिन देखते हैं इसको यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे. एक्सकैली इस बार उतना एग्रो नहीं जाना चाहते. ही हैजंट heard anyone or seen anyone, तो थोड़ा सा पैरानॉइड रहने वाले, which is actually good. You want to be extra cautious. लेकिन अब देखिए ए लॉबी में क्योंकि काउंटर पुश इनको स्पॉट आउट हो चुका है, दे विल बी वेटिंग फॉर इट. बैकलाइंस पे हम देखते हैं दी स्काई हैज बीन लेफ्ट टुवर्ड्स ए लॉबी, बट वो भी अभी फॉल बैक कर रहे हैं. एंड क्योंकि यहाँ पे एनिग्मा ने काफी इन्फो कलेक्ट किया, दे नो द असॉल्ट ऑन बी इज कमिंग एनी टाइम. The recon immediately taken down. They now know there is someone in this market position. A gravity well and nano swarm as well. Excali gets one, immediately spots out the second, but it's actually Sai who secured the kill. But hold on, Lexi and Antidote fighting back. Sight has opened up for now, but in a 2v3, trying to retake against this lockdown are Antidote and Hika. An impossible situation in their hands, but hey, they pulled it off before. Let's see if they can do it. Let's see. Yes, जैसा आपने बोला, पहले तो पुल ऑफ किया है. इस बार थोड़ी सी आई थिंक यहाँ पे दिक्कत हो सकती है. मूविंग फॉरवर्ड नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. बट जैसा आपने एक और चीज़ पहले मेंशन करी थी, द इकोनॉमी इज नॉट गुड एट ऑल. तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे प्लेयर्स को सोचना पड़ेगा. एंड आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट इट सिंस दे आर फॉलिंग बैक. बच के निकलने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी एनिग्मा के प्लेयर्स के द्वारा. दे वांट टू सेव दोज वेपन्स दैट दे हैव इन देयर हैंड्स. एंड आई थिंक थोड़ा सा प्रायोरिटी की जा रही है गेम में आने वाले कुछ राउंड्स को. 6-1 की स्टार्ट हुई है, 7-1 का स्कोर लाइन होने वाला है इस गेम के अंदर. एंड एक्सो ऑफ टू अ ड्रीम स्टार्ट, हम काफ़ी देर से बोल रहे हैं, बट नाउ इट लुक्स लाइक कि पहले मैप पे एक अच्छा कंट्रोल एक्सो के पास ऑलरेडी आ चुका है. In this first EXO map, and they're just looking absolutely dominant, and it's exactly what we wanted from them, right? A statement here to be made from EXO. You know what, that first map was just a blip. It was a nuisance on this best of 5 series. We're gonna forget it, we're gonna put it on the back burners, and we're gonna move the heck on and get our issues sorted. And they've done all of that. Wimp leading from the charge this time, and I have to point out Blackhawk, right? This comfort we talked about in the Asian selection itself. Blackhawk on the Astra is not just about the kills for me, it's the assists. He has 6 assists already. You can see the support factor just working out perfectly from his end. Well, let's see. I mean, अभी तक तो सही काम कर रहा है जैसा आपने बताया, but आने वाले कुछ राउंड्स में भी
इसी तरह से अगर चलता रहे तो आई थिंक सेकेंड हाफ में जाते जाते एक्सो को उनको भी रियलाइज हो जाएगा कि चलिए बस फॉर्मेलिटी, अभी नीड टू जस्ट फिनिश अप दिस गेम, मैच पॉइंट लेना है, अगले मैप पे जाना है और वहाँ पे किसी तरह से सर्वाइव करना है एनिग्मा को, बिकॉज एज यू मेंशन बिफोर, बाइंड बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मैप ऑफ एनिग्मा, प्रेशर तो फील होगा ही, बट यहाँ पे हमको ट्रेल ब्लेजर्स का एक ट्रेड देखने को मिलता है दोनों स्काइज के बीच में, एंड हल्का सा जो एक हिट है टीम एक्सो की स्काई को पड़ता हुआ, बट इट्स नॉट गोना मैटर, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोजीशन रिवील हुई है, देयर ट्रेल ब्लेजर ऑन द अदर साइड, एंड आई डोंट थिंक वैल्यू उनको उतना ज़्यादा मिला है उस चीज़ का, एंड द कॉस्मिक डिवाइड इज गोना बी फाइनली पुट डाउन बाय एंटीडोट. दिस वाज द ओनली अल्टीमेट एनिग्मा हैड इन दिस राउंड, ऑलरेडी यूज कर लिया गया है. 40 seconds to go. एक्सो लेफ्ट विद 3 ultis, moving towards A. Look at Anti's positioning though. Even I got this the way spot. Hika is set up, 30 they're all seconds waiting left. for the flash to come in. They're all waiting for the anti-flash setup, but instead it's Hika's flash which gives them the information. Hika will get one, but Anti and Erofuel immediately spot it out, will leave Hika isolated. Ghost takes him out, and even though Enigma have the right idea, the execution very much lacking. Exo just decisive as heck. They're like, you know what, even if you know we're here, we're still going to kill them. एग्जैक्टली, आई मीन पता था आ रहे हैं बट फिर भी नहीं रोक पाए. वहाँ पे एंटीडोट को कितना ज़्यादा प्रेशर डाल के कंप्लीटली पेन डाउन कर दिया था उन सिंडर ब्लॉक्स के पीछे. हैड नोवेयर लेफ्ट टू गो, झुके झुके ही वहाँ पे फिनिश हो गए. गोस्ट, लुक एट हिम अंडर हेवन, HP बहुत ज़्यादा कम है बट साई कॉन्स्टेंटली रीपीक कर करके जो बर्स्ट दिए जा रहे हैं, दैट इज व्हाट्स कीपिंग RVK इन चेक, एंड RVK ही इज नॉट गोइंग टू ट्राई दीज गाइज एट दिस पॉइंट. आई मीन कोशिश भी नहीं करेंगे, जस्ट वांट्स टू स्टे बैक. थोड़े एग्जिट्स आ जाते तो ठीक है, वरना यहाँ पे रीटेक इम्पॉसिबल है उनके लिए करना. 7-1 था, देयर इज वन एग्जिट. एक 8-1 का स्कोर लाइन हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे, विद एक्सो जस्ट लीडिंग द चार्ज ऑफ दिस गेम क्वाइट नाइसली. ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं और आई मीन एक डीजल इंजन की तरह बहुत ही तेजी से स्पीड बिल्ड अप कर रहे हैं. Right, but as we talked about right here, Anti's position just pre-fired. They almost know for sure that they're going to be waiting behind that cosmic divide, and that's the fact. Like, both of the teams seem to read each other very well, so it comes down to just purely execution. And so far, execution from EXO has been nothing like what it was in map 1. They have been phenomenal. And look at this, an aggressive rush ready to come in. It's the judge for Excali with the Blade Storm as well, and it will mean he's just going to go boom boom bam bam. I mean, yeah, बहुत ही सारा हमको वो शॉट्स नजर आने वाले हैं, एंड इट्स द ब्लेड स्टॉर्म दैट एक्चुअली स्टार्ट्स थिंग्स ऑफ. रॉफ्यूल को पिक किया जाता है, एंटीडोट गेटिंग टेकन आउट ट्रेड लेने के चक्कर में. रेक्सी इज गोना फाइंड 2 more. विम्प एंड गोस्ट गेटिंग शट डाउन. अभी 3 प्लेयर्स के साथ एक्सो पुश कर रही है बी साइड की तरफ. एक्सकैली जज से शुरू किया था, अपग्रेड आ चुका है ऑलरेडी, बट एनिग्मा ये रीटेक करना बहुत मुश्किल होगा. दे हैव टू deal with the 3 players on site, especially B side बहुत ही ज़्यादा छोटी रहती है, तो it's definitely a troublesome situation for them. आउलड्रोन के साथ हम positions clear up करने की कोशिश धीरे धीरे करके एनिग्मा के players close in तो कर रहे हैं, but I don't think this retake is going to happen. Hunter's Fury though from Rexy spots out Sai, takes him down real low, but Sai is like, you know what, I've got one of my own, and I am the true Hunter, pushing through, not able to find much damage. Instead, Hika will find one. RVK's turret helps him out, and it will mean Enigma secure this round. The turret really coming in clutch. If it had not taken down that player right there, I feel like maybe the round would not have gone the way it seemed to, and just a simple thing helping out Enigma a lot, because even now at 8-2, I will say yes, definitely EXO are in a favorable position. The ball is in their court, but if it ends at 8-4, it gives room for a comeback for Enigma. Exactly, अगर 8-4 होता है तो वहाँ पे कमबैक का रूम रहता है, बट इवन इफ इट्स अ 9-3 थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट पॉसिबिलिटी रह सकती है. इफ इट्स अ 10-2 though, then it's done. Why this round once again important, because that eco is still broken from Enigma Gaming. A couple specters also Rocky'll to make sure he keeps this operator, and so far not so great impact from this operator. Not been able to find the form that we expect from him. So we'll have to see. Keeps going for the B main peak and not able to get much value. And I have to wonder, given the number of times EXO are taking mid control, would it be more valuable to maybe position an operator for that mid contest itself? I think so, yeah.
बट प्रॉब्लम ये होती है कि विद हाउ टीम एक्सो और पुशिंग मिड्स इट नेवर जस्ट वन गाय. तो मिड पे अगर आप ऑपरेटर के साथ अपने आप को पोजीशन करते हैं, आपके साथ आपके टीममेट्स भी रहेंगे, एंड दैट मींस बाकी पोजीशन पे आपके डिफेंसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट एक्सो इज ट्राइंग टू डील, एनिग्मा इज ट्राइंग टू डील विद राइट नाउ. बट जैसा आपने मेंशन किया था, इस ऑपरेटर का इम्पैक्ट हमको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिल रहा है. जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं. अगेन रॉफ्यूल गेटिंग शट डाउन ऑन बी मेन. अब यहाँ पे कभी की पोजीशन को पुश करने की कोशिश की जा रही है. पॉपडॉग की तरफ से प्लेयर्स आगे मूव कर रहे हैं. एक्सो दे हैव द एडवांटेज. सीधा ए साइड देखिए क्लीन अप हो चुकी है. जब बी पे इन्होंने और मिड पे प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड किया, ए कंप्लीटली पुश कर चुके हैं डाउन टू 1v3 सिचुएशन. And Rexy, the last player surviving, is going to be finished off as well. 9 rounds एक्सो अपने लिए ले चुकी है अपने खाते में. You can see the smile on Vim's face. वो बोल रहे हैं like bro ये jet फिर से आ रही है, फिर से मार खा रही है, फिर से जा रही है. And okay, I'll take the free kills. You know, you can see it on the map as well. Again and again, Vim able to shut down Rafuel. And I have to start wondering, like when I am having a poor game, when my shots are not landing, my basic instinct immediately is like, you know what, I'm going to go try to find the bottom fragger. I'm going to go try to find some confidence for myself. But instead, Rafuel keeps peeking into Wimp, and look at Wimp's frags right now. 15-5, he's having a pop-off game. I'm not sure if that's the player you want to challenge, especially because now Excali himself has got the operator. But Anti with the Sheriff shot, this started a roll last game. Will it start it again? I mean, hope so. But Black Hawk ko dekhiye, he's like, I know you guys will come. Yeah. I know कि आप आने वाले हैं. He's just waiting quite patiently. 4v4 numbers. And it's going to be very important and very critical कि Enigma they make this happen. एक ultimate, एक lockdown अभी भी available है. First half का आखिरी round चल रहा है. 1 minute to go on the clock. एक्सो reposition अपने आप को करती है. For that A execute. And they have to pace this quite nicely as well, क्योंकि अब आप quick execute के लिए नहीं जा सकते क्योंकि spike बहुत ज़्यादा पीछे है. You have to slowly clean and move in towards that side. But क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा noise मचाया है, look at what's happened at B. इनको लग रहा है कि वहाँ पे अभी भी players होंगे, but there is no one there. It's the A side where the entire Enigma squad is positioned. 30 seconds left. The call from Enigma was like, hey. Sorry, the call from EXO ki like, hey, drones karte B ki taraf, they'll get faked and then we'll go back to A. But there was nobody in B to get faked. They did not even know that they drove there. Enigma's players just holding on to this one side because they were not with the greatest of weapons, trying to stay together in the buddy system. But still, 1v1, the time is running out. Rexy with the shock dart trying to buy exactly that. And now, Sai, he's forced to plant. Rexy needs to stop this right now, but he's not going to go for it. And with a stinger against the Vandal, it's going to be a very impossible situation because you can see Sai ducking and weaving, ducking and dodging, but Rexy still finds the headshot, and Sai not able to pull it out. The sigh of relief from the side of Enigma Gaming players as Sai goes just trying to channel his inner Muhammad Ali, just trying to move like a butterfly and sting like a bee, but ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए. Rexy थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने में कामयाब रहे. एंड आई थिंक जो ये 9-3 का अब हमको स्वैप देखने को मिल रहा है, लेट्स सी कि एनिग्मा सेकंड हाफ में किस तरह से डिलीवर करती है. पहली चीज़ पहले पिस्टल गया, गेम गया. It's all about this first round right here. Because another reason, right, that operator. Because if you lose that pistol, 100% Excali anti-eco में save करके वो तीसरे round पे operator के लिए कोशिश करने वाले हैं. So we'll have to see how strong can Enigma be from the get-go. Can they replicate the success that EXO themselves found with those first 3 rounds? They won the pistol. They almost won the anti-eco, but after that it was very convincing from the buy onwards. So yeah, now the pressure on Enigma and Excali with that arcane. Sheriff trying to land some shots, but it's not going to happen. And from the side of Enigma, a very simple approach, trying to heavy stack this B side, but it might be disastrous, Johnny, because that's where 3 players of EXO right now playing. Enigma walking into a trap. Well, they might be. But they back off. Here. Right in the nick of time, I think उनको भी realize हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है. Everything was too quiet, just like in a horror movie, and they were like, ठीक है, we'll try and reposition. इस बारी mid to A यहाँ पे हमको move करते हुए नजर आ रहे हैं, धीरे-धीरे करके, but they
have to think about the time as well. 50 सेकंड इनके पास बचे हैं. Side control clean up करने में आपको थोड़ा सा time लगेगा, and then the players need to rotate as well. 3 players अभी भी B की तरफ position. There is no one at mid. 2 players A side hold करने की कोशिश कर रहे हैं, and with the players जो noise मचा रहे हैं यहाँ पे A lobby की तरफ, I think एक्सो को रियलाइज हो चुका है कि बी पे ही बी लॉबी में शोर मचाया जा रहा था. एक्सो को रियलाइज हो चुका है कि बी की तरफ एग्जीक्यूट होगा, बट रॉ फ्यूल विद द बैक स्टैब. ओह, अगर साई पिक हो जाते राउंड निकल सकता था, बट विद साई बीइंग शट डाउन, साई गेटिंग द शट डाउन, एक्सो यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन इस पिस्टल राउंड में अपने लिए ऑलरेडी बना चुकी है. दैट वन पिक जस्ट चेंज एवरीथिंग इन दिस गेम. रेक्सी ने ट्रेड तो निकाला है ब्लैक हॉक का, बट द टीम इज हियर. एक क्विक रोटेशन एक्सो की तरफ से हमें देखने को मिला है. 4v4 में ब्लाइंडिंग लाइट डाला जाएगा और फिर साइड में पुश करने की कोशिश. वेम फाइंडिंग आरवीके, अभी भी 2 प्लेयर्स बचे हैं. साई फाइंडिंग हिक्का आउट ऑफ नोवेयर, एंड साई एंड एक्सकैली विल बी द वंस टू टेक अवे द राउंड फ्रॉम एनिग्मा गेमिंग. Yeah, the plant wasn't even done, so they won't even get the plant money. EXO winning the pistol, and likely with that the entire map itself, because at this point they are in perfect control of their situation. And I mean, again, go for Enigma. I have to say one thing though. I mean, Sai ke cam se we can't see his face, but वहाँ पे Blackhawk के cam से it was clearly visible. Like he has this habit of cheering up his teammates with one of his many war cries. कुछ ना कुछ एक line वो बोलते हैं कि let's go guys, चलो जीतते हैं, ऐसा कुछ चलता है. And after that there's a very evil smirk on his face कि I'm about to destroy these guys. It's like Vegeta smiling before he whoops up as a villain's ass. Bomb grenade out. Look at this. Goku for that Vegeta can be found in Enigma Gaming right now, because otherwise the whole team is Goku. Huh? The whole team is Goku. Then they need a Kakarot, I guess. I mean, it's the same guy, I know, but they need the Super Saiyan Goku, you know, the Kakarot as in like the powerful person right here, because right now it looks like Goku with what is that? The angel thing on his head where he's dead. Oh, I mean, he was pretty strong as well. Afterwards, right? Yeah. After that fat guy gave him powers. But hey, back to the game of Valorant, because right now, again, Enigma trying to fight back, but try is all they can do, because look at their position. They are on the attack, Johnny. May I remind you? But they are on heaven. Antidote's got himself a Spectre and trying to push forward. It's a 2v2. जी हाँ, I mean, साई अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करते कि एंटी को किसी तरह से पिक करे, बट उसी लालच के चक्कर में थोड़ा सा ऑफ गार्ड पकड़ेगा. ही गॉट टेकन आउट, बट कोई दिक्कत नहीं है. एक्सकैली पीछे से तैयार थे क्लीन अप करने के लिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डज. आई थिंक अब जिस तरह से एक्सो अपने आप को संभाले हुए, the way they are reading Enigma, it's looking very clean from this team. और हमने बात करी थी कि they need to return जो favor इनके ऊपर Enigma ने किया था हेवन के ऊपर, और well not so much of favor, वो यहाँ पे एक्सो रिटर्न कर रही है, because it's looking like a similar score line. It's 11-3 right now. अगर 2 rounds back to back जीत जाते 12-3 सेम स्कोर पे यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे, एंड उसके बाद फिर बाइंड किसी तरह से they have to make sure कि one sided ना रहे. If they give Enigma a close run, मैं ये नहीं कह रहा you have to win this, अगर जीत जाते तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर क्लोज भी फिनिश करने में कामयाब रहते हैं, मेंटल प्रेशर Enigma के ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे वो. Yeah, exactly. That mental pressure is what is going to decide which team really finds that momentum. Because right now, look at this, the buy round for Enigma, and they seem to be pushing back strong, but Sai has certain different intentions. Out only antidote though will mean that Enigma get a comfortable buy win, and it still smiles for Enigma Gaming. I do appreciate that, because it tells you that there is a positive team atmosphere, even though, to be frank, they're getting demolished. They still have the ability to tell each other, guys, we got this, we just gotta maintain consistency, we just gotta remain strong, and we gotta make EXO frustrated, because we know what happens when EXO gets frustrated. Yeah, I mean, I think अगर एक मैच के लिए फ्रस्ट्रेटेड रहे तो पूरा मैच उनका खराब जाता है. They need that small 5 मिनट का जो ब्रेक होता है गेम्स के बीच में, वो रीसेट करने के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है. And at that time I'm pretty sure Sai, Excali and everyone will just huddle up together and be like, ठीक है, कोई नहीं, हो गया, we'll move on to the next one, we'll try and win the next one. So wait, at that point they just focus on the bigger picture. एक मैप गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले पे देखते हैं, अपने पिच पे खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं, और वहाँ पे जीतना. He's talking about strengths already. Rexy able to find the first pick on none other than X-Can, the player who went for the op, but a glass cannon operator shield nahi thi, and इसीलिए एक free pick for Rexy. But immediately Sai will trade back. The Jets taken out by the Sovas,
but it is the true hunter from Enigma, Rexy, that comes out on top, and Sai just walking into a trap. Not so much of a hunter there, more of prey. Yeah, more of a prey क्योंकि anticipate उन्होंने नहीं किया था और उनकी ताक में जो थे Enigma के players बैठे थे. I think this round might be Enigma's because they have the advantage. Side पे भी already पहुंच चुके हैं. Hold करने की कोशिश करी Black Op ने, but instantly वहाँ पे Antidote की तरफ से काफी अच्छा trade आया था. Now it's down to a 1v3 situation जहाँ पे अकेले जो Killjoy है Team EXO के वो close in करने की कोशिश हमें करते हुए नजर तो आ रहे हैं, but I don't think it's gonna work out. Plus थोड़ा सा careful उनको भी रहना पड़ेगा. Can play for the exits. Wimp right now. Rexy and Antidote still on site. Yeah, this is going to be turning into an 11-5 और अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक्सो से momentum जो था वो छीन लिया गया है. Yeah, absolutely, because their economy is broken. Yeah. They have to go for an eco the next round. So effectively 11-6, and now is where the situation becomes where Enigma, they don't just have to, it's not like 11-6, they need to win 5 rounds. They actually just need to win 2 or 3 hard rounds where the buy is there for EXO. They win 1 round, they get 1 free round because of that economy situation, and that's where the comeback really starts weighing in on the other team. But having said that, right now, EXO at that 11 mark, all it takes is 1 round, get the match point, bring back that confidence and finish it off right here. So Enigma, they cannot let their foot off the pedal. They need to keep going and they need to make sure their momentum is strong. Okay, I was not expecting that, Johnny. Excali is going for a operator here, a hero operator kind of. The rest of his team, of course, going for the save. I mean, scary almost. Why not? उनके पास risk लेने की opportunity है. Scoreline में difference अभी भी 6 rounds का है, so they can gamble this one away. And वहीं पे वो gamble शायद pay off कर जाए क्योंकि Excali he finds raw fuel right off the bat. Mid पे aggressive गए, एक pick निकाला, fall back किया है. अगर दूसरा pick भी आ जाता है, तो I think EXO एक real opportunity वो अपने लिए create कर लेंगे of winning this position. But still it needs to be done extremely carefully क्योंकि mid पे pizzeria तक यहाँ पे counter push आ चुका है and Antidote is gonna find him like shooting him in the back. Quite brutal. Yeah, you could see 1 second के लिए Antidote got a little greedy as well. He's like, op, that's what I would run for. Like, no, calm. I'm the controller now. I don't need the off. And backing up, coming back to his team as they try to go for this A hit right here. The Trailblazer does not spot out Ghost on this Marshall. Does spot out a Black Hawk real quick. The Astra looking fine. But right here, Enigma with another comfortable round, and it will mean I'm not sure if Excali can afford that operator once again. Well, yeah, I think so too. I mean, अभी तो at least 2 से 3 rounds तक तो नहीं आने वाली, because going into glass maybe a glass cannon, but let's see. Economy wise, बाकी सारी team जो थी, they stuck with the pistols, so I think they'll still have a pretty decent buy, and all they need to do is just win 1 round. उनको 1 राउंड भी आ जाता है, मैच पॉइंट पहुंच जाएंगे. एंड एनिग्मा ऑन द अदर साइड, उनको फ्लॉलेस वैलोरेंट खेलनी है. छोटी सी गलती भी अगर होती है, एक्सो सीधा अभी भी वो फिनिश लाइन पे इनकी रेस चल रही है. एक्सो विल जस्ट गेट द फाइनल बूस्ट एंड क्रॉस द फिनिश लाइन फर्स्ट. Yeah, and you can see actually he would have been able to afford an operator with light shields, if I'm doing my math right. 20, 39, 5100. Yes, he had 5100 credits at the start of the round, so with light shields ke saath afford kar pate, but instead opting for the rifle itself, as the call has been made from EXO ki guys, I think we're peaking a little too much. I think we're giving them too much access and too much options, so let's back right up, let's hold, let's put the time pressure on them. Exactly, टाइम का प्रेशर यहाँ पे डालने की कोशिश की जाएगी. एंड आई थिंक समवन डिसाइडेड टू गो विद लाइट आर्मर एज वेल फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सो. आउटराउंड के साथ पोजीशंस क्लियर करने की कोशिश. एक प्लेयर स्पॉटेड आउट है. अगर क्लोज राइट में एक्सकैली पिक ऑफ हो जाते हैं तो यहाँ पे राउंड शायद निकल सकता है. स्टेप्स इनटू द नैनो स्वॉर्म अग्रेसिवली टू गेट द पिक. एक्सकैली, व्हाई? Oh, and just fine HP Excali. Like you said, why? Not sure, but he did escape with his life. So let's see, maybe it does work out. Because as you can see right now, even though the site is taken by Enigma, the spike nowhere near. So EXO is getting a lot of time to regroup, to reset, to get ready over here before going for the retake. But this Hunter's Fury, a second too early from Sai, it's not going to do any damage. Oh, almost caught RBK, but not enough at all. Imagine if this Hunter's Fury was there when they were retaking. Yeah, I mean, काफी ज़्यादा उस चीज़ का फायदा होता, but look at this. This is how you check a wall.
नाइस, आई लाइक दैट, क्योंकि ज्यादातर ये बहुत बार हमने होते हुए देखा है, एस्ट्रल वॉल आती है, लोग कोने में जाके बैठ जाते हैं, व्हेन यू ट्राई टू क्रॉस थ्रू आपको लगेगा आप दीवार में रन कर रहे हैं, आप तो साइड से निकलेंगे, वहां पे कोई प्लेयर बैठा होता है, वो शूट्स यू इन द फेस, चक्कू मार के पहले चेक किया एंड थोड़ा सा डैमेज पड़ा तो रॉफ्यूल जो थे बैक ऑफ कर गए, फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स हिलेरियस एंड नाइस मोमेंट टू वॉच, बट स्टिल एक्सो दे विल हैव टू बैक ऑफ at this point. Enigma just getting another round in their hands, 11-7. Yeah, but it's really important that they save 3 weapons because what we were talking about, the idea that if Enigma win 1 buy round, they get buy 1 get 1 free. You know, literally will not happen here because they've saved 1 weapon. Because they've saved 3 weapons, they will still be able to afford full buy for their entire team. So another opportunity for EXO, but Enigma, just the comeback is most definitely on. You can see the players with the smiles, and EXO not, of course, they did save the weapon, so they have somewhat of a buy here, but not a full buy. Ghost or Excali are going to have to play without a gun. It's likely going to be Excali because he has that Blade Storm. Actually, both of them. Hold on. Blackhawk had to buy shields. I thought he had the money, but he does not. So the 3 weapons saved, not actually giving much value. Well, let's see. I mean, unless Enigma just decide to run face first and do those guns. अगर वैसा कुछ नहीं होता तो एक्सो के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है, और मे बी द 3 players with the guns actually find some incredible picks. पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है. लेट्स सी, धीरे धीरे करके बी लॉबी यहाँ पे पुश करी जा रही है रॉफ्यूल के द्वारा, एंड ऑन द अदर साइड इट इज ब्लैक हॉक एंड हिज टीममेट वेटिंग फॉर हिम. ब्लैक हॉक एंड गोस्ट काफी ज्यादा पेशेंट और इंतजार कर रहा है, बट दूसरी तरफ स्पाइक जो है उसको ए साइड की तरफ लेकर जाया गया है, एंड विद सीकर्स बीइंग डिप्लॉयड, आई थिंक ये हल्का सा स्कैम करने की कोशिश एक्सो के प्लेयर्स को, और रोटेशन में काफी ज्यादा डिले हुआ क्योंकि वहां पे सीकर्स छोड़े गए थे. पुश बी साइड पे किया गया, बी अभी तक क्लीन अप नहीं हुआ है, साइड एक्सेस नहीं है, कंट्रोल नहीं है एनिग्मा के पास. Blackhawk trying to hold on for dear life. It's all about that Astra. उन्हें जितना जल्दी take down करे उतना बेहतर for Enigma Gaming right now, but they're unable to do so because they're just getting stopped right there. Inside now going to use Hika's position towards his A side to try and find the rotation, but Hika's been taken down by Excali, and it is absolute chaos because RVK now on the lurk pushing into this side. He's taken out Blackhawk and he's trying to buy time for his team. Rob, Excali coming in with the Blaze Storm, he misses everything, but Sai with the backup will take down Antidote. RVK is the hero though, creates the time and space for Rexy to plant and keeps Enigma alive in this map. RVK, for all the mistakes he made in the first half, this is redemption. एग्जैक्टली, रिडेम्पशन अपनी टीम के लिए निकाल दिया, बट अब विम्प को भी सेम चीज डिलीवर करनी होगी. ही हैज टू समहाउ फिगर आउट अ वे इस 1v2 में जीत हासिल करने की. अगर रेक्सी पिक ऑफ हुए, द राउंड विल बी इन द हैंड्स ऑफ टीम एक्सो. सो विम्प ऑल ही हैज टू डू इज रेक्सी को जितना परेशान हो सके करना है, बट दैट्स नॉट गोना हैपन. आरवीके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चीकी घूम के आते हैं, पीछे से गोलियां चलाते हैं. विम्प गोज डाउन एंड एनिग्मा दे गेट द राउंड. Yeah, you can see RVK ke chehre pe bhi just relief, utter relief. But that interaction right here, very important to talk about, because Ghost, he flashed deep into B. So it did not hit raw fuel, it did not give the call blinded jaise the Sky usually gets, which means he had no idea that raw fuel was right next to him. Gets picked off, and these small interactions very key because I think it happens only because Ghost is not familiar with Sky. The same thing for Hika, you can see he knows exactly where he wants to put his guiding lights, he knows exactly where he wants information from, and that small comfort factor may be helping out Enigma Gaming for now, but it's so damn close. The game is on a nice edge, and it could honestly go either way. Yeah, I agree. I mean, it could honestly go either way. दोनों में से किसी भी टीम के हिस्से में ये गेम जा सकता है. लेकिन चलिए, फिलहाल अगर बात करें टेक्निकल टाइम आउट, यहाँ पे एक और आता हुआ अगेन ऑनलाइन एरा, लेडीज एंड जेंटलमैन. बट आई थिंक चीज़ें जल्दी फिक्स की जाती है, एंड वी विल बी बैक इन द गेम एट एनी पॉइंट. अंटिल देन आई थिंक ये एक अच्छा ब्रीदिंग रूम हो सकता है एक्सो के लिए. इट गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक कि क्या अभी तक गलत हुआ है, क्योंकि टैक्टिकल टाइम आउट में यू जस्ट हैव अ मिनट एंड हाफ और समथिंग, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते. ये थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है. द डाउन साइड ऑफ अ टेक्निकल टाइम आउट इज यू नेवर नो, ऑल ऑफ अ सडन फिनिश हो जाता है अनलेस आपकी साइड से कुछ हो. बट स्टिल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस मिस्टेक्स, अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस की
एक राउंड में ऐसा क्या चीज ही स्टार्ट करे कि राउंड आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे एनिग्मा का फ्लो तोड़ दिया किसी तरह से, क्योंकि अभी तो चलिए लाइन से बैक टू बैक राउंड्स निकाले जा रही है एनिग्मा फ्लो में, अगर वो फ्लो टूट गया तो एक्सो के पास अपॉर्चुनिटी है मैच पॉइंट लेने की। अगर नहीं टूटा 3 राउंड का फर्क रह गया है। Yeah, absolutely, and I think it was Antidote and Hikka जिनका टेक्निकल इशू हो रहा था। Antidote has started moving, so hopefully Hikka भी जल्दी वापस आ जाएंगे and we can get back to that match. But as you said, that flow is so crucial. Either we have to see if Enigma Gaming is able to maintain that flow, or if even EXO is able to maintain a calm mind throughout this, you know, not let the panic build throughout the technical timeout, not let the negative thoughts like, bro, they are coming back. What happens if it becomes 11-11? Do we lose this? What happens if we lose this map? All these questions are unnecessary. And they should not be in your head whatsoever. And I expect that from the more experienced players like Sai, Wimp, or Excali even, but right now, Ghost is my biggest concern, where he started off this map very strong. So far in the second half, the impact has not necessarily been there, and he's the youngest player in that squad, definitely feeling that pressure. I mean, yeah, I agree. प्रेशर तो यहाँ पे फील हो ही रहा होगा, लेकिन चलिए देखते हैं उस प्रेशर के साथ डील किस तरह से किया जाता है। मैच के अंदर एक बारी फिर से हम जा चुके हैं। टीम एक्सो just trying to see if they can hold Enigma off. On the other side, though, mid control यहाँ पे आता हुआ Enigma के पास, and they're just running away with this. Defender spawn तक almost पहुंच चुके हैं Enigma के players, Raw Fuel और Antidote. और अगर वो backline का control आया तो sandwich यहाँ पे कर सकते हैं B side के ऊपर, but B side पे एक advantage है, आप पीछे रह के खेल सकते हैं. If you play the side and the boat house, you don't even need to see कि क्या lobby push हुआ है, क्या defender spawn से players आ रहे हैं, because 2 alleys आपको guard करनी है, and if you hit your shots correctly, you can do that. Plus abilities भी यहाँ पे players के पास रहेंगे to help that out, but switch up from Enigma heading to the A now. And a very timely trailblazer from EXO, giving them key information that nobody is at mid. Told Excali that hey, they're likely coming towards A. He's able to make the move and take out that Sky. Hikka is gone now, and suddenly Enigma under a lot of pressure. As you said, it's just that one round, it's just that one pick that can change the flow of the game entirely, change the tides and the momentum that the team has. But Raw Fuel, the tracking on this player knows exactly where Sai is going to move. Exactly. I mean, दीवार के पीछे छुप गए तो क्या हुआ? फिर भी आपको गोलियां लगेंगे, and Raw Fuel just delivering. But 14 seconds to go. They have to take control of the site and plant the spike at the same time. Antidote एक pick निकालेंगे. Raw Fuel clearing up the B side. Black Hawk को भी shut down किया जाएगा. But the spike is planted now. और अब यहाँ पे retake के लिए खेलने की कोशिश करेगी Team EXO, who are already almost on their way. Still waiting for Excali to pop his head. B main, B lobby यहाँ पे push करेंगे, where RVK is just guarding very close. Excali के लिए एक बहुत swift duel होगा, which he's not going to win. Wimp अब कोशिश करेंगे यहाँ से recover करने की. Turret place कर दिया गया. It's going to be destroyed. The Killjoys go face to face, where it's the Killjoy from EXO that comes out on top. Wimp getting the win. Lockdown का usage किया जाएगा for the retake. Raw Fuel still on full HP. Side पे अभी भी एक player. Antidote with just 2 HP stays behind. He's like, ठीक है, आ जाइए. That was not necessary at all, though. In a 2v1 situation, he did not have nearly enough time. Like, that was a purely, like, gamble. Gamble, yeah, but, like, overconfident even play. Like, Wimp, I get that he's the top fragger. I get that he's been playing it very well. But right now, in this situation, when it's 11-8, every single thing matters. And a big lockdown like that could change the pace of an entire round. Rather, now you can see they don't have any ultimates available. They're in a situation where their economy is broken. And Enigma most definitely will be able to bounce back. Oh my god. Add misery, add salt to the wounds. Raw Fuel is hitting blind shots as well now. I mean, flow की बात कर रही थी, and I think the players of Enigma are in the zone, लेकिन zone से खींच के बाहर निकालने का काम Excali ने अपने ऊपर ले लिया है, getting the trade right there. चलिए देखते हैं. Raw Fuel एक बारी फिर से काफी aggressively B lobby में थोड़ा हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे हैं कि hey guys look at me. दूसरी तरफ कुछ नहीं चल रहा, आपका सारा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए. But हरकत यहाँ पे ज़्यादा Enigma की तरफ से is happening towards the A lobby. 2 players already अपने आप को position कर रखा है और spike भी वहाँ पे लेकर जाया जा रहा है. Oh my. Sai with another huge shot. Will it be a thrifty that changes the game for EXO? We'll have to see, because now Enigma trying to take control of this A side. Wimp on the other
inside of the store trying to play for time. Xali Heaven से भी ले सकते हैं, but instead just going to wait it out for his team to try and retake with that numbers advantage, and this is where the lockdown is going to be key. Imagine if they had the lockdown here. Yeah. I mean, अब अगर लॉकडाउन होता तो और ज्यादा वैल्यू इस चीज का मिल सकता था, बट यहाँ पे जो लॉकडाउन यूज किया गया है, इट्स नॉट वर्किंग आउट एज दे थॉट इट वुड. एनिग्मा इन अ 1v2 सिचुएशन, बट फाइनली रिटेन यहाँ पे दोनों के दोनों प्लेयर्स हो चुके. इट्स हंटिंग सीजन फॉर एंटीडोट. साई को पहले पिक ऑफ करेंगे. गोस्ट अब लॉकडाउन हट चुका है, बट ही जस्ट हैज अ शेरिफ टू वर्क विद, और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी है. टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है. द क्लॉक इज टिकिंग. एंटी ने अपने आप को रिपोजिशन किया है हेल की पोजीशन पे. गोस्ट आगे मूव कर रहे हैं. And he's going to find antidote as well. Does he have enough time? I think he does. Diffuse यहाँ पे stick करने की कोशिश. And it's not going to happen. 0.9 seconds. Almost 8 seconds. Yeah. Anti understanding the audio cues from the spike as well. Like, I'm hiding, bro. And again, I'm sorry, but I have to like pile this on. If they had the lockdown, if they had Wim's lockdown there, I feel like the match itself is over. That match point, I feel, would have just put Enigma out of their momentum swing. Instead, Antidote is going to be like, boys, that was the closest ever. We got this. We can do this. And desperation from the side of EXO. Sai pulling out his operator. Xcali as well, a double op setup on the mid and A main parts of the map. If either of them dies, this is going to become a domino effect for EXO, a negative domino effect. Exactly. I mean, but जैसे हमने बात करी थी, साई की very well experienced player, and पहले भी स्नाइपर्स चलाने के लिए जाने माने जाते थे, तो वो पुराना एक्सपीरियंस अपना वापस से यूज करेंगे यहाँ पे. एंड ही इज डेफिनेटली समवन यू नीड टू वरी अबाउट, खासतौर से इस गेम के अंदर, वेयर ही इज जस्ट पुलिंग EXO along with him just one step at a time. Top frag कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, but let's see. Xcali once again on the mid, and Sai is actually the first one to go down. I mean, they give him the respect, right? They understand. Ya to Sai, Xcali is over there with the operator, so they flash, they use the gravity well. They invested a ton of utility, and it's worth it for them. Sai, the top fragger, as you mentioned, who's been really dragging EXO along, especially in this second half, he's gone. And it slowly feels like so is EXO's hopes, because remember, this is a double op round, heavy investment into this round. If they lose this, not only is it 11-11, but Enigma will be able to break their economy, take match point for themselves, secure the comeback, and I don't know, at that point it feels like done and dusted, because look at this, Xcali is down as well, the ops take, and now the experienced players as well, and suddenly EXO are collapsing, Johnny. Well, EXO just falling out left and right. Enigma पूरा exploit करेगी इस moment को. It's 10-11 now, और 11-11 का score line हमको होता हुआ नजर आएगा इस match के अंदर. What an amazing comeback from Enigma. EXO so close to getting the win, so close to walking away with the win on their own map. But अब ये game किसी का भी हो सकता है. किसी का भी हो जरूर सकता है, बट अभी के लिए I think एक मीम था, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए. Oh boy, unfortunately memes तो बहुत बनने वाले हैं ये सीरीज के बाद, वो guaranteed है, because right now EXO, they are, I mean, they're delivering themselves for it, right? The start that they had, the confidence with which they played, everything evaporated. एक और चीज है, it's still not over. match point अभी भी दोनों के लिए आना बाकी है. So you never know, EXO maybe last round जीत के they win this, or maybe they take this in the overtime or win this. But जब तक जीतते हैं तब तक ठीक है. EXO, they need to win this one way or the other. Yeah, exactly. And exactly, like you said, right? As long as that win comes on board, it does not matter what happened in the map itself. But if the win doesn't come on board, it very much matters what happened in the map, because Enigma will be thinking, well, oh, hi Heaven, bye Heaven. PTSD of Heaven. Yeah, exactly. Enigma will be thinking, well, we demolished them in our map. They can't finish us on their map. They can't do anything. We're just going to breeze through on this third map. It's not even like a fact or anything. It's just the confidence that Enigma players will have. And that's where EXO really need to bounce back. And a very, very interesting call made here. 2 players towards B, 2 players towards mid. A single player, just Blackhawk holding on to A. They're expecting a B hit, and the read is right by Sai. Yeah. I mean, read on point यहाँ पे साई की तरफ से.
बट दैट्स नॉट गोना मैटर. विम्प यहाँ पे सबसे पहला ओपनिंग पिक निकालते हुए अपनी टीम के लिए इंस्टेंटेनियस ट्रेड यहाँ पे आता हुआ एक्सकैली की तरफ से विद आरवीके बीइंग शट डाउन. हंटर्स फ्यूरी साई यूज करने की कोशिश करते हुए इट्स नॉट गोना कैच एनीवन, बट एनिग्मा के रेक्सी मौके का फायदा उठा के चौका मारते हुए यहाँ पे नजर आते हैं. 2 एक्सो के प्लेयर्स को और पिक कर लिया गया है. दे सिट एट अ डिसएडवांटेज. एक्सो एंड गोस्ट इज पुशिंग थ्रू द स्पोक्स. He will be taken off as well. यहाँ पे ऐसा लग रहा है एनिग्मा के पास एक हिट लिस्ट है और वो बस नाम टिक करे जा रहे हैं. एक एक करके पूरी टीम को फिनिश ऑफ किया गया. एंड नाउ इट इज एनिग्मा लेडीज एंड जेंटलमैन जो आ चुकी है इस गेम के अंदर मैच पॉइंट के ऊपर. Just looking like a 2-0 in a series so far, but ये BO5 series है, so they have to get the third as well. Yeah, and I mean, forget the factor that this is their map. Forget what happened in the first map. In general, in any best of 5, after such a dominating performance, if you're to lose, I feel like the morale is just completely gone. Yeah. But yeah, I'm sure like players like Sai and Excali will be able to bounce back. I know for a fact, as you mentioned too, Sai, he's a motivational leader. He's going to try his best to make his team reset even if they lose. But at this point, like what big difference will it make? We'll have to see, because this was the closest they'd come to just dominating, but unfortunately it looks like it has all collapsed. The economy in favor of Enigma, the confidence, the momentum, every single thing in favor of Enigma, and it looks like the control as well, because mid is completely empty. RVK is just waltzing in. Yeah, I mean RVK यहाँ पे मूव करने की कोशिश करते हुए रॉ फ्यूल के साथ ए लॉबी यहाँ पे पुश किया जा रहा है. दूसरी तरफ अगर बात करें तो एंड even though I think EXO realized कि एक ही तरफ यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा. Let's see if they can hold this off. It's going to be a very crucial round. अगर जीतते हैं ओवर टाइम, अगर हारे GG's. मैप 3 की तरफ जाना पड़ेगा. सीकर्स का इस्तेमाल नैनो स्वॉर्म के थ्रू यहाँ पे पुश रॉफील के द्वारा. साइड कंट्रोल मिल चुका है बट इट्स स्टिल नॉट क्लीन. साइड अभी भी क्लीन नहीं है. द बॉडीज आर स्टिल देयर बट एक्सकैली ब्लेड स्टॉर्म के साथ मूव करेंगे. रॉफील उन्हें शट डाउन करते हुए एंड ही ट्रिगर्स हिज ओन ब्लेड स्टॉर्म इन रिटर्न. Back and forth trades on the A side. Antidote discarding the door with his life. In the meanwhile, look at where RVK is. He's still on mid. Why? Fall back on the side. Spike plant हो चुका है. Post plant यहाँ पे खेलना है. कोई backstab नहीं कर रहा है. Pop dog पे एक player मौजूद है, but he has been picked off as well. No, Sai is still there in fact, and Sai is stuck towards that tree position in a 1v3. I think formality. Exactly. RVK's job was done. His job was to split the retakers apart, make sure that they don't get to go together, and give time to his team to get into those post-plant positions. Did that exactly. The win coming through for Enigma Gaming in an almost impossible situation, and you could see the claps as well. They deserve it, man. What a phenomenal performance. I mean, इतना अमेजिंग कमबैक, क्योंकि फर्स्ट हाफ में they just got absolutely destroyed, बट सेकंड हाफ के अंदर रिकवर काफी अच्छे से करा इन्होंने, एंड it definitely was a well hard fought win for Enigma. But EXO, now it makes you question कि everything was going right for them in the first half. It definitely was. And then again came in Enigma, I mean, completely obliterated EXO and the way it was played. I mean, one thing that I noticed was that EXO जो momentum उन्होंने start किया था, that momentum kept on rolling for them till the time they reached that 11 marker, right? लेकिन उसके बाद में Enigma just completely slowed the game down. They slowed the game down to such low pace that is when things became, worn down to 5 seconds remaining in the round, and that's when chaos started happening. But dudes, talk about a comeback. 11-3 say you get the game. Incredible play being showcased from this team, but GG of course being played with that BO5 के अंदर. दो गेम Enigma की तरफ जाते हुए, now the pressure is definitely going to be biting EXO. And it's going to be a lot of pressure because the next map is, as our genius analyst pointed out, the best map Enigma can play. Oof, okay, with that, of course, as we bring this game to an end, we do have the victors, who's going to be Enigma Gaming right here. Along with that, of course, I mean, आप लोगों ने कितनी बारी बताया, based on RVK's play so many times, I mean, on that B round, he was just phenomenal to be able to create that opening for Enigma Gaming again and again. I think more than the openings, his job was getting the second picks in towards those positions, क्योंकि हमेशा हम देखते थे it was Hikka and Rawfuel जो पहले चेक करने के जाते थे, hello, is anyone there? And RVK clean up crew की तरह आते थे, ठीक है, यहाँ से clean किया, यहाँ से pick किया, यहाँ से pick किया, and the entire team of Enigma would fall in. The same team EXO was doing, but they have Excali, they have Ghost, they have Side Dreams who
know how to connect those shots. So उनके लिए I mean especially with Sai and Excali जो synergy ये दोनों players अपने history में अपने साथ लेकर आते हैं, that sort of वो mental sync up जो रहता है, they don't even need to communicate, वो जानते हैं साथ वाला क्या करेगा. So it became a little bit easier, but वो defensive side पे I think जो momentum इनका shutdown किया गया था, it got them a little triggered. और वहाँ से जब भी वो हम guesswork की बात करते थे कि थोड़ा चीज करने की कोशिश करते थे, they got very close. कुछ points ऐसे थे जहाँ पे एक्सो almost round छीन के ले गई थी एनिग्मा से, but last moments पे थोड़ा सा 19-20 हुआ और एनिग्मा just walking away with those wins. Yeah, it's just small decisions that honestly in the start of the map Enigma was doing the small decisions wrong. RBK was making the mistakes, but this time RBK pulled it back. Well, with that we move on through with the BO5. Of course, though game done and dusted in favor of Enigma, of course, but right now as we move towards the third game, well, before rather we move towards the third game, this is of course TGC 2021 8th edition, and यहाँ पे इतनी सारी जो brands हैं जो of course they take part every single year, and this time around again it is no different. So उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ that in the link, or rather, well, there will be a link in the chat itself, Amazon store का, and that is going to take you all the way to, of course, Amazon store, where we have this phenomenal Zowie gaming monitor that's going to be available for you guys. A 240 hertz backlight. I mean, you talk about each and every detail that you want in a gaming lab. Monitor, and this thing will provide with, again, look at that, 0.5 millisecond response time. I mean, it's just endless. Black equalizing. I mean, pro scene में this is default. This is the standard. हम सबके पास है. I personally have one, and it's very fun to use. That's the best I can perform on. उसके अलावा I don't think I can like enjoy my experience. Dude, but you know what, Johnny? उसके साथ ही साथ there is another thing that is going to make things that much more crispier. Because again, ठीक है, आपके पास 240 hertz आ गए and you're doing pretty good with 0.5 milliseconds. लेकिन अगर आपका इंटरनेट काम का नहीं है, तो क्या फायदा हुआ गेम का, बताओ? So उसके लिए, of course, now we move on to something that's that much more topping off the charts, and this is going to be D-Link R15. This router, dude, you can talk to this thing. You can talk to this thing. I'm not kidding. It has Alexa built in, and you can definitely talk to it. 2021, who would have thought this world that we're living in, you're talking to a router telling it details, man. It is absurd the way this thing has been brought on along. But again, it's all thanks to these brands. And usi ke saath hum move on karte hain towards another beauty. That is going to be Iruska, this beautiful thing. That is going to be the gaming monitor one. Another gaming monitor. Yes, that is true. The market is full of them, but they are just topping the charts one after the next. With that, well, top in the charts is definitely being showcased from Enigma as well. We'll see if CA's prediction is going to be coming true for the third game. But before we jump into that, we're going to go on a short little break. Stick around. We'll be right back. Athletes are always challenging themselves to get better. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained. Give everything you've got to the challenge and show your finest. Bring your best out. Strive for perfection. It's our goal too.
Hello and welcome back once again to Taiwan Excellence Gaming Cup 2021 8th edition जहाँ पे हमारा finals चल रहा है grand finals where of course 4 lakh का prize pool है Valorant के अंदर and that is the segment that we're part of BO5 series के अंदर Enigma has already won 2 and now we move on towards the third game where of course let's cue in of course our casters and analysts. It's going to be CA and I Super Johnny where CA did call out initially at the start of the day that अगर bind तक game गई तो Enigma की ही game बनेगी. Is that still something that you want to stick with? Yes, because this is like a situation in poker, you know, where you get an amazing flop, and you think if I get like a decent card on the turn where I have some outs on the river, I'll be fine. I got the nuts on the turn. They just came back from an impossible position. Yeah. So yeah, I'll go for it. Exactly. I mean, this is their hand to win. Right. They have all the cards. River भी उनके favor में जैसा I mean CA explain कर रहे थे. So it's very hard to beat Enigma right now, but when your back is against the wall, you are in a do or die situation. Again, हमने freedom की बात करी थी, freedom to do anything वो अब X के पास रहेगी इस game में क्योंकि अगर हारे, the series is gone. If they win, possibility to make a comeback. True. Just go all out. Just go all out, and that is something that we can anticipate from the side of Cydreams and his team. But again, that's easier said than done because आपको पता है that on the prize pool and of course at stake is 4 lakh. So that's quite a lot, of course, a huge chunk. Which again for these experienced players, इतनी ज़्यादा वो उस पे उनका focus नहीं रहता है. उनका main focus रहता है for the game itself to be able to just get those rounds one after the next. जैसे आपने 4 लाख mention किए, I mean उनमें से एक के हकदार तो हमारे decide हो चुके हैं. यहाँ पे 3 लाख रुपए की अभी लड़ाई चल रही है. जो जीता उसको 2 मिलेंगे, जो हारा उसको 1 ही मिलेगा. Yes, that is absolutely correct. आधी प्राइस आधी प्राइज मनी. बट वही तो फिर से अगर हम वही बात करें तो ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं who have been part of so many tournaments. तो वहाँ पे अगर वो मनी की भी बात करें तो उससे ज़्यादा इनका गुडविल और अपनी खुद की उसके ऊपर आ जाती है कि we want to be able to stand up to the sort of deciding games that is happening. And again, you talk about a deciding game, talk about a comeback. In the previous game itself, 11-3 से Enigma ने comeback किया है. So anything is still possible for the side of EXO as well, I would say. Yeah, and I have to say that, like, from the side of Enigma, there's 2 specific people to give props to, besides, of course, the players who played well, which is YB and Antidote. Right. It is extremely hard to get a team back on track after such a dominating performance. The fact that they're able to do it, but do it through such close rounds, right? The rounds, they went ridiculously, like, close to down to a few seconds, as you mentioned as well. Yep. But they keep them on a calm head. They get them through. Exactly. I mean, same thing as CA said, क्योंकि as an IGL आपके ऊपर shot calling का बहुत ज़्यादा pressure रहता है. It's your decisions. I mean, players के individual performances तो रहते हैं, but main call आपका होता है कि this is what we are going to do and this is how we are going to approach the game. And वैसी situation में leading the team from the front line as well, क्योंकि Antidote वही करते हुए हमको नजर आ रहे हैं आज के दिन. Did a phenomenal job in the previous 2 maps. मगर वही चीज़ एक बार फिर से यहाँ पे करनी पड़ेगी. And on a map that they feel the most comfortable with basically home ground आ चुका है, and let's see what they deliver. Well, it seems like a binding contract the way you guys are talking about it in favor of Enigma. I mean, but again, we'll find out. It's a BO5 series. अभी भी कुछ भी हो सकता है. Again, 2 game हो चुके हैं Enigma के favor के अंदर. Third game is what we're talking about right now. And उसके साथ ही साथ अगर हम move on करें towards the conversation regarding bind itself, why is it, CA, that you keep on saying that Enigma is really phenomenal on bind? What exactly makes them so special that EXO might not be able to catch up to them? It's actually the other way around. All right. I've never seen ever for any iteration of the EXO roster, even when Hikka was with Sai and like this roster for that matter, they were not comfortable on bind. It's the agent compositions that I think really mess them up. The meta doesn't fit into the agents they play. Excali likes to shift onto the race, which is a huge comfort shift, but because of that one switch, they lose the entire power of the jet. If Ghost is to play it, then they lose another agent. There's always a loss wherever they go, but it doesn't carry over for Enigma. Enigma, they're just comfortably slotting in with basically the same composition that they are going to be running, so not much change for them. I mean, interesting. But then again, the question would be raised that if they've already, talking about, of course, EXO, if they've already gone through so many of those changes, now finally they probably would have found that custard, that creme de la creme that is going to make them stand out in the map, maybe? Hopefully. Hopefully, because I mean,
we might be able to see something जैसा हमको antidote का भी नजर आ रहा है, because the agent that you are playing doesn't necessarily allow you to be aggressive. क्योंकि आप अगर एक particular agent pick करते हैं, कुछ tendencies होती हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए. If you are going to play the jet, you need to be the one to be aggressing. क्योंकि वरना वो dash के साथ that's the advantage of the jet, right? You move forward, take a shot, get a pick, and then you instantly fall back with your teammates. You are unaccessible for a trade. But वहीं पे if you are on the Astra, वो fall back का option आपके पास नहीं होता. You can't go anywhere. You move forward, आप off guard पकड़े गए, आप पकड़े गए, you get picked off. तो वो चीज़ होती है. एंड दोस टेंडेंसीज एक्चुअली कैन ट्रांसफर ओवर. जस्ट सी ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे रेस पिक कर सकते हैं. एक्सैली जो होते हैं जेट की जगह रेस पे जा सकते हैं. गोस्ट कैन मूव टू द जेट एज वेल. बट अभी पिछले कुछ मैप्स पे दे वर प्लेइंग डिफरेंट एज अपार्ट फ्रॉम एक्सैली जस्ट टेकिंग ऑन दैट जेट. तो वही चीज़ है. मेंटालिटी माइंडसेट में ऐसा स्विच लाना इंस्टेंटेनियसली थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली इन अ हाई ऑक्टेन सीरीज जहाँ पे आप काफ़ी देर से, इमेजिन फॉर द लास्ट 2 hours you were just focusing on all right, I'm going to be just moving in second, I'm going to be just trying to get the trade happen, openings create करने की कोशिश करेंगे. all of a sudden you are just switching up to a jet and आपके ऊपर pressure है. all of a sudden you are forced to think मैं सबसे पहले आगे जा रहा हूँ, मेरा काम है opening picks निकालना. it's definitely going to be a challenge, but जैसा पहले बोला, backs against the wall, जो करना है करो अब. Absolutely. With that, let's find out which side is this third game going to be going in this BO5 series. With that, let's jump right into the third game of the day between, of course, Team EXO and Enigma. Well. 2-0 score line चल रही है अभी Enigma के फेवर में. Again, a recap, ladies and gentlemen, before the game. I mean, तब तक हमारे जो कॉम्स हैं, जो I think CA पहले से प्रेडिक्ट करके चलते हैं, already लॉक इन हमें होते हुए नजर आ रहे हैं. But we see the raise on Hicka, and on the other side अगर EXO की बात करें, Excali on Jet, Wimp Sky, Blackhawk Sova, Ghost on the Astra, and Killjoy on Sai. Another reason why this map is so damn good for the side of Enigma is that likely lock-in for Hicka. He is the true party boy, you know, in our Valorant scene. He's the true, like, upbeat. Like, whenever I think of the Raze attitude, I immediately think of Hicka because he portrays that attitude perfectly. He's been, like, throughout his career, he was a Raze one-trick pony. And this is the one map जिसमें team बोलती है, जा बच्चे, खेल ले. He's like, all right, अब हम आपको नहीं बोलेंगे कि आगे मत जा, प्लीज पुश मत कर, अब ऐसा सब नहीं होगा, अब जो करना है करो, इट्स योर गेम, डू व्हाटएवर यू वांट, जस्ट गेट अस दोस पिक्स एंड गेट अस दोस ओपनिंग्स, एंड बाकी की टीम अपना काम अच्छे से कर लेगी. बट या लेट्स सी. Final opportunity for EXO to at least start making a comeback in this series, and an opportunity for Enigma to just close things out in a dominating manner. 3-0 के साथ let's see क्या खत्म कर पाएंगे या नहीं. EXO starting on the defensive side and Enigma on the attack. 4 हमको Ghost नजर आती है, एक Frenzy यहाँ पे साय ने purchase करी है, just going to be playing very cheeky position hopefully. फिलहाल तो Heaven की तरफ I think उन्होंने अपने आप को position किया है, which I think can be a little tricky for him. But alright, no, he's on A shot. These compositions have drastically different mentalities, wherein the side of EXO continuously want information. Their entire composition depends on getting information. They don't have that defensive utility the way, like, say, a team like Ascend does to try and just stop attacks, right? They need to find information through activity. On the other hand, Enigma is the exact opposite. The double controller, double duelist means you want to deny information as much as possible. You want to walk into these power points the way these two duelists, Hicka and Raw Fuel, have just waltzed into Hookah and taken control. But more importantly, look at Antidote! The lurk! Oh! And there's the Frenzy. Intention जो था execution में help काफी आराम से हो गई. The smoke was there जिसके through push आया, and Sai got a preferable trade in that position. लेकिन चलिए देखते हैं towards the side of B long. यहाँ पे Rexy हमको नजर आते हैं, jiggle करके shots लेने की कोशिश थी, थोड़ा सा distract करके रखा है players को garden position में. In the meanwhile Hookah को penetrate यहाँ पे किया गया था, but from the looks of the movements ऐसा लग रहा है Enigma reassess कर रही है and they want to get on that A side. Outrun के साथ एक बारी फिर से A shot clear जा रहा है. They have the control of showers, but अभी भी side से थोड़ा दूर है. They just have 30 seconds. With that, Ghost, he's going to spot out a player in showers, and that is going to dissect Enigma's game plan to get control of that A side. They will be forced to move towards B. Yeah, and look at this, Excali in a very bad situation. The nade as well as the recon flushing him out. Shock darts coming in as well, but Excali holding on for dear life, able to find the kill on Raw Fuel as well. And that will surely mean
the end of Enigma in that pistol. EXO pick up the win, and Sai continuing his form, top fragger for EXO in that last match. And unfortunately, I got to look at chat. I think interesting chats between Rexy and Sai. Of course, Rexy upset that Sai was able to land that shot on him. Well, I mean, sure, why not? Friendly banter. Old friends. Yeah. Old teammates. Old teammates, yes. And चलिए, I think expected था क्योंकि जब अपनी टीम में थे तब भी ऐसा ही खेलते थे. Why not do the same thing on the other side? But चलिए, EXO के लिए I think trend बन चुका है इस टीम का pistols जीतना. Continuously हमारे जो 3 मैप हुए हैं, तीनों में पहला पिस्टल इन्होंने ही जीता है. टीम EXO again just getting the win. बट एनिग्मा रिएक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं. इनका जवाबी हमला काफी शानदार होता है. इस बार चलिए घोस्ट ने एक ओपनिंग पिक निकाला अपनी टीम के लिए, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट वन एज वेल. एंटीडोट द फर्स्ट वन टू गो डाउन फॉर एनिग्मा. Yeah, Nexcali finding that pick onto Rexy will mean that Enigma, they're trying to contest too many areas at once. Of course, it is okay. Spike Maybe down, giving Excali B. a 4K is not okay. This player feeds off the momentum. Nice come down. Hika though, he'll find one. But Excali will ensure that Hika is distracted enough for Wimp to pick up the kill. And EXO pick up the round 2-0. A single weapon lost only will mean that they get an easy bonus here in the third round while Enigma go for the buy. And this is where I have to mention, like, I feel like Enigma getting a little too greedy, right? EXO's composition, it's again very simple on the basis of information, but it also means that they're usually going to play the buddy system, where if they are taking control of long, they're going to give up hookah for free. And as soon as Enigma do get that, they need to realize there is a presence at long. Let's not go to long. Rather, Enigma keep walking into situations where they're giving free information to EXO and playing into their hands, and really just not working out for them so far. But this time a slight change in setups, Johnny. You can see for Team EXO a little more aggressive on the shower front. Jahan pe Sai was playing to hold on to lamps in the previous few rounds. This time with the help of the Astra and Ghost, he's trying to hold on to showers. Well, I mean, पोजीशन होल्ड करने की कोशिश तो यहाँ पे जारी है, बट एक्सकैली देखना होगा मार्शल के साथ यहाँ पे क्या तो ओपनिंग देखने को मिलेगी उन्हें कि नहीं. The answer is going to be no. The player in hookah still holding his position in the meanwhile. Trade यहाँ पे देखने को मिले हैं. Antidote just popping off again. Wimp, Blackhawk taken out. Hika getting Excali. A shot पे यहाँ पे RVK को साई का एक free pick मिलता हुआ, and all of a sudden it's the same thing as every single map that has been so far. पिस्टल जीता, एंटी इको जीता, तीसरे राउंड में बाय राउंड पे गए. एनिग्मा pedal to the metal. Exactly, and it's the basic difference in that communication and decisiveness factor, right? Even though the first pick in this round was for the side of Team EXO, taking out Raw Fuel very, very early, removing that entry duelist for the side of Enigma, they did not actually capitalize on it, and that's the hardest part about the comp Team EXO is playing, where agar aapko wo ek pick milta hai, your normal logic is, you know what, we got to pick, let's step back, let's hold on. That's not what you can do with this composition, because you will get punished, because your utility is useless defensively. Your utility is only useful in an attacking manner, so they need to move forward. They need to try and capitalize on those picks, like after killing Raw Fuel, maybe take the entire area for themselves. Otherwise, Enigma will just reset and come back. Yeah, I mean, और वो resets जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतें इनको दे देते हैं, but चलिए देखते हैं another opportunity for Team EXO, क्योंकि 2 rounds back to back इन्होंने निकाले थे. मतलब अभी भी opportunity है कि जिस तरह से इन्होंने शुरुआत करी है, एनिग्मा को उसी प्रेशर के अंदर डाल रहे हैं. हाथ का पिक्सल वहाँ पे स्पॉट हुआ. एक्सकैली को डैमेज इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तेज दिया है एनिग्मा के प्लेयर्स को वहाँ पे, and it is definitely going to be a point of concern for the lads, but since जो player थे वो अभी भी survive कर रहे हैं, I think Enigma they can just be careful and try and come out of this with an advantage. 4 players वापस A की तरफ हमें मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, although जो टॉक्सिक स्क्रीन है वो लगा दी गई है जस्ट टू क्रिएट एटलीस्ट सम पैनिक ऑन द बी साइड. आरवीके वापस से हुक्का पे शोर मचाने की कोशिश करेंगे कि टीम एक्सो के प्लेयर्स डिस्ट्रैक्टेड रहे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान उनका इसी तरफ भटका रहे.
इन वहीं पे लगा हुआ है अभी तक ध्यान आरवी के पूरा अटेंशन उनकी तरफ खींचते हुए बट सेटअप देखिए एक ही तरफ पूरा किलजॉय का यूटिलिटी टू स्टॉप दैट ए शॉट एंट्रेंस मीनिंग शावर्स इज कंप्लीटली एम्प्टी घोस्ट गेट्स आइसोलेटेड पिक्ड ऑफ एंड अब साई की यूटिलिटी उन्हें ज्यादा हेल्प नहीं करने वाली है क्योंकि दोनों एंगल से उन पे पुश होता हुआ अगेन दिस इज क्रूशियल जो ग्रीडीनेस की मैं एनिग्मा की बात कर रहा था वो एक्सो अब जताते हुए एंड इवन दो एक्सकैली गेट्स अ पिक आई थिंक द सेफ ऑप्शन हियर हैज टू बी टू सेव दैट आउट एग्जैक्टली आई मीन वो ऑपरेटर बचाना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी रहेगा इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फॉर देम विम्प की एचपी बहुत ज्यादा कम आरवी के बस परेशान करने की कोशिश करते हुए विम्प इज गोना बी फोर्स्ड टू फॉल बैक एक्सकैली भी पीछे जा रहे हैं साई इज गोना बी जॉइनिंग देम सून एनिग्मा राउंड छीन के लेकर जाती भी गोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब था अगर शावर पे वो एक पिक निकाल देते this could have been a much better scenario for EXO to face but as soon as Ghost went down you saw what Rexy was doing right just running into lamps और वहाँ पे भी उन्होंने एक और पिक निकाला and that was the game changer जैसे ही lamps control आया मतलब साइट पे आप बहुत ही हद से ज़्यादा डीप जा चुके you have the site you have showers अब शावर पे fall back करोगे प्लांट करने के बाद and since they managed to take control of short as well उनको पता था B पे 3 players तैनात हैं they took that control वहाँ पे विम को भी नहीं पुश करने दिया बाकी के जो 2 players थे उनके पास क्या ऑप्शन बचा दे हैड द ऑप्शन ऑफ कमिंग थ्रू डिफेंडर स्पॉन वहां भी ब्लॉकेड लगा दिया जस्ट नो ओपनिंग फॉर एक्सो टू एक्चुअली पुश थ्रू और उसी चीज के चलते 2-2 का स्कोर लाइन ऑल टाइड अप Exactly, right? So that's the point. When you're playing that double anchor, the Astra Killjoy in the same side, you cannot afford to play them on both the power points. They need to play like they were playing before, where एक power point छोड़ के दूसरा power point hold कर रहे थे. For example, in that round, if Ghost was also playing with Sai in that lamps area, they could have made their stand in lamps rather than Ghost and Sai getting picked off one by one individually. This time though, aggression is expected from the side of EXO by Enigma. Waiting for the aggression in the shadows. They are right about that call, but so far, neither team has actually spotted each other. Very slow on this approach right now, but showers and hookah control for the side of Enigma. This will tell them that long and short is where they're pressuring, but once again, getting isolated, Ghost getting caught alone. Well. I mean, चलिए देखते हैं. Enigma थोड़ा सा यहाँ पे EXO परेशान करते हुए नजर तो आ रही है बट स्टिल दिस टीम इज वेरी गुड एट रिएक्टिंग इनके रीड्स मिड राउंड एडजस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड लुक एट एंटीडोट ऑलरेडी सेटिंग अप द एग्जीक्यूट फॉर बी कोशिश रहेगी किसी ना किसी तरह से जल्दी से पोशन करें एज सून एज दे हैव कंट्रोल ऑफ गार्डन्स एंड हुक्का धीरे धीरे करके अभी भी आगे बढ़ रहे हैं रॉ फ्यूल उनके पीछे रेक्सी एंड देयर द स्मोक्स हैपेंड डिप्लॉयड एक्सकैली कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द पोजीशन और उसी मौके का फायदा उठाते हुए जब तक एक्सो का ध्यान बी साइड पे था ए पे मूव कर जाते हैं एनिग्मा के प्लेयर्स 13 सेकंड यहाँ पे बचे क्लीन अप करने की कोशिश बट रॉफिल को पिक ऑफ किया जाएगा 10 सेकंड्स ऑन द क्लॉक द स्पाइक स्टिल हैजंट बीन प्लांटेड स्पाइक प्लांट करने की कोशिश बट रेक्सी बीइंग टेकन डाउन 4 seconds टू गो एंटीडोट एंड आरवीके जस्ट फाइटिंग फॉर सर्वाइवल बट इट्स नॉट गोना हैपन साई थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे एंड विम फाइंडिंग आरवीके द क्लॉक रन्स आउट एंड सो डज द राउंड एंटीडोट 3K तो निकाला है बट जस्ट अ कंसोलेशन प्राइज इकोनॉमी स्टेबलाइज होने से रोकेंगे बस एक्सो की Exactly, just the consolation prize there. A bit of a silver lining, definitely, because it will mean that फिर से EXO come into a position where they're not able to afford the ideal weapons. So in the next round, Enigma can look to bounce back, but you're starting to see the shortfalls of Enigma's composition. This is one of the older metas when Viper really started coming into the meta of Bind, where they played double duelist with the Sova. But the problem with this composition is the lack of flashes. You can't force the issue when you want to, which means you're relying purely on your players finding those aim duels. If the other team is disciplined enough, they're not going to give you those aim duels. They're going to make you play for time, and that's when you kind of get screwed. Now, exactly. Enigma, they need to try to find those lurks. It's really up to RVK and players like the Astra on the attack here for Enigma, RVK, and Antidote to try and find these random holes and random pockets of spaces. And I think that's where Antidote sort of outshines. वो pockets अगर उनको नहीं मिलते, he will just create a space somewhere for his team to push through, just like this. But this was actually Raw Fuel, जिन्होंने Wimp के against एक point blank range पे duel लिया, but that's not going to matter as Blackhawk and Sai अपनी team के लिए काफी अच्छे तरीके से trades निकालेंगे. They in fact have an advantage. Blackhawk is finding the third one. Rexy, very unlucky. Yeah. I think RVK was in that position before him. Yeah. And Blackhawk was trying to shoot RVK. Rexy just jumped onto the box
at that exact moment he shot it, Rexi's going to be like, this is sus. This is sus. But yeah, and right now 4-2 for EXO. Definitely looking good, but I will say I'm not entirely convinced just yet. The rounds are still very, very close, and I want to see a level of confidence from EXO that I'm used to, in the sense that where they're willingly taking those fights and winning, not necessarily the right fights, but still winning, and that's where I think EXO really makes their mark. But right now, at 4-2 for Enigma, it's very simple. Their composition not made for the attack, it is heavily made for the defense, a ton of defensive utility. So even if they can secure a 7-5 or 8-4 from the first half, they will be fine. I think they have to go for a 7-5. 8-4 पे team EXO थोड़ा सा challenge यहाँ पे put up कर सकती है, but look at this. Raw Fuel जैसे ही A shot peek करने की कोशिश करते हैं, Excali instantly अपनी operator का शिकार बनाते हुए हमें नजर आते हैं. They have the advantage. Wimp यहाँ पे teleporter से push करेंगे अपने teammate के साथ. Wimp goes down. Excali getting traded as well. Blackhawk ने एक pick निकाला है Showers को secure करने के लिए, और Ghost side hold करने की कोशिश करे. Spray after spray, he's finding the picks one other way. Hika के paint shells यहाँ पे down होते हैं. अभी 2 versus 1. Rexy अकेले बचे against Blackhawk with nothing but a pistol to take on this man. और अब दोनों के दोनों सोवा एक दूसरे के ऊपर सिर्फ shock darts डालेंगे. But Blackhawk is like, all right, scam time, takes out the gun, shoots him in the face, done and dusted, moves on to the next round. I think Rexy के classic की bullets खत्म हो गए थे, नहीं तो शायद वो उधर उनको finish कर पाते, but won't be much. Instead, of course, Excali's operator finding that key value, and once again it becomes that factor because you can see the showstopper is well invested into this round. Enigma trying their best to find every advantage they can, but so far it's just simply not working out because I feel, again, they're forcing the issue too much on one side. They don't have the composition to force the issue. They have a composition that can deny information very well, that can find lurks the way they were doing before as well, and they need to try to fall back on that, but peeking yet again without those flashes into extreme point where Excali just waiting. Ow, ow. Well, इंतजार तो कर रहे थे, but I think Excali थोड़ा सा ज़्यादा over eager हो गए कि आप क्यों नहीं आ रहे, पूछने गए थे and जो जवाब मिला वो पसंद नहीं. But look at Raw Fuel. Sai with the perfect tracking takes him down, but the trade is there for RVK. The strength of Enigma, that buddy system really, really coming through, but it does mean that now they are able to get that sight through and the plant. Hunter's Fury will try to deny it, but not landing. Actually, completely miss, and actually should be able to get a comfortable. Yeah, I mean, plant तो यहाँ पे मिल जाएगा, and I think यहीं से momentum को turn करने की शुरुआत Enigma कर सकती है. 3v3 situation, Viper Spit भी available है Enigma के पास. They have in fact used it. अब A shot की position को यहाँ से guard करना, it can be a little challenging. Blinded का call आया, and Wimp instantly finding Hika. The rays being taken out, 2 versus 2. Ghost यहाँ पे RVK को pick off करेंगे, and the Viper Spit nullified. Blackhawk Rexy को clean up करेंगे, and somehow EXO still find the round for themselves. I think बदले की आग में ये players बहुत ज़्यादा तेजी से गर्म हुए हैं. They don't want to take any risk. काफी अच्छा यहाँ पे round निकाला है, and yeah, Enigma ने although they found a very nice opening. Spike plant किया था. अगर Spike भी वहाँ पे Viper Spit को थोड़ा सा और आगे को place करते, Spike भी cover up होते, and I think that would have forced the players of EXO to step into the pit to actually get vision of what exactly is happening. But this was the game changer. The RVK pick just completely shut down any possibility of anchoring that position from there. Yeah, and the timeout now from the side of Enigma. We'll have to see what calls are made from the coach, of course, to try and change what is going on right now. Because as you rightfully mentioned, Johnny, 7-5 I feel like is the ideal scoreline for Enigma, where they're losing but they're still okay with it. Because at 8-4 it's much harder, and anything beyond 8-4, even though they have come back from 9-3, I will say anything beyond 8-4, it's a much, much more difficult affair. But hey, we'll have to see if EXO is able to maintain this momentum, and we'll have to see if EXO is able to break the mental of Enigma, because that has been the hardest factor so far. Enigma has been very strong on that mental front, but a 6-2 lead. Similar situation as Ascent, once again. Yeah, I mean, similar situation as Ascent, but I think this time they would not want to lose the lead or the advantage that they have created for themselves. Enigma
ऑन द अदर साइड अभी उनको प्रेशर फील हो रहा होगा. दे नीड टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 4 से 5 राउंड सिक्योर करें इस फर्स्ट हाफ के अंदर, ताकि सेकेंड हाफ में असेंट जैसा गैम्बल नहीं हो. असेंट पे मान लीजिए गलती से एक राउंड चले जाता है, एक्सो मैच पॉइंट पर आती. एंड अगेन अनदर स्मॉल मिस्टेक्स, क्योंकि हमने 3 से 4 राउंड देखे थे दैट वर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज कॉल्स. Trying to get that hookah control, while at the same time his team contests long. Long is denied with those guiding lights, but the Shocktar's coming back to answer. Hika has got hookah control, and it looks like with the pick he's going to get here. The Killjoy shut down, and the accessibility onto this site much easier. Now the heals are coming through for Blackhawk, but Hika trying to push and create a space for his team will get taken down, but the space has been created, or has it? Walking into an ambush, Wimp finds a triple kill, and the massacre of Enigma. Even though Hika found the first blood and the space, you can't walk into Wimp and Long. It's as simple as that. You can't walk into Wimp anywhere. Yeah, true. You can't walk into any one of these guys anywhere at this point, though, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा deadly नजर आ रहा है. This is the second time Blackhawk has done something like this. I mean, just completely shutting down the first responder on the B side and Wimp as well. I mean, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन को भी होल्ड किया towards Garden. Enigma थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल हमको करती हुई नजर आ रही है. नेक्स्ट शो एक अच्छा एडवांटेज, एक अच्छा मोमेंटम इन्होंने अपने लिए गेन किया है. दिस टाइम इट इज एक्सकैली सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड. बट चलिए नजर डालते हैं एक बारी ब्लैक हॉक फिर से शॉट और मार्केट की तरफ पोजीशन इन्होंने स्काउट करी है. बट एनिग्मा अगेन ट्राइंग टू सी दे कैन फाइंड अ क्लियरर ओपनिंग. गार्डन का कंट्रोल लेने में कामयाब, हुक्का से यहाँ पे पुश करने की कोशिश अभी भी चल रही है. बट दूसरी तरफ गोस्ट आरबीके को पिक करेंगे टुवर्ड्स शावर्स. यहाँ पे एक बहुत ही डीप मूवमेंट देखने को मिली थी फ्रॉम हिक्का, बट ही वाज इंस्टेंटली पिक्ड ऑफ बाय ब्लैक हॉक. रॉफ्यूल ने विंप को तो बाहर निकाला, बट इट्स डाउन टू अ 2v4 सिचुएशन. ब्लैक हॉक फाइनली बीइंग शट डाउन. साई ऑन द ए साइड, एक्सकैली फाइंडिंग रॉफ्यूल. अकेले लास्ट प्लेयर बचे हैं यहाँ पे रेक्सी from Enigma, and he's going to be caught from two sides, but he finds Ghost. अब एक्सकैली के अगेंस्ट इनको ड्यूल लेना है. अगर ये जीत गए तो सिर्फ साई के साथ डील करना बचेगा. He deals with Sai, but एक्सकैली shuts him down. Rexy bringing it down to a 1v1. So close, but still EXO with the advantage. And you can see still Antidote trying his best to keep that mental state, telling it's okay guys, close round, we'll try to pull it back. But right now it is smiles on the faces of Team EXO, playing phenomenally continuously, and honestly there is nothing to this except just individual brilliance. They're able to find these key duel wins that they're not supposed to win at all and get rounds on the basis of that. Like last round it was a triple of Wimp, this round it was the coordinated effort of course Excali and Sai. But coming into an 8-2 scoreline again, very similar to Ascent. We'll have to see if EXO can change the result of Ascent though, and this time find themselves in a stronger position and find themselves the win. Because right now Enigma, they're out for blood. 1-4 setup for them, leaving RVK on a passive lurking position, waiting for some aggression on that side while they try to take control of Hookah. But so far, a lot of utility exchanged and that control is denied. So they're going to fall back, try to use RVK's position and presence to get a hit onto it. Well, let's see. This time Enigma slowing things down. पिछले कुछ राउंड्स उन्होंने तेजी से मूव इन करने की कोशिश करी थी, और एक्सो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर ईगर हमें नजर आ रही है. आरवीके की तरफ साई और गोस्ट अग्रेसिवली मूव कर रहे थे. एक्सकैली आल्सो इन अ वन ऑफ पोजीशन ट्रक के ऊपर यहाँ पे खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं. ही इज गोना फाइंड वन पिक एंड देन ही हैज टू मूव बैक. प्लेयर्स को स्पॉट आउट तो किया था, शॉट भी फायर किया बट कनेक्ट नहीं कर पाए, सो ही फॉल्स बैक इनटू लैम्प्स. बट गोस्ट और साई यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी टीम के लिए बाहर संभाले हुए फाइनली गोस्ट को पिक ऑफ किया गया. बट एक्सकैली इज स्टिल ऑन दैट ए साइड. पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, मिसेस एंटीडोट. अपने ब्लेड स्टॉर्म पे स्विच किया, एंटी टेकिंग अ लॉट ऑफ हिट्स एंड ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही गेट्स पिक्ड ऑफ. एक्सो गेटिंग अनदर राउंड. Yeah, and वहीं पे बात बन जाती है the fact that Excali just so casual, right? Yeah. Just chilling out, but that one way almost changed the entire thing. It was actually Ghost's one way, and I could imagine some angry words from Excali if the round had not gone their way, but it did. So it's completely all right. And now at 9-2, the final round of this first half, 9-3 was the score in Ascent. जी. Let's see if they can improve on that.
I mean, कोशिश तो रहेगी अगर एक बार फिर से 9-3 देखने को मिलता है, maybe they can have an opportunity to make a comeback. Talking about Enigma right now, but EXO looking so strong and oh! Yeah, see, that's the thing. पहला shot लगना चाहिए था, दूसरा फिर भी miss होता चलता. Yeah. It does come through, and with the help of the Cosmic Divide, इधर basically एक square, like 4 square बना दिए this A site with the help of the Viper Wall and the Cosmic Divide. Literally a plus sign on this A site right now, but it will create enough cover for Rexy to get the plant down. A lockdown does go through from Sai for EXO, but Enigma are like, oh, you want us to leave site? Okay, we'll go play on lineups. Bye. well, I think एक बार फिर से 9-3 के लक्षण हमको सामने नजर आ रहे हैं. Team EXO just left for 2 players. Spike भी planted है. Enigma just trying to hold on. Wimp ने लेकिन यहाँ पे raw fuel को बाहर निकाला. Shower के पास एक ही player Rexy बचे. Rexy all he has to do is waste time. As long as he is alive, इनके जिंदा रहने का pressure ही काफी है EXO को परेशान करने के लिए. And the rest of the players from short will try to make something happen, but they get picked off, and now all of a sudden Rexy is the last one. And oh! Ooh, Bulldog. And that was the mic drop. Yeah, mic drop from Rexy too, right? Because the clutch coming out, you can see Antidote being like, oh my god, I don't think that should have gone our way, but it did. So thank you very much, Rexy. But here you can see how I'm not sure how he missed that shot. ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा, and the better the player, the easier shots they miss. Because I think वो भी anticipate नहीं करते कि shift walk करके कोई crosshair के बीच में आके खड़ा हो जाएगा. So they're always like almost intuitively वो थोड़ा सा आगे flick करते हैं just to reposition and aim where the player would run to. उस would speed switch up कई बार mess up करा देते. So they hit the most difficult insane shots they connect. And ऐसे shift walk करके कोई सामने आता है तो वो भी थोड़ा सा off throw हो जाते हैं कि ओ ये क्या था. Yeah, definitely. And वहीं पे थोड़ा सा इधर momentum shifting on to Enigma's side. We'll have to see if they can carry it on the pistol. Rafael holding on to Hookah. There's a spots him out, goes for the peak and gets taken down quite low, but perhaps is able to bait them into Antidote's trap. Actually, no scratch. That call's made. Back up, guys. Let's just play defensively. Yeah. एंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो पीछे फॉल बैक किया है, रॉ फ्यूल को एक्स्ट्रा संभल के रहना पड़ेगा. ही इज वेरी लो, जस्ट इन 10 HP. सिर्फ एक क्लाउड बर्स्ट इनके पास बचा. चलिए रेक्सी ने तो स्काउट कर ली है गोस्ट की पोजीशन लॉन्ग पे, बट विद द क्लासिक द डिस्टेंस कैन बी एन इशू फॉर हिम. विम्प यहाँ पे पीक करते हुए नजर आएंगे. सो ही नोज देयर आर नॉट जस्ट 1 but 2 प्लेयर्स जो लॉन्ग पे इनको परेशान करेंगे. बट 3 प्लेयर्स ऑलरेडी एनिग्मा ने कमिट करे हुए हैं just to hold on to that B side. Rexy also falling back, and Antidote is there still on site with his teammates. Raw fuel और finally यहाँ पे push आता हुआ from team EXO. Dash के साथ Excali ने move in किया, gets one. Rexy being taken out. Sai ने दूसरा pick निकाला है. Antidote left all alone, and EXO, these guys are masters of winning the pistol round. हर pistol जीते अभी तक. Left on his lonesome, trying to sneak through elbow. I doubt he's going to be able to find much damage here. Every single angle covered from Team EXO, and in every single spot, the buddy system there to make sure that it happens. Even if he finds one kill, but not even one ghost with the strafe and the headshot, it will be the round and double digits once again secured for the side of Team EXO. But you have to be scared. You have to be worried. It was 11-3 last time. Similar situation. 9-3. They won the pistol. They won the anti-eco. But once they lost that bye, it felt like they lost the map. Yeah, I agree. I mean, अगर बाय यहाँ पे हाथ में नहीं गया तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी. एंड आई थिंक एनिग्मा ऑन द अदर साइड दे विल वेट फॉर दैट बाय राउंड. शेरिफ्स और क्लासिक और फ्रेंजी के साथ यहाँ पे उतरा जा रहा है मैदान में. EXO on the other side, they have to capitalize on this. अगर गलती से ये हार गए एनिग्मा के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाएगा going into the third. So pressure definitely on both sides, but more on the side of Enigma. And this is actually a surprise because जैसे हम मैच के पहले डिस्कस कर रहे थे, Enigma just seeming a little bit more comfortable on bind. And well, the picture in front of us right now looks like EXO is doing a phenomenal job of keeping things in check.
Yeah, and that's where the point you mentioned really comes into play, right? The backs against the wall, Team EXO, playing with a lot more, a chill attitude and freedom, And that's where you can see the players really shining, because the reason they've come this far in this map, it really is just purely those moments of individual brilliance or moments of two players coming together to find an advantage. And it's exactly that once again. Excali finding an advantage, taking down Raw Fuel, but look at this, the trap throughout this round was set with the 4-stack on this A side, waiting for EXO to walk in, and walk in they do. Antidote with the first, now Enigma looking for the second. Antidote will find exactly that. That's 2 weapons upgraded, John. Yeah, 2 weapons का यहाँ पे upgrade जो आया है उसी के साथ Enigma आगे भी push करेगी. Gets the third. EXO के Black Hawk को भी बाहर निकाला गया, but EXO on the B side. Spike plant उनको मिल चुका है. It's down to a 4 versus 2 situation और पूरी की पूरी टीम जो है हुक्का और लॉन्ग की तरफ से यहाँ पे मूव इन करना चाहेगी. आउटराउंड के साथ साइड क्लियर करने की कोशिश. Wim still hiding in the tube while Excali has positioned himself in towards defender spawn. अब धीरे धीरे करके हिक्का अपने टीममेट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और भी पोजीशंस क्लियर अप करने हैं. यहाँ पे डिफेंडर स्पॉन के लिए ऑलरेडी क्रॉसहेयर प्लेस किया हुआ है, so Excali needs to be extremely careful, but he gets shut down. RVK finds Wim और राउंड जाता हुआ एनिग्मा के हाथों में. अगर एक्सो की बात करी पिस्टल जीतना जानते हैं तो एनिग्मा ये भी जानती है कि एंटीको पे कैसे जीत हासिल करनी है. It's just phenomenal, the discipline from Enigma Gaming. शुरुआत से 1-4 setup था, रॉफ्यूल को अकेला छोड़ दिया गया था B पे to maintain that position towards the A side, and it paid off brilliantly. Antidote in the Sheriff. This love story, I mean, we've been seeing throughout this series. On Haven, he started off a huge pushback with this exactly, right? In an anti-eco. He found it like thrifty and got Enigma the win, and after that, they were unstoppable. And you have to worry. Now, I mean, last time तो 11-3 पे comeback हुआ था, इस बार already anti-eco जीत गए, 22 तक like मामला पहुंचने ही नहीं दिए. I mean, चलिए पर देखते हैं यहाँ पे अब एनिग्मा को वही प्रेशर बिल्ड करना होगा जो उन्होंने एसेंट पे किया था, and they have to cut down this lead as fast as they can. 6 राउंड्स का एडवांटेज अभी भी एक्सो के पास मौजूद है. दैट मीन्स रूम फॉर एरर जो है उनका वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू एनिग्मा. उनका मार्जिन फॉर एरर इज वेल very very less. Try to push in करने की कोशिश, but the team of EXO they run into a meat grinder और एक के बाद एक यहाँ पे players pick off होते हुए नजर आते हैं. A very clean round for Enigma Gaming, just losing one individual, but apart from that बाकी के players को बहुत ही तेजी से बहुत ही swiftly pick off किया गया, and from a 10-4 down to a 5-4, 5 rounds का difference. Yeah. One enemy remaining. Very nice round for Enigma, of course. In eco round, EXO this buy round will be the crucial factor, but Raw Fuel, I know he's the bottom fragger, but he's got that operator online, and on that defense, the strength of Enigma really is this defense. The operator is like a cherry on the cake, just adding on to the pressure, and you can see already trying to move in aggressively. Raw Fuel looking for a very, very forward peak, and he's got a lot of information for his team. They spot out Ghost there. This should tell them that hookah presence is there for Enigma Gaming. They're trying to take control of that. And look at Antidote. Raw Fuel is aggressive. Antidote is on another level. What? Spike down B. That just happened. One enemy remaining. Anti, you're playing Astra, bro. Calm down. Also, like, look at where he is. Exactly. Yeah, Raw Fuel ने गार्डन से वापस आके साइड पे पिक निकाला है, and he is the defending side player. वो B long push कर गए थे. Yeah, and it's just honestly like it brings me back to last year when Valorant esports was just starting, and Antidote was in a different team, of course. He just shifted. He used to only play Sage, and it looked like so bad. I remember on him, that, it never looked great. But then he shifted onto Jet, and he became the best Jet in the country for a few months at least. You have to understand, it's again the conversation of mindsets that we talked about before the match. He's been doing the same thing in a different FPS for a very long time. For years and years, he was used to just be the aggressor for his team. And all of a sudden, if you ask that guy to just hold positions for a minute, he won't be able to do that. You get restless. But that's where you get restless, you get paranoid, you feel like I'm not doing enough. I could have actually gone and hit those shots and taken the duels. And I think that's an Antidote. He feels more comfortable in positions where he is in that action, he's in the center of that action, he feels like he's at home.
Yeah, exactly. I think it's the idea that, yes, while he definitely wants more responsibility as an IGL, that doesn't mean he necessarily wants to give away the responsibility of helping the team out with the aggression when necessary. And they're finding the right balance for that. It's much easier said than done. The fact that he is able to do it is absolutely nuts. But hold on, Excali trying to make his mark. He's found a double kill, but the trades are there. Sai, though, is able to find one more, and even though it's a 2v3, look at their health bars. Blackhawk and Excali extremely low. Exactly, players काफी ज़्यादा low हैं, but Enigma की तरफ से अगर बात करें, Raw Fuel, he has the Blade Storm as well. एक player को इन्होंने jump करते हुए I think spot out तो कर लिया. The lockdown being used from the side of Team X, so let's see what is going to happen. Excali being spotted out as well. RBK trying to move in with the Spectre. He's going to find Blackhawk. Sai falls as well. Now it's down to Excali. 1 versus 2 situation. Can he make this happen? A very big question. Spike planted है. The players from Enigma, they need to go for the defuse. Fake करने का अभी time नहीं है. Excali being spotted out. अब शायद defuse stick किया जाएगा because Raw Fuel has given the call out कि मेरे पास vision है, I can take him out. Excali being spotted, RBK getting the trade. आधा defuse हो गया था and they do have the time to finish it off. Enigma getting another round for themselves. I mean, very, very nicely done. The fakes to get the position first. Then, as soon as he's done diffusing half of it, he comes back for the trade. I mean, I've become a big fan of RBK after the lurks he's shown us throughout this tournament, but the fact that he's versatile and able to find a similar level of performance on the Viper as well, the value for him to the team, absolutely nuts. Yeah, and RBK, I mean, he's always been this this individual who can actually play and fit in a lot of different roles. Yeah. That is the best part about him. And also, there's his ability, his aim is also pretty nuts. But चलिए बात करते हैं कुछ deja vu moment I think हमको पिछले मैप का यहाँ पे नजर आ रहा है. The round difference has just been cut down to 3. Yeah, and for EXO, this is not a great deja vu moment. They're going to be feeling nauseous, their knees weak, arms heavy. Maybe they want some spaghetti, I don't know. But right now, they'll take anything they can get to bring back their confidence because it is crumbling, it is collapsing, and it's a similar story, it's a similar situation, and unfortunately for EXO, might be a similar result. It's down to these players to find some sort of individual miracle and pull it back, because right now, Enigma, they're on a roll. Yeah, Enigma is definitely on a roll and doing a wonderful job. EXO के पास कोई भी opening नहीं आ रही है. And look at Raw Fuel. Knows the players are going to try and make an attempt from B long. Seeker's Eye. Seekers को पहले destroy किया गया. Throws out a cloud burst just to survive for a few extra seconds. Excali जैसे ही pushing करने की कोशिश करी, अकेले थे. And Raw Fuel is taking the advantage. Could have gotten 2 players lined up, but RBK support देने के लिए बिल्कुल तैयार. हुक्का में अभी भी मौजूद है. Rexy ने वहाँ पे थोड़ा सा परेशान किया teleporter के साथ. RBK is going to clean up the site, and all of a sudden it's just one last player surviving for the side of EXO, Sai. And he is sandwiched. 2 directions से players उनको pick off करने के लिए उनको वापस अगले राउंड में भेजने के लिए तैयार थे. And Enigma again moving forward with the comeback. And Raw Fuel playing this brilliantly. The cloudburst, even rather than putting it directly on the recon itself, putting it around him so he can peek out of that cloudburst and still not get spotted out. And the simple communication, right? Even though we can't hear it, it's so obvious between RVK and Raw Fuel. Raw Fuel telling RVK, bro, I'm getting pressured, मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ. And RVK continuously aware that while he's getting pressure, there's a very real possibility of that hookah push coming in, continuously switching back and forth. The 2 players single-handedly holding on to that site, and now crushing the dreams of EXO and their fans, because piece by piece Enigma is breaking them. They are destroying them, and EXO, they don't even look like they've got a say. I completely agree. I mean, EXO ने अभी तक जो भी करने की कोशिश करी है, they have been shut down. Look at this. I mean, showers का चलिए आपने कितना information collect कर लिया with everything that you have thrown, but no control being given to the players of Team EXO. धीरे धीरे करके यहाँ पे विम्प ने कोशिश करी है. Just dry pushes a shot.
He's like ठीक है ऐसे काम नहीं कर रहा अब सीधा जाके मारने की कोशिश करते हैं लड़ाई ही करते हैं एंड जंग चालू हो चुकी है इट्स 3v4 राइट नाउ एडवांटेज टू टीम एनिग्मा बट साइड कंट्रोल आ चुका है स्पाइक प्लांट कर चुके हैं रेक्सी जस्ट होल्डिंग ऑन वेटिंग फॉर गोस्ट टू पीक हिम गेट्स द फर्स्ट सेकंड पे जाने पे रीलोड पे जाना पड़ेगा द रिकॉन रिवील्स हिज पोजीशन हिज टीममेट हिक्का राइट नेक्स्ट टू हिम और फ्री फायर करते हुए मूव इन किया जस्ट रन्स एंड गन्स एंड गेट्स द पिक्स and the round for his team. It's a 9-10 score line. एक round का फर्क. Enigma, the comeback has already happened and now it's an even game. Yeah, and at this point for the side of Enigma Gaming, they're going to be filled with confidence. They're going to be brimming with confidence because they know they've done this before. They can do it again. Yeah. They are... And they're probably excited, you know, to get this win all the way through to secure. I think this might be their first official tournament victory as a roster. I'm not entirely sure. I might be wrong about that, but definitely going to be a big notch in their belt to try and get this trophy on the Taiwan Excellence Gaming Cup, of course. And the 2 lakh rupees that come with it. And the peripherals, of course. Yeah. It just keeps adding on. But hey, it's not over just yet. Because right now, the lead is still with Team EXO. And that's the scary part. Like, we're hyping up Enigma so much because they've been dominant. But the lead is still with Team EXO. All they need is a way to reset themselves and bring that strength that they showed in the first half back. Yeah, definitely. I mean, वो स्ट्रेंथ दिखाने की तो कोशिश करनी पड़ेगी मगर चलिए देखते हैं कि आगे का जो अप्रोच है वो किस तरह का रहने वाला है यहाँ पे टीम की तरफ से इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब क्लोजन क्या एनिग्मा किस तरह से करती है स्टिल जो वाइपर स्पिट है उसको डिप्लॉय किया गया टुवर्ड्स द शावर्स पोजीशन एंड हिक्का इज मूविंग फॉरवर्ड आपने ऑन द लेफ्ट बोला उन्होंने चेक किया एंड आफ्टर दैट कम्स द शो स्टॉपर एंड ही स्टिल नॉट गोना स्टॉप आगे मूव करते हैं 3k फॉर हिक्का विम्प ने ट्रेड तो निकाला बट एंटीडोट ही इज बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑलरेडी विम्प को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया गया साई वंस अगेन द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग फॉर हिज टीम एंड एंटीडोट एंड हिज टीममेट्स दे आर ऑन द हंट I mean, for a second, Excali scared me, and I think it scared RVK as well. But Hikka, very much aware, able to get the kill and immediately use a showstopper. Knew that the flank was coming in from Rawfuel and Antidote, and as long as he kept the players there, it doesn't matter if he lives or dies, they'll win the round. It's exactly what happens. Antidote will finish it right up, and now 10-10 on the board. The cheeky smiles coming in for Antidote. He's feeling it. He knows that the victory is right over the horizon. He can see it. He can smell it. And he wants to just touch it. He just wants it. Well. I mean, yeah. As you said, he can see it. He can feel it. And I think almost fingertips उस पे already लग चुकी होंगी. It's just time to wrap your hands around it and just run away with it. Not let the players of EXO get their eyes set. 10-10 का score line all tied up. And again, देखिए पूरा clean second half यहाँ पे जा रहा है Enigma के लिए. Apart from just dropping that pistol, EXO. Oh no. Yeah, again नहीं expect करते कि सामने आके कोई खड़ा होगा. But again, like despite those shots missing, it's Enigma that come out on top because that one is an antidote there to take care of Rawfuel. Even though he goes out, Rawfuel pays back with a couple kills of his own. And before we even think about an EXO comeback, this round is just over. And now Enigma, they will be able to take the lead. Blackhawk is still alive, no doubt. Yeah. But 1v2, his position known, the spike in a completely different... Wait, do they? Actually, I'm not sure if Enigma know that the spike... They don't. Enigma don't know that the spike is there. This does give Blackhawk an opportunity to clutch out this round. 1v2 has his Hunter's Fury and full health. Exactly. I mean, जैसा आपने mention किया, spike की position ना पता होना एक tactical advantage Blackhawk के पास आ गया, but RV के check करने जाते हैं and Blackhawk's position has been spotted out. Rawfuel की HP बहुत ज़्यादा कम है, plus he's on the operator. तो दोनों प्लेयर्स को बहुत एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा. द ट्रेड नीड्स टू हैपन इंस्टेंटेनियसली बट ऐसा लग रहा है कि ब्लैक हॉक जो है बैक ऑफ करेंगे, टीपी का यूज करेंगे एंड ही स्टार्ट्स हेडिंग टुवर्ड्स दैट ए साइड. रॉफ्यूल और उनके टीममेट यहाँ पे स्प्लिट अप होके अब अप्रोच कर रहे हैं. वन मूविंग थ्रू हेवन, द अदर वन टेकिंग ए शॉट एंड ब्लैक हॉक, लेट्स सी, द मैन has an opportunity to clutch things out, but RVK is going to catch him completely off guard. किसी ने टीपी यूज नहीं किया था एंड द वे ही मूव्ड इन, आई थिंक उनको एक्सपेक्टेड था कि कोई स्नीकीली लैम्प्स गया हो, बट नो, द लास्ट प्लेयर वाज इन हेवन एंड वन एंड शॉर्ट लैम्प्स चेक करने गए, गेट्स पिक्ड ऑफ और 11-10 का स्कोर लाइन. एनिग्मा जस्ट अ फ्यू
moments away from 3-0ing this series. Yeah, I think शायद उन्हें लगा Rafael Lambs की तरफ है, but should be checking shot. He should be expecting that RVK will likely come from the flank itself because he has more health, he has the rifle of course, but hey, that's a very hard 1v2 to pull off, especially against a team like Enigma that is in form right now, on a roll, continuously pushing from 10-3 down to now 10-11. Enigma, they did the same thing last time. It was 11-3 to 13-11. This time, what, 10-3 to 13-10? Well. I mean, इस बार तो चलिए स्कोर लाइन काफी ज़्यादा अभी भी क्लोज है. एक्सो still waiting for Enigma to make one mistake. एक गलती कीजिए, प्लीज एक गलती कीजिए ताकि हम एक राउंड तो एटलीस्ट सिक्योर करें. The zone of Enigma looking like a death trap for EXO to run into, और EXO just realizing that, just holding themselves off. काफी ज़्यादा रुक के अभी खेलने की कोशिश की जा रही है. Again trying to create the pressure towards B. हुक्का से यहाँ पे शोर मचाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे. लॉन्ग की तरफ अभी भी कोई स्पॉट नहीं हुआ था. It is definitely going to be a challenge, but look at Antidote. उन्होंने फायदा उठाया, रियलाइज किया मोमेंट है, ब्रीदिंग स्पेस है, काउंटर पुश ऑलरेडी ऑन द वे. ये जो लर्क है ये पूरा तहस नहस कर सकता है टीम एक्सो को. एंड एंटीडोट इज मूविंग फॉरवर्ड. जो सीकर्स डाले गए थे वो एंटीडोट का पीछा तो कर रहे, बट नो वन इज चेकिंग बी लॉन्ग. एंटी फाइंड्स वन, फाइंड्स द सेकंड. कैन ही गेट द थर्ड? नहीं, सीकर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया. हिज टीम ऑन द अदर साइड जस्ट डूइंग व्हाट he left behind, what he started. Ghost अकेले बचे अपनी टीम के लिए, barely with any HP pistol के साथ. Jump shots and Hicka with the classic takes his team to the next phase, the closing moments of the game. Yeah, and at this point, formality बची है बस. Exactly, it is just a piece of formality because even though there's these like instances where it looks like EXO have the right idea, it feels like they've lost all motivation. It feels like they've lost all energy, and likely their comms too. It doesn't look like they're actually communicating with each other, speaking with each other. I'm sure Sai is trying his best to motivate the team. I'm sure Excali is trying his best to carry the team 25-14 by the way, but it's not happening because Enigma are too damn coordinated. Enigma are just too precise. They are not giving gaps, and EXO they just keep trying to force the issue and they keep dying. Exactly, जैसा आपने mention किया, too calculated team Enigma this time. Hunter's Fury का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, but that's not gonna matter. हिक्का ने 2 picks already निकाल लिए ऐसी है. Antidote Ghost को shut down करते हुए. It's a 2v4 on match point. Not a position EXO wanted for themselves, and Wimp getting completely caught off guard by RVK. Last player surviving, Blackhawk, and Anti, the man who started it all, is the man to finish everything. Gets the final kill and the match point for his team. Enigma Gaming, 3-0 win. Yeah, absolutely brilliant from Enigma Gaming. 2 comebacks in back-to-back maps, and just very, very well done. Overall, I think the fact remains that they deserve this victory. And EXO, they're going to be disappointed, but let's see, a lot to work on for them. Yeah, I mean, काफी कुछ तो है काम करने के लिए. There are a lot of mistakes, I think, but this was from the side of EXO. They tried the level best. कोशिश उन्होंने भी काफी बेहतरीन करी, चाहे Ascent की बात करें, चाहे Bind की बात करें. Heaven पे जो गलती हुई थी, they realized their mistakes, and look at the lads from Enigma celebrating. All of them just huddling up and jumping up and down. Victory dance, well-deserved victory, and they have a lot of happy faces. Coffee definitely working out. Yeah. Coffee for the win. Caffeine for the win. Caffeine for the win, yes. Because you know, we ourselves are not exactly engaged in coffee, but we do have some caffeine. But these are the champions, and Lotte, nice to have you back. Like Enigma, hey, I was right. It's 3-0. Yeah, the official. You called it definitely, and here we have them. Enigma Gaming, the champions of Taiwan Excellence Gaming Cup 2021, the 8th edition. Up your game. Well, this team definitely has showcased how to up your game from being at such unadvantageous positions, still making a comeback and just proving everybody wrong. Well, they definitely do deserve that win. Exactly. I mean, बहुत ही ज़्यादा अच्छे comebacks इन्होंने दिखाए, but even though Bind पे expected था for Enigma to win, still the way it started almost gave us a heart attack. Yeah. True.
Absolutely, absolutely. There were moments there जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि okay, maybe Sai is off off his game, maybe. But उसके साथ let's move on and have a look at the scorecard coming in from this third game right here, जहाँ पे of course ये BO5 था for the grand finals between Team EXO and Enigma Gaming, where Enigma Gaming certainly do come out victorious with 3-0 the final score in this BO3. And I mean, जैसे हम बात कर रहे थे, देखिए, even though I mean team performance from the side of EXO was looking solid, it wasn't like they were doing a lot of, they were making a lot of mistakes. It was just that Enigma today were more clean, more a little bit better than EXO, और उसी चीज़ के चलते they walk away with the win. And definitely I think Hikka a player worthy of getting the MVP on this game. And जैसा CA ने point out किया था, रेज खेलते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती, जो करना है करो, freedom पूरी allowed होती है. So he was definitely happy to play this map. एक चीज जरूर बोलूंगा, आज एक भी अल्ट नहीं मिस किया हिक्का ने, तो YB must be doing something special. No Hikka ults today. For reference, Hikka's ults are usually when he misses quite notorious, They're notorious. He's known for them, you know. So today, on point though. Well, it's the grand finals. You have to be on point, of course. And again, with that, the bank is also going to be ka-chinging all across for the side of this team because, well, 2 lakh is going to be theirs, of course. But alongside that, well, काफी interesting यहाँ पे games देखने को मिली हमें for the Valorant yesterday as well as today, I would say. Combined, I mean, it was definitely entertaining. Absolutely right. I think we had a baller of a time, and I hope so did all of the teams. So first, I will want to say a big thank you to Taiwan Excellence Gaming Cup, of course, for even having this platform in the first place. True, that is true indeed. Because again, this is the 8th edition of TEGC 2021. के अंदर of course 8th edition हो रहा है, but the only drawback, or not the drawback, but something that is missing is the LAN itself, and hopefully next year. Why do you point that out? मेरे पास opportunity थी, but I wasn't like थोड़ा और commitments से, so I missed the last LAN. But yeah, it is still fun. I mean, pretty sure जब भी TEGC का Taiwan Excellence Gaming Cup का जो अगला LAN होगा, it's going to be bigger than the ones we have had before, and it's definitely going to be exciting. क्योंकि LAN पे I mean vibe अलग होता है, मजा अलग आता है. Plus, I mean players भी I mean I guess वो भी miss कर रहे होंगे LAN events को. So that is true. That is true. In fact, yesterday we had an interview with the team from Cordon, and वो भी यही बात कर रहे थे कि काश LAN हो रहा होता तो हम आपके साथ वहीं पे होते stage पे. But then again, that will happen. That definitely will happen. But इस साल की अगर बात करें तो it has been a phenomenal run from all of these games. I mean, आप Rainbow Six की बात करिए, Valorant की बात करिए, the best of the best teams. जैसे हमने पहले भी बताया था, 3,770 teams participated. 3,770. उसके अंदर से जो क्वार्टर फाइनल्स के अंदर टीम्स आई हैं, I mean, fabulous performance yesterday. And आज की अगर ग्रैंड फाइनल्स की बात करें, so once again dominating plays being showcased from these teams. Imagine the level of competition from 3,000. All of a sudden, what we see is 4 teams. Yeah, 4 teams to play off. Mind-boggling. The competition is definitely fierce when it comes to well, each and every single game in India, basically, when it comes to esports, right? From one to the next, you've got the, जैसे pain fixes बोलते हैं, दिग्गज हैं इतने सारे, of course. So that definitely is being showcased right here. And आज के वो जो दिग्गज team रही, वो of course Valorant के segment के अंदर is going to be Enigma Gaming. A big congratulations to that team. We will be having an interview by the end of the day with that team, but as of now, it is just our congratulations for that team, because again, I mean, that was some entertaining, skillful play that they showcased. I mean, 3 games back to back, being in the spotlight, but just not deterring from that. I think again, एक जो हम players or teams की history की बात कर रहे हैं, especially in the recent days, they like to play against each other. Like these guys are there almost in the playoffs of every single tournament you've seen. तो इनको आदत है. And with YB, as CA mentioned, joining the side of Enigma, I think वो strat making में, team breakdowns में, demo reviews में, Enigma has someone extra that's helping them out in the backlines, और वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे game changer बन जाता है. On the other side, I mean, EXO pressure भी रहता है players के ऊपर, because they need to work on themselves, they need to work on the team aspect of the game as well. Plus for Sai, उनको shot calling करनी है, he needs to focus on his performance, उनको अपनी screen पे ध्यान देना है, radar पे ध्यान देना है, player position. So he's doing quite a lot. True. तो वहाँ पे वो advantage I think यहाँ पे Enigma के लिए काफी एक बड़ा hand play किया है inside the game. But yeah, definitely team ने अभी improve किया है, because they looked a lot better now than I've seen them in the past. And ये जो improvement का graph ऊपर जा रहा है, hopefully ऊपर ही जाते रहेगा. Definitely, right? I will say after जैसा map 2 गया था,
you coming into map 3, you're like, okay, this is going to be a whitewash most likely. Right. But no, you see the experience of players like Sai really coming in, the ability to mentally reset your team and tell them, try your best, guys. And that's what they did. They came really close, but just not across the finish line. So maybe next time they can take that extra step. Well, they definitely are on that grind. There's nothing stopping them from that, and that will hopefully, as the games progress on along, as the days and the months progress on along, we'll see that team come back again and be showcasing that exact skillful play that we are kind of missing. Not yet, again, because, I mean, we already know these are skillful players that we're talking about, and of course, they are the best at what they do. But again, there will be a loser, there will be a winner. That's just the way the story goes, and there's nothing that can separate that. But right here at TEGC, I would say everyone is a champion. Exactly. I mean, making it this far itself is a very big challenge, and to do so, it is a big achievement. And जैसा आपने mention किया कि कोई हारता है कोई जीतता है, मैं बोलूँगा I think you just learn from your experiences. तो ये एक learning experience होगा. Plus demo reviews यहाँ पे जो किए जाएंगे, just because जैसा हमने पहले भी बात करी, it was very close the rounds that EXO lost. तो उसकी वजह से वो fine refinement जो होती है ना, वो यहाँ पे करने की opportunity होगी इस मैच के डेमोज से. You figure out कि timing में चलिए थोड़ा सा issue था, या फिर सामने वालों ने इस चीज़ का advantage उठाया, इसलिए उनके पास राउंड चले गए, हमारे पास नहीं आया. अगली बार इसको protect कैसे करेंगे? How do we fix this? तो वो एक अच्छी I think opportunity. Plus along with that they do get a lack, right? Yep, they do. Oh yes, they do. They do get that ka-ching as well, and that is definitely going to be soothing their egos a little bit, so to say. But when it comes to the gamer attitude, you do know these are some competitive dudes, and they are definitely not wanting to back down. And जैसा आपने बताया, हम guaranteed उनको वापस देखेंगे ज़रूर. And hopefully, as you pointed out, Varun, that graph that's going up will stick with them and keep on continuing with that. Now, with that, I want to talk to you guys about your experience right here at Taiwan Excellence Gaming Cup 2021 के अंदर. I mean, mine has been fun. I mean, again, from last year to this year, we did see a few changes. I mean, in terms of the game that is there, but it is definitely, again, a lot of fun to be here on this stage. I mean, we do always have a lot of good tech with us. जब भी यहाँ पे आते हैं, we get to doodle around with a lot of fun stuff. True. तो वो हम लोग backstage करते हैं और वो करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है. How about you say? I mean, it was my first time. So I absolutely enjoyed it. The only thing I'm looking forward to is that LAN you keep mentioning. I think I want that the next time. But as Johnny said, I think I'm going to have to go put a lock on my bank account because I might just spend a little too much after today. I'm taking that one. Again, I mean, you see, that's what the thing is. When it comes to Taiwan Excellence Gaming Cup, you, as perfectly mentioned by you, best of the best hardware यहाँ पे, of course, इतनी सारी known brands हैं who always are trying to bring their level up in terms of technology, in terms of being available to the gamers of the country. And जैसा games की हम बात कर रहे हैं, prize pool के साथ, I think we had this conversation with the guys from TEGC, and they informed us कि prize pool के साथ साथ particular sponsors हैं who will be giving stuff to the gamers as well. जो players हैं उनको भी चीजें मिलने वाली हैं if they win. तो the सोने पे सुहागा वाली बात होती है ना, the cherry on top of that very creamy cake that's already there. तो और ज़्यादा खुशी की बात, because I mean we also like getting stuff, right? Everyone enjoys getting stuff, so it is definitely kudos to our sponsors for being so generous and grateful and just providing us with the opportunity to be here and enjoy the matches. Absolutely, definitely. I mean, this is what the third year that I'm hosting the TGCK event, and it has every single time been up your game. Every single time, it's just perfect attitude that's being showcased from the community, of course, along with that from the entire staff right here at TGC's campus. With that, we are going to go on along because Valorant का यहीं पे segment खत्म होता, लेकिन उसके साथ ही साथ COD M का यहाँ पे अभी ग्रैंड चैंपियनशिप शुरू होगी, जहाँ पे हम ऑफ कोर्स वो लो ब्रैकेट की मैचेस देखेंगे, उसके बाद में ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ेंगे. बट बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स दैट सेगमेंट, इट इज टाइम टू टॉक अबाउट दीज ब्रांड्स. जो अभी तक हम बात कर रहे थे, इतनी सारी ब्रांड्स यहाँ पे TGC के पास होती हैं. व्हाट आर दीज ब्रांड्स? वेल, राइट नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट इनविन. यहाँ पे अभी साइड में आ जाना चाहिए. Yep, there you go. Look at that case. Look at that tech right there. If it is going to be in your it's there. Yep, there you go. It's the opposite side. It doesn't matter, but you know exactly where to look on the screen and not over here, right? Blinded by the RGB. Exactly, right? It's always the RGB that always gets us gamers, and this is something that is definitely going to be helping you, well, I guess, flaunt a little bit amongst your friends. And that in the room is, as soon as somebody enters the room, you know कि उनकी आंखें उसके ऊपर तो guaranteed पड़ेंगी ही पड़ेंगी. And this is a special case again, InWin की तरफ से 309 मॉडल है इसका नंबर. Moving on from that, we have the MSI GE66. Now वो है जो लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ था, जो मैं इस पूरे इवेंट में यूज कर रहा हूँ for all the games and everything. 240 Hz का इसके अंदर स्क्रीन है, along with RTX 30 series i7 10th generation
best of the best. I mean, this is the laptop to go to because it's got the bank for all of it. And उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप लैपटॉप्स और इन सब के बारे में बात करें, well, the RAM. The RAM is so very crucial as well. वहीं पे हम बात करेंगे टीम ग्रुप की, जहाँ पे ये RGB RAM आपके लिए of course available है, and it's not just the RGB that's going to stand out for this thing because it has so many more details, and that's what makes it that much more quicker. It's easy, just one click for overclocking as well, and that makes this thing the perfect fit for your buck and to be in your room in your gaming setup. उसी के साथ साथ अब हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, उसके बाद में हम फिर से मिलेंगे for the Cordon segment.
Athletes are always challenging themselves to get better. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained. Give everything you've got to the challenge and show your finest. Bring your best out. Strive for perfection. It's our goal too.
and welcome back to Taiwan Excellence Gaming Cup 2021 8वां एडिशन ऑफ कोर्स। अभी हमारा वैलोरेंट का चैंपियनशिप खत्म हुआ, अब हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द कॉड एम सेगमेंट, जहां पे हमारे पास काफी गेम्स हैं टू गो थ्रू बिफोर वी मूव इनटू द फाइनल BO5। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, ऑफ कोर्स, allow me to introduce the two analysts and the caster duo. It is going to be Major and of course Mac Wiper. क्या हालचाल, कैसा चल रहा है? How are you feeling? मैं बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा पम्प्ड अप बिकॉज़ आज फाइनल्स और फिनालेस में बहुत बेहतरीन गेम प्ले जो है वो हम विटनेस करने वाले हैं यहाँ पे। Oh yes, एक्साइटेड। जिस नोट पे कल हमने वो सारे मैचेस छोड़ा था, शुरुआत एक बार फिर से वही होगी। मंच ऑलरेडी सेटअप हो चुका है एंड ये जो ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप है उसमें कहीं ना कहीं टीम आगे बढ़ते हुए आज जरूर नजर आएंगे इस पूरे कॉर्डम के मैचेस में। डेफिनेटली। उसी के साथ अगर हम ये बात करें कि क्या है स्टेक पे, दैट इज गोइंग टू बी द प्राइस पूल, जहां पे हमारे पास 4 लाख का प्राइस पूल है। जो फर्स्ट टीम होगी, जो हमारी चैंपियन होगी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सेगमेंट के अंदर, वो 2 लाख रुपए यहाँ से आज लेके जाने वाले हैं। सेकंड प्लेस को 1 लाख मिलेगा एंड थर्ड एंड फोर्थ को 50,000। सो इसके अंदर ऑफ कोर्स काफी कुछ है दाव पे, लेकिन ये टीम्स ने जिस तरीके का कल गेम प्ले दिखाया था, काफी क्लोज कंपटीशन होने वाला है। शायद आपको शायद कि यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कोई जरूरत थी, एग्जैक्टली कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, एकदम नेक टू नेक कंपटीशन में देखने को मिलने वाला है। एब्सोल्युटली। यानी उसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेम्स जो होने वाली हैं उसकी ब्रैकेट्स की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे कि कल जो हमने गेम्स देखी थी, वेल टीम एक्सेस, टीम वाइटैलिटी, गॉड लाइक एंड रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स की, वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ था हमारा, जहाँ पे टीम वाइटैलिटी वो BO3 के अंदर हारते हुए लो ब्रैकेट के अंदर पाए गए थे अपने आप को, एंड अब वहाँ से हम मूव ऑन करे हैं। तो ऑफ कोर्स वी नो कि गॉड लाइक तो निकल चुकी है, वो बस वेट करिए कि उनके अगेंस्ट कौन खेलने वाला है आज। लेकिन उसके लिए भी ऑफ कोर्स वी हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट मैच ऑफ द डे, जो लो ब्रैकेट का गेम रहेगा हमारा BO3 का। जी हाँ, टीम एक्सेस वर्सेस यहाँ पे हमें रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स देखने को मिलने वाला है और शानदार तरीके से दोनों के दोनों टीम्स जो है वो अपने आप को सेट कर चुकी है, अपना कैलिबर वो दिखा चुकी है। लेकिन हाँ, अब उन दो मुकाबले से उन दो टीम हमें दिख रही है, उनसे जो आगे जाएगा वो लड़ने वाला है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में। वहाँ पे हमें शानदार गेम प्ले की उम्मीद रहने वाली है। जी बिल्कुल। और उसी के साथ अंकित, अगर हम बात करें गेम मोड के बारे में, तो थोड़े अपने नए दर्शकों को बताते हैं कि गेम मोड क्या रहेगा यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सेगमेंट में। बिल्कुल, कल कभी हमने देखा था पूरे दिन में वहाँ हार्ड पॉइंट मोड रहा जरूर था। अब हर एक मैप पे ऑब्वियसली यू हैव 3 and 4 हार्ड पॉइंट्स जो हम बार जरूर देखते हैं एंड वो सारी चीजें भी आज देखने को मिलेंगे ब्लॉडर। वेल यस इंडीड। उसी के साथ यहाँ पे अगर हम गेम्स की बात करें तो वैसे प्रेडिक्शन क्या रहेगी आपकी फर्स्ट गेम के अंदर? कौन सा टीम, व्हाट टीम वुड यू वांट टू चूज, या फिर क्या लगता है आपको कौन सी टीम आगे बढ़ सकती है? ओह ऑलराइट, देन आई विल, मेरे पास बचे ही रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स है तो हम बिल्कुल उनके साथ जाना चाहेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग प्ले बिंग शोकेस। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरफ, कौन से एनालिस्ट एंड कास्टर की तरफ ये गेम बढ़ेगी एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मेरे सामने आ चुके टीम एक्सिस के प्लेयर, लेजरा है, वॉर्टेक्स है, रैंडम, अभी दादा, प्रिज्म हमें दिखाई दे रहे हैं अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर, और ये सब प्लेयर्स अभी तैयार है। लेकिन इसी के साथ साथ रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के भी प्लेयर आ चुके हैं, एबिस, जायरो, मास्टर, बोन्स, बीनो, सारे के सारे प्लेयर्स तैयार है रणभूमि में अपने आप को उतरने के लिए और अपने नाम को इस पूरी रणभूमि में फैलाने के लिए, ललकार लगाने के लिए। और हम देख पा रहे हैं मैच स्टार्ट होने वाला है। क्रॉसफायर, देयर यू हैव इट। इस पूरे दिन में आज हमें ये हार्ड पॉइंट के मैच देखने को मिलेंगे जरूर। मैप्स चेंज होते रहेंगे बट पहला हार्ड पॉइंट इस मेन सेंटर बिल्डिंग के अराउंड्स बनता हुआ 20 मीटर फिलहाल दोनों टीम्स के लिए। बट उसमें सबसे पहले यहाँ धाक जमाने के लिए कहीं ना कहीं गुरिल्ला स्क्वाड से रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स वहाँ पे अपने दावेदारी पेश करने के लिए ऑलरेडी, हालांकि अभी जाके पहला पॉइंट एकत्रित हुआ है रेवेनेंट का 10 सेकंड के बाद। तो जो कॉन्टेस्टेशन टीम एक्सिस ने रेवेनेंट को शुरुआती क्षणों में दे दिया, कहीं ना कहीं द स्टार्स हैव अलाइंड फॉर मी बिकॉज मैंने टीम एक्सिस चुना। जी बिल्कुल। लेकिन रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स अभी आप देख सकते हैं कि इस हार्ड पॉइंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 33 इनका मैं बोलूंगा सेकंड्स मिलेंगे। अगर ये 33 सेकंड इन्होंने होल्ड कर दिया, अपने नाम पे कर दिया, तो काफी अच्छी लीड जो है वो ये जनरेट करते हुए नजर आ सकता है। बात करना चाहूंगा यहाँ पे चल रहा है टीम एक्सेस वर्सेस रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स, और जी हाँ, यहाँ पे अब जाके हमें टीम एक्सेस का खाता खुलते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, खाता भी खुल चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स एकत्रित करने की कोशिश। अगर आप मिनी मैप की तरफ देखिए तो टीम्स की बात हुई तो कहीं ना कहीं काफी एकत्रित हमें नजर आ रहे हैं, जहाँ पे रेवेनेंट के प्लेयर्स, वहीं पे टीम एक्सिस काफी दूर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन में सिर्फ एक ही मुकाबला हारते हुए नजर आई थी टीम एक्सिस, एंड दैट वाज अगेंस्ट गॉडलाइक, जहाँ पे गॉडलाइक सीधा फाइनल्स की तरफ अपना रास्ता अग्रसर कर चुके हैं। मौका नहीं ज्यादा इन टीम्स के पास मिलेगा, अगर यहाँ से तो सीधा बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा जरूर, एंड उसमें कहीं ना कहीं टीम एक्सिस के पास एक बहुत अच्छा मौका रहेगा। चलिए बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। तो अभी ज्यादा प्रिज्म ने कल जिस तरीके का एक खेल दिखाया था, आज बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना होगा। एंड स्टेप अप करने की बात कर ही रहे थे, ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट का लीड एकत्रित कर लिया
लिया। हाँ, वो लीड ज्यादा नहीं है बट स्टिल इनफ रहेगा इन सारे प्लेयर्स को ताकि उनका मोरल ऑलरेडी बूस्टेड अप रहे। एंड जिस मोमेंट पे मैं बात कर रहा था पॉइंट्स का, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे वो हार्ड पॉइंट से छीनते हुए 35 सेकंड अगर यहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ले जाती है तब मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करूंगा फिर दूसरे हार्ड पॉइंट पे इंतजार रहेगी किस प्रकार से टीम एक्सिस उसको अपना नाम करती है। जी हाँ, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने यहाँ पे खदेड़ दिया है टीम एक्सिस को और आगे खेलते हुए दिखाई दे रही है टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। बात करते हैं 19 सेकंड है उनके पास, अगर ये हार्ड पॉइंट अपने नाम पे इन्होंने होल्ड जमाए रखा है इस पे तो काफी अच्छी लीड इनके नाम पे आ सकते हैं, बट इस चीज को हटाना पड़ेगा टीम एक्सिस को। मैं देख पा रहा हूँ शानदार तरीके से टीम एक्सिस अपना गेम दिखाना जरूर चाह रही है पर उनकी हर स्ट्रैटेजी को काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 57 पॉइंट का लीड रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को कांटे की तरह चुभने वाली है बिकॉज अगले अगर कुछ सेकंड्स में यहाँ पे अगला हार्ड पॉइंट अगर टीम एक्सिस अपने नाम नहीं करेंगी तो काफी दिलचस्प मुकाबला बन जाएगा। बट कहीं ना कहीं स्पेशल फोर्सेस के स्पॉन के साइड ही ये क्योंकि हार्ड पॉइंट बना है, मुझे भी आप साफ साफ देख सकते हो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ प्लेयर्स अपना होल्ड बनाते हुए नजर आ जरूर रहे हैं। एंड यहाँ पे हार्ड पॉइंट का कब्जा हमें टीम एक्सिस के साइड से देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे 45, 46, 47 का कहीं ना कहीं ये स्कोर है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब टीम एक्सिस एक बहुत ज्यादा बराबर वाले मुकाबले में आने वाली है। आप देख सकते हैं 54 कर दिया, 56 कर दिया, 57 और लीजिए इसी के साथ लीड लेते हुए टीम एक्सिस हमें यहाँ पे नजर आ रही है। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो करना चाह भी रहा। आप मिनी मैप के ऊपर एक बार नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा एक अलग रोटेशन लिया जा रहा है, नए हार्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है वो टीम। एग्जैक्टली अगर ये 16 सेकंड्स शायद रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स दे हैव गिवन अप। आप देखो वहां पे हार्ड पॉइंट की तरफ सिर्फ एक इकलौता प्लेयर हमें नजर आ रहा है एंड सीम्स लाइक टीम एक्सिस ने भी वो हार्ड पॉइंट छोड़ दिया तो अगला जो लास्ट का 10 सेकंड था वो चला गया टीम रेवेनेंट के पास। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स वो लीड कहीं ना कहीं वो कम करते हुए नजर आ रही है, जो डेफिसिट उनको कम करना चाहिए था। बट अब अगला हार्ड पॉइंट देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल ये गया है गुरिल्ला स्क्वाड जो टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स है उन्हीं के घर में गया, जस्ट स्पॉन से बाहर निकलेंगे कुछ प्लेयर्स वहां पे, अगर वहां पे इफ दे आर बेरिड इनटू द कॉफिन वहीं से रिस्पॉन होंगे एंड उसके बाद आगे जाने की कोशिश। हालांकि अभी एक बार फिर से टीम एक्सिस से वो हार्ड पॉइंट छीन लिया गया जो थोड़ी देर पहले रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के पास था। रैंडम का कल एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमने देखा था, क्या आज के दिन में वो एक बार फिर से सेम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिप्लिकेट कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल और काफी ज्यादा मैं बोलूंगा बढ़िया तरीके से प्लेयर खेलते हुए नजर आता है। लेकिन हाँ, अभी हम देख पा रहे हैं रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स 84 पॉइंट जो है अपने अकाउंट में अपने खाते में डालते हुए एकत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 30 सेकंड है। 30 सेकंड के अंदर पूरे का पूरा रुख बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। बिकॉज़ हाँ, अगर हम देखेंगे 30 सेकंड प्लस कर देंगे टीम एक्सिस के खाते में एग्जैक्टली एनाइलेटर बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक मैं बोलूंगा ऑपरेटर स्किल आता जरूर है। लेकिन हाँ, इसी के साथ टीम एक्सिस जो है अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से खेलते हुए नजर आ रही है। एक चीज मुझे पूरे मैच में कॉमन नजर आया, हर हार्ड पॉइंट इक्वली शेयर्ड रहा है, इसी कारण पॉइंट्स के बीच में ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक हार्ड पॉइंट या तो रेवेनेंट लेके चली गई हो या टीम एक्सिस लेके चली गई होगी। इस चीज में अब अगले हार्ड पॉइंट में जो टीम सबसे ज्यादा कैपिटलाइज करेगी वो देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज अब मैच में कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम बचा है, पॉइंट डिफरेंस भी 150 से काफी करीब हमें नजर आ रही है। हार्ड पॉइंट बन चुका है एक बार फिर से स्पेशल फोर्सेस के अराउंड वाले बेसिस पे, जहां पे काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लेयर्स खुद को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट एबिस अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको शट डाउन किया गया। एंड एबिस से कल हमने बात भी किया था, वो कल बता रहे थे उस इंटरव्यू सेक्शन में कितना ज्यादा वो ट्राई हार्ड करते हैं, दिन रात लगाते हैं इसी गेम के लिए तो लगाते हैं एंड कहीं ना कहीं उसमें काफी अच्छे तरीके से खुद को ऊपर रख रहे हैं। बट इसी बीच यहाँ पे एक और फिनिश पॉइंट अपने नाम करते हुए 14 रैंडम ने नाम कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ शानदार तरीके से टीम एक्सिस जो है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को एक लोहा देते हुए, एक कंपटीशन देते हुए नजर आ रही है। 108 रेशियो 104 का स्कोर बन रहा है। लेकिन हाँ, 20 सेकंड बचे थे और मैं देख पा रहा हूँ कि रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स आई और खदेड़ दिया, थोड़ा सा धक्का देके साइड कर दिया गया था टीम एक्सिस को। लेकिन प्रिज्म की टाइप 25 के सामने किसी की एक चलती दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। एग्जैक्टली हंटर किलर ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है, हालांकि बोन्स को उससे बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली बिकॉज सिर्फ रैंडम को वहां पे एलिमिनेट करने में वो सक्सेसफुल रहे। अगला हार्ड पॉइंट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो स्पेशल गुरिल्ला स्क्वाड की तरफ जा जरूर सकता है। गुरिल्ला स्क्वाड के एग्जैक्टली तो नहीं किया बट कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में बनते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे काफी अच्छे तरीके से टीम एक्स खुद को ऊपर रखते हुए हार्ड पॉइंट के पास है। लेजरा यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सामने वाले एंगल को गाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक ही प्लेयर नहीं, 2 प्लेयर के असिस्टेंस के साथ सैंडविच सिचुएशन बनता हुआ नजर आया गुरिल्ला स्क्वाड के रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का। 122 रेशियो 121 दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा कांटे की टक्कर हो चुकी है यहाँ पे। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर वो चाहती है यहाँ से वापसी, और उन्होंने करके दिखा दिया। ये हार्ड पॉइंट अपने नाम पे कर दिया, 36 सेकंड उनको मिलेंगे। 36 सेकंड तक इनको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा लेकिन वो नहीं होने दिया जाएगा। जी हाँ, टीम एक्सिस आ चुके हैं, उनको खदेड़ दिया गया लेकिन हार्ड पॉइंट खाली पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं
हार्ड पॉइंट में इस वक्त कोई भी टीम नहीं है, मतलब किसी के खाते में कोई पॉइंट्स नहीं जा रहे होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है टीम एक्सिस वाकई में ही शानदार गेम प्ले दिखा रही है। एग्जैक्टली टीम एक्सिस उम्मीद से काफी विपरीत प्रदर्शन। Wow. नॉट एक्सपेक्टिंग वॉर्टेक्स का एक जबरदस्त एनालिटर एंड मीनो को कर देंगे यहाँ पे शट डाउन। हालांकि एनालिटर है जरूर पीछे, तो देखो बोला जाएगा यहाँ पे बिस्को एंड वॉर्टेक्स एक और फिनिश पॉइंट अपने नाम निकालते हुए एक एक करके यहाँ पे टीम एक्सिस पहला मैच लेके जाते हुए इस BO3 के मुकाबले में। एंड पूरी तरीके से रास्ता में एक बाधा डाला गया रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के लिए। तारीफ कीजिए आप लेज़रा की, तारीफ कीजिए आप अभी ज़्यादा की, या तारीफ कीजिए आप वॉर्टेक्स की। सारे प्लेयर्स बढ़ चढ़ के खेलते हुए नजर आए थे, बट इस मैच का वो जो एक लास्ट मोमेंट था, जो एनालिटर फिनिश था, हमें देखने को मिला। वेट कर रहे थे जैसे प्लेयर्स ने पीछे देखा, वहां पे एनालिटर एक वन शॉट वन टैप वन किल चिपकाते हुए नजर आए थे वॉर्टेक्स। जी हाँ, तारीफ बिल्कुल बनती है और कहीं ना कहीं तारीफ के हकदार भी हैं ये प्लेयर्स, क्योंकि शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आए थे और अपना जो गेम प्ले है इन्होंने जो दर्शाया, कहीं ना कहीं सारे के सारे जनता को भी, सबके सब अपने जितने इनके फैंस हैं उन सबको इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूंगा मैं टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की, तो कहीं ना कहीं उनसे छोटी मोटी गलतियां जो है वो बिल्कुल हमें देखने को मिली है। एक छोटी सी जगह पर उन्होंने चौक कर दिया, जिसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा। लेकिन देखिए चेहरे पे अभी भी कोई शिकंज नहीं है, ठीक है एक मैच हार गए, बट ये रहने वाला है एक BO3 मुकाबला। बातचीत चल रही है, आप देखो सारों के थोड़े माथे पे हमें वो जिस चीज की आप बात करते हैं टेंशन है, यस स्ट्रेटजी वहां बन रही है, सब कॉल आउट जा रहा है। इस मैच में रेवेनेंट कमबैक करेगी। और अब देखिए लगातार सीरियस टॉक्स चल रहे हैं, बिल्कुल सारी चीजें बताई जा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है बेस्ट ऑफ 3 मुकाबले में। आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे ये जो मैच के बीच में जो कॉल आउट्स चलते हैं, जो टैक्टिक्स चलते हैं, क्योंकि आपने भी इस कॉम्पिटिटिव सीन्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो किया है। तो अगर कोई टीम इस तरीके से कोई नए गन्स के सामने गिर जाए तो किस तरीके के वार्तालाप चलते हैं? हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम जायरो है, मास्टर, ये रिनाउंड, मैं बोलना चाहूँगा इंडिविजुअल इनका प्लेयर जो बेस है, अगर मैं बात करूँ बहुत 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 बढ़िया तरीके से खेलते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो बातचीत ये चल रही है कि भाई ये जो टीम एक्सिस रह रही है यार, ये अभी अभी आए हैं और हमारे सामने डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे इनको हराया जाए इस स्ट्रैटेजी पे वो बिल्डअप कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये प्लेयर्स हैं अंडररेटेड। जी मैं इनकी बात करूँ टीम एक्सिस के प्लेयर की, अंडररेटेड प्लेयर की बात करूँ तो वॉर्टेक्स है, रैंडम है, अबीज दादा है, लेज़रा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर अंडररेटेड नहीं रहने वाले। ओह यस, अब ये वो बड़ा मंच है जो ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप 2021 इनको प्रोवाइड किया, प्रदान किया है। एंड उसमें अब ये वो मौका रहेगा ज़रूर। एबिस से कल हमने बात किया ज़रूर था, एंड एबिस लिटरली टोल्ड अस किस हिसाब से उनका एक माइंडसेट होता है अगर वो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं। बिकॉज अगर यहाँ से टीम एक्सिस जीत के जाती हैं, रेवेनेंट को हराया इन्होंने, अगर हराते हैं तो पिछले भी कुछ मैचेस में हमने देखा कि आप किस हिसाब से प्लेयर्स हारते हुए नजर आए थे। बट वो सारी बातें चलते रहेंगी क्योंकि मैच अगला हार्ड पॉइंट पे फिर से एक बार देखने को मिलेगा। जी हाँ, RNT वर्सेस टीम एक्सिस देखने को मिल चुका है समिट मैप के अंदर। दूसरा मैच रहने वाला ये है जरूर, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाँ, लीड अभी तक हमें खाते में देखने को मिली है टीम एक्सिस की। एग्जैक्टली पहला हार्ड पॉइंट वो सेंटर लाइंस के अराउंड जहाँ पे वो कंप्यूटर वो सारे केजेस बनते हैं। बट यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंट साइड देखने को मिला। रेवेनेंट के प्लेयर्स ऑलरेडी डिफरेंट हैंड साइड पे प्रेजेंट हैं ताकि वहां से प्लेयर्स रोटेट करके अंदर ना आए। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी कि जितने भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है उसको उसके ऊपर एक एक प्लेयर बिठा दिया जाए ताकि वो 1v1 फाइट जीते। एंड कहीं ना कहीं ये जो हार्ड पॉइंट का इलाका है ये कंटेस्टेड काफी ज्यादा रहता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखते हैं अमूमन कि कोई एक टीम पूरी तरीके से वो हार्ड पॉइंट खुद के खाते में लेके जाए। बट यहाँ चीजें कुछ दूसरी देखने को मिल रही है। 22 ऑलरेडी पॉइंट्स रेवेनेंट के नाम पे, एंड टीम एक्सिस भी कहीं ना कहीं उसी राउंड खेलते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से टीम एक्सिस के पास से वो हार्ड पॉइंट जो छीना गया था रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के पास से, एक बार फिर से टीम एक्सिस। इट्स ऑल अबाउट जस्ट रोटेशन। जो भी पहले प्लेयर्स आएंगे, जो भी 1v1 फाइट इक्वली जीतेंगे, वो काफी जबरदस्त तरीके से आगे आएंगे जरूर। बट जायरो का ये गन काफी ज्यादा प्रचंड तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आया जरूर था। मीनो का एक और फिनिश पॉइंट अपने नाम। एंड आई गेस अगला 3 सेकंड बाद ये जो हार्ड पॉइंट शिफ्ट होगा, इसी लक्ष्मण झूले के अराउंड हमें नजर आ सकता है। जी हाँ, बन सकता है, लॉक हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल वहीं पे नेक्स्ट हार्ड पॉइंट जरूर बनता है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा RNT बोन्स की, जिस हिसाब से टाइप 25 चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी अभी एक और प्लेयर को उन्होंने एलिमिनेट करा, धाराशाही करा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि RNT जो है अब रुकेगी नहीं, बिकॉज हम देख पा रहे हैं लीड जो है वो उनके खाते में जाती जा रही है। 47 सेकंड अभी भी बचेंगे उस हार्ड पॉइंट पे, और अब जाके टीम एक्सिस ने अपने नाम का जो परचम है
है वो उस हार्ड पॉइंट पे लगा दिया, लेकिन मेरे बोलते ही अबिस आए और अबिस को पनिश कर दिया जाएगा प्रिज्म के द्वारा। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे प्रिज्म भी डाउन हो चुके हैं बोन्स के द्वारा और एक chaotic सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली एंड ये सबसे ज्यादा chaos वाला सिचुएशन होता है इस पूरे समिट मैप के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं इसमें काफी अच्छे तरीके से टीम एक्सिस से कमबैक कर रही थी, बट लगातार पॉइंट की वृद्धि करते हुए यहाँ पे रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर 18 सेकंड और रहेगा जरूर, एंड सीम्स लाइक ये हार्ड पॉइंट अब उनसे कोई नहीं छीनने वाला। एंड ऑल्सो टीम एक्सिस हैव लिटरली गिवन अप ऑन टू कॉन्टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब कहीं ना कहीं जब अगला हार्ड पॉइंट बनेगा तो उसके ऊपर टीमों की निगाहें रहने वाली, स्पेशली टीम एक्सिस, बिकॉज ये 27 जल्दी से उनको एटलीस्ट 50 के पास कन्वर्ट करना है। ये हार्ड पॉइंट बना जरूर है, गुरिल्ला बेस जो होती है हमारी टीम एक्सिस के पास, उनके घर में ही बना है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनका यहाँ पे बोलबाला होगा, बट ऐसा हो पाएगा या नहीं उसमें ना डालने के लिए एबिस ने यहाँ पे एक बैकस्टैप ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन 72 रेशियो 35 का एक स्कोर रेशियो हमारे सामने बिल्ड हो चुका है और कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा दिक्कत वाला जो माहौल है वो टीम एक्सिस के लिए आ चुका है, बिकॉज आप देख सकते हैं इनको यहाँ से वापसी करनी पड़ेगी। अगर अपना जर्नी जो उनको कंटिन्यू रखना है तो कैसे ना कैसे करके कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और मेरे को लग रहा है लेजरा को यहाँ पे गुस्सा आ गया है, स्पैरो निकाली, 2 प्लेयर को यहाँ पे धाराशायी कर दिया और इसी के साथ अपने टीम को दिलाते हुए एक अच्छे पॉइंट्स। एग्जैक्टली एंड स्पैरो के साथ कुछ और फिनिश पॉइंट निकालते हुए प्रिज्म के साथ हमें देखने को मिल जरूर रहा है। ये कमबैक जिस चीज की हम बात करते हैं, मेजर 25 पॉइंट से 62 पॉइंट का सफर महज पिछले 30 सेकंड के अंदर, लगभग 30 सेकंड के अंदर निकाल लिया है। एंड उसमें कहीं ना कहीं लेजरा का एक बहुत ही बड़ा नाम। अब अगला हार्ड पॉइंट जब कहीं बनेगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर वहां शायद रोटेट करे, बट अगर आप देखिए मिनी मैप की तरफ तो टीम एक्सिस यहाँ जीतने के लिए साफ स्पष्ट हमें नजर आ रहा है। वो एक हार्ड पॉइंट पे बैठ के सेटल नहीं हो चुके, बल्कि एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे अगला हार्ड पॉइंट बनेगा। वहां पे ऑलरेडी इनके 4 नंबर के प्लेयर्स ऑलरेडी पोजीशन थे जिनका नाम है प्रिज्म, एंड उन्होंने ये जो हार्ड पॉइंट जो उनसे छीना जा सकता था बाय रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स, उसमें बहुत अच्छी तरीके से खुद का एक होल्ड बना आया है। लेट्स जस्ट सी बाकी के मैचेस में क्या होता है। जी हाँ बिल्कुल, देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम एक्सिस यहाँ पे चलता हुआ। टीम एक्सिस बेहतरीन तरीके से मैं बोलूंगा ये टीम जो है अभी फॉर्म हुई है, लेकिन एक इंडिविजुअल प्लेयर बहुत पुराने से अपने नाम को प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया है। लेकिन आरएनटी के बॉन्स आते हैं, पनिश करते हैं अभी इस दादा को, और हम देख पा रहे हैं कि 82, 83, 84 तक की जो एक तरीके से मैं बोलूंगा लीड जा रही थी, जो पॉइंट जा रहे थे खाते में रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के, अब रोक दिया गया उसको। और अभी भी हम देख पा रहे हैं टीम एक्सिस लेते हुए वो पॉइंट अपने नाम पे रख रही है। एग्जैक्टली लगभग शतक का आंकड़ा छूने वाली है टीम एक्सिस, एंड 101 देयर वी हैव इट। बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला ऑलरेडी, पहला मुकाबला पर रेवेनेंट जीत चुकी है। अगर यहाँ से जीतती है तो फिर टाटा बाय बाय बोलने का मौका आ जाएगा रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को, बट मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूंगा। वो बेस्ट ऑफ 3 के आखिरी मुकाबले तक रहे ताकि वो कंटेस्टेशन ऑन रहे। फिलहाल के लिए उसके ऊपर एक चोट लगाने की कोशिश बोन्स के द्वारा, बिकॉज रेवेनेंट इज जस्ट मेकिंग अ कमबैक। वो जो लीड वहां बना के बैठे हुए थे, काफी खुश मिजाज थे टीम एक्सिस। अब कहीं ना कहीं वो चिंता की लकीरें बनेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये सेंट्रल हार्टलैंड ऑफ दिस मैच, ये कंप्यूटर एंड ये सारे स्टोरेज अराउंड वो केजेस के अराउंड ये मैप देखने को मिलेंगे। ये हार्ड पॉइंट दिस विल बी अ गेम चेंजर। यप इंडीड, ये हार्ड पॉइंट गेम चेंजर हो जरूर सकता है। हम देख रहे हैं कि 111 स्कोर टच कर चुके हैं टीम एक्सिस, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स कमबैक करना चालू कर चुके हैं। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के लिए कि यहाँ से वो कमबैक करना चालू करे। बिल्कुल अगर अभी नहीं करा गया तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा ही दूर निकल जाएगी टीम एक्सिस। और मैं देख सकता हूँ कि टीम एक्सिस अपना पूरा 100% ए गेम प्ले यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स उनको एक भी मौका नहीं दे रही। एग्जैक्टली एंड क्यों ही दे, आई मीन बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है, रेवेनेंट को यहाँ पे कमबैक करना है। 115 112 हार्ड पॉइंट छीन लिया गया फाइनली यहाँ पे उनके साइड से, बट नाउ दिस इज कंटेस्टेड एंड उसको कंटेस्टेशन को अपने पाले में लाने के लिए बोन्स ने सेट 2 पिक निकाला, रैंडम को गिराते हुए नजर आए। लेट्स आल्सो गोइंग डाउन। रेवेनेंट यहां से कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा था ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऑलरेडी प्लेयर्स भी रोटेट करने की शुरुआत कर चुके हैं, सेंटर लाइन छोड़ दिया गया, एंड अगर ये हार्ड पॉइंट कहीं ना कहीं जो हमारी ब्लू कलर की जो स्क्वाड है स्पेशल फोर्सेस के जो आपको ड्रेस में नजर आ रही है, दैट इज रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स, अब बट जा चुका है वो हार्ड पॉइंट दूसरे हैंड साइड पे जो लक्ष्मण झूला की आप जो बात करते हैं, बट वहां भी ऑल ऑफ अ सडन रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स रोटेट करके चले गए। This is just the spectacular thing that we were all expecting for. 135 का रेशियो जो है स्कोर लाइन जो है वो टच कर लिया। जी हाँ बिल्कुल, 46 सेकंड बचेंगे, 45 बचेंगे, 44 बचेंगे, और अगर ये हार्ड पॉइंट जाता है रेवेनेंट के हाथ में तो कहीं ना कहीं हमें पता लग जाएगा कि ये वाला मैच जो है, ये वाला राउंड जो है वो रेवेनेंट अपने नाम पे रखने वाली है। उनको यहाँ से कोई भी खदेड़ नहीं सकता, कोई भी धक्का देके साइड नहीं कर सकता। लेकिन टीम एक्सिस ई स्पोर्ट्स जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि यार अगर हमने रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे BO3 में 2 लगातार हरा दिया,
2 बार हरा दे तो नेक्स्ट मैच हमें खेलना ही नहीं पड़ेगा उनको, और कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से अपना नाम जो है ये आगे साबित कर सकते हैं। लेकिन 138 रेशियो 134 बहुत ज्यादा ही आमने सामने वाला कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 14 सेकंड नहीं भी बचेंगे, 10 सेकंड और हार्ड पॉइंट कंटेस्टेशन हुआ, लेकिन 1 सेकंड के लिए अंदर 144 रेशियो 139 और अब जाके नया हार्ड पॉइंट बनेगा। ओके, 1 सेकंड सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। रेवेनेंट चेंज हो गया। जी हाँ, रेवेनेंट स्पोर्ट्स को सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, और यहाँ पे अगर एक गलती से भी 1 सेकंड दे दिया जाता है रेवेनेंट स्पोर्ट्स को टीम एक्सेस को द्वारा, तो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा रेवेनेंट स्पोर्ट्स जीतती हुई नजर आ सकती है। और मैं देख पा रहा हूं कि मीनो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 147 148 149 150, ओह माय गॉड, ये क्या था? 149 रेशियो 150 पे स्कोर लाइन रुक गई है। शानदार तरीके से टीम एक्सेस ने वो करके दिखा दिया है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। पॉइंट का बदलाव पूरी तरीके से भाग्य की रेखा को लिख दिया। ओह माय गुडनेस। ओके, लेज़रा भी वो अपने कलम में देखा था, वो कुछ मीनो कर रहे थे, Yes, exactly, शायद से उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। What a game. Oh my ये तो कुछ goodness. ज्यादा ही क्लोज हो गया, बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया। कौन VO3 था, 1 सेकंड, वो 1 पॉइंट का जो डिफरेंस रहा अब ये सोचिए, रेवेनेंट को बहुत ज्यादा चुभने वाला है। पूरी तरीके से जो स्टार्स आप अलाइनिंग की बात करते हैं, हॉरोस्कोप लास्ट मोमेंट पे 1-2 सेकंड अगर वो और टिक जाता, बिल्कुल। हार्ड पॉइंट वहां पे चेंज नहीं होता, वहां पे कंट्रोल था रेवेनेंट का, एंड Wow. टीम एक्सिस Wow. वहां से दूर थी। It is literally wow. इससे ज्यादा बढ़िया ग्रैंड फाइनल नहीं हो सकता। Oh my goodness. Oh my goodness. ये बहुत ज़्यादा पैसा वसूल गेम प्ले मैं इसको बोलना चाहूँगा। Absolutely. उसी के साथ ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे ये लो ब्रैकेट वाला गेम जरूर खत्म हुआ है, पर हमें ये भी पता चल गया है the question to the answer that was raised earlier कि कौन सी टीम है जो गॉडलाइक के अगेंस्ट जाने वाली है in the BO5 for the grand final, and it is going to be team Axis। अब हल्का सा मैं रिकैप में लेके जाऊंगा। हल्का सा। रिकैप कल से शुरू करते हैं। Exactly. टीम एक्सिस वो एक टीम है जो जी। आप जैसे बता भी रहे थे, अभी is अभी not न्यूली known. फॉर्म्ड हुई। Yes. एग्जैक्टली, प्लेयर्स नोन है। मैं ये जी। बताना चाहूंगा जी। सबको कि प्लेयर्स नोन है। जी, एक जी। एक प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर ने अपने आप नाम का बहुत अच्छा बना रखा है जी, कम्युनिटी जी। के अंदर, लेकिन हाँ, हाँ। जो टीम है वो अभी हाल ही फिलहाल में फॉर्म हुई है, और हम देख पा रहे हैं ऐसी सिनर्जी बिल्डअप कर रही है इन्होंने कि आप देख रहे हैं कि ग्रैंड फिनालेस खेल रहे हैं ताइवान एक्सेलेंस गेमिंग कप का। अपने आप एक लाजवाब बात है। एब्सोल्युटली, वो भी मैं एक और गॉडलाइक के चीज़ याद अगेंस्ट। जी दिलाना बिल्कुल। टीम एक्सिस को मैंने चुना था। ओह ऑलराइट, ठीक है। ओके, सो इफ दैट इज द केस, तो अगेन मैं आपको पूछता हूँ, यू आर ऑन द स्पॉट, ओके, अब आप किस तरफ जाना चाहेंगे? गॉडलाइक, ये विल यू स्टिक टू टीम एक्सेस? क्योंकि गॉडलाइक उनके सामने है, एंड अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन मैक वाइपर, कीप इन माइंड आपने दिल से चुना था टीम एक्सेस को। अब आप ऐसे वो एक हट नहीं अंदर सकते। से हमारी आवाज आई थी, दैट सोल साउंड, मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से सुना। दिस टाइम मे बी अगर मैं पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पे जाऊं, जस्ट टॉकिंग ऑन द फैक्ट्स के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, गॉड लाइक जीतते हुए नजर आई थी, इसीलिए ग्रैंड फिनाले में आगे बढ़ाई थी। मैं फिर से इस बार फिर से चला जाता हूँ गॉड लाइक के साथ ही। ऑलराइट, ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन BO5 सीरीज रहने वाली है। एग्जैक्टली राइट। सो काफी क्लोज तो रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी दोनों टीम्स के पास में, बिकॉज 5 गेम होने वाले हैं, एंड उसमें से जो बेस्ट 3 होंगी, दैट टीम विल बिकम द विजेता ऑफ कोर्स। एंड 4 लाख रुपए यहाँ पे प्राइस पूल, जिसके अंदर से 2 लाख रुपए वो विजेता को मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तकी है, दोनों टीम्स को ये कंफर्म है 1 लाख रुपए तो मिल रहे हैं। बिल्कुल, Exactly. एग्जैक्टली। जो 2 टीम हमें यहाँ पे खेलती हुई दिखाई दे रही है, उनको ये संतुष्टि है कि चलो कुछ भी हो आगे, हमें 1 लाख रुपए हमारी जेब में है। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। कितना क्लोज ये मैच था। मेरे Exactly right. जहन में बार बार वो दृश्य ऐसे भंवरों की तरह मंडरा रहा है। लास्ट पॉइंट पे वो हार्ड पॉइंट, जब we were on the verge of declaring winner. Yes. I was about to say कि रेवरेंट यहाँ पे कम बैक कर दिया, but no, hold on, we have more for you. The extra बिल्कुल। मसाला जिस चीज की आप बात करते हैं, हार्ड पॉइंट चला गया उनसे दूर, एंड टीम एक्सिस कहाँ जाने देंगे उनसे? एक मैच उनको सेकंड की मौका कीमत मिलेगा, आज पता लग गई। उन्हें इंच मिलेगा, वो मील बना देंगे, बनाते हुए नजर आए। अगर टीम रेवेनेंट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ही इज द मैन टू ब्लेम। उनकी गलती है। Alright. वो जो 1 सेकंड का जो डिफरेंस रहा, वो मैक वन वाइपर की वजह से रहा। मैंने बस अपने सोल को सुना, मुझे ऐसा लगा, इसलिए that just came out of my mouth. But no, again, it was a very close, very close game. And again, कोई anticipate नहीं कर सकता था कि इतना ज़्यादा close भी जा सकता है। 149, 150, unbelievable. But again, grand finals यहाँ पे TGC 2021 के तो बनता भी है। grand finals के अंदर आपको ऐसे गेम्स देखने को मिल रहे हैं, so इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? Exactly. Well, उसी के साथ अब हमारे पास में ऑफ कोर्स BO5 शुरू होएगा,
एंड जो BO5 होगा वो एक छोटे से ब्रेक के बाद में होएगा, बट बिफोर वी जंप इनटू द ब्रेक हम ऑफ कोर्स TGC पे हैं। यहाँ पे आपको पता है इतनी सारी नोन ब्रांड्स हैं, एंड अगर उनकी ब्रांड्स की बात करें तो थोड़ा बहुत एक एक करके हम मेंशन भी करते हैं, बिकॉज इतने सारे बेहतरीन यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो ये ब्रांड्स हमें लेके आती हैं एवरी सिंगल ईयर। दिस इज द 8th ईयर इन अ रो। उसी के साथ अगर हम शुरुआत करें तो मेरे सामने है यहाँ पे Thermaltake का दिस ऑसम लुकिंग केस। लुक एट दैट ब्यूटी। ये इतना प्यारा केस है जो आपको बेहतरीन, वेल अगेन टेम्पर्ड ग्लास तो है ही है, उसका डस्ट रेजिस्टेंट भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको भी पता है बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, एंड आप नहीं चाहते कि आपके गेमिंग रिग के आसपास इतनी मिट्टी रहे या उसके अंदर इतनी मिट्टी क्यों से। ये वो भी आपकी टेंशन दूर करता है, बिकॉज इट इज़ डस्ट रेजिस्टेंट एंड बहुत अपनी तरफ से प्रॉपर नॉइस कैंसलेशन भी करता है। इट इज़ दी थिंग टू हैव अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना PC बनवाएं। Thermaltake का दिस ऑसम लुकिंग केस जो है View 51TG ARGB फुल टावर इसका नाम है। उसी के साथ अगर हम मूव ऑन करें टुवर्ड्स ट्रांसेंड, अब केस के अंदर जाते हैं हम, एंड केस के अंदर के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये चीज़ जो SSD है ये आपका गेम बहुत ज़्यादा फास्ट बनाएगी। आपको लोडिंग टाइम बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल मेक इट सुपर लाइटनिंग फास्ट। एंड ये होने वाला है ट्रांसेंड का PCIe SSD 22OS, एंड विच will make, like I said again, your game run super duper fast। and उसी के साथ साथ अगर हम और आगे मूव करें तो हमारे पास में आता है अगेन केस के अंदर की बात कर रहे हैं हम तो वाटर कूलर्स की भी बात कर लेते हैं, जहां पे हमारे पास में ये बेहतरीन Zadak का वाटर कूलर इज गोइंग टू बी ब्रॉट ऑन बोर्ड, बिकॉज वेल अगेन आप वहां पे गेमिंग कर रहे हैं, आपके पास में फास्ट स्पीड है, आपकी गेम फर्स्ट क्लास चल रही है, लेकिन वहां पे कहीं पे हीटिंग प्रॉब्लम हो गई। कोई नहीं चाहता कि हीटिंग प्रॉब्लम हो, कोई नहीं चाहता कि उनका PC वार्म अप हो जाए एंड उसकी वजह से गेम वहाँ पे लैगी हो जाए। तो वहीं पे ये आता है ब्यूटीफुल लुकिंग ब्यूटी, देख लीजिए आप, RGB है उसके साथ में, देख प्रॉपर टेम्परेचर बताता है आपको। सो अगर आप सोच रहे हैं मार्केट के अंदर हैं, ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट का, तो ऑफकोर्स TG से दूर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है जो आपके लिए इतने सारे परफेक्ट गेमिंग हार्डवेयर लेके आती हैं हर एक साल। उसी के साथ अब हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर। आफ्टर दैट इज ऑफकोर्स द BO5 कमिंग राइट ऑफ।
Athletes are always challenging themselves to get better. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained. Give everything you've got to the challenge and show your finest. Bring your best out. Strive for perfection. It's our goal too.
Hello and welcome once again to Taiwan Excellence Gaming Cup 2021 के अंदर 8th edition of course जहाँ पे हम the games continue on. Codem का अब grand final शुरू होने वाला है जहाँ पे of course before we talk about the teams let's cue in the casters and the analysts. It is of course Mac Viper and Major Beast. So godlike probably for the win. There's a godlike, yes. All right. Godlike for the win. Alright. FTW. But हाँ मुझे लग रहा है कि कड़ा मुकाबला जाने वाला है जैसे हमने अभी परफॉर्मेंस देखा है टीम एक्सिस का Yes. मुझे लग रहा है कि कड़ा मुकाबला जाने वाला है हमें एक BO5 का भरपूर इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बिकॉज अगेन अगर हम टीम एक्सेस की बात करें तो ये वही टीम है जिसने वाइटैलिटी को हरा के वाइटैलिटी को इनफैक्ट बाहर निकाल दिया जी बिल्कुल राइट सो अगेन एंड वाइटैलिटी इज वन ऑफ दोस वेरी गुड नोन टीम्स ऑफ कोर्स तो पोटेंशियल जरूर है इनके पास लेकिन आपके ख्याल से ये BO3 प्रॉपर 5th गेम तक जाएगा कि गॉड लाइक प्रॉब्ली दिल से आपको क्या लगता है मुझे तो लगता है शायद 4th गेम में समाप्ति हो जाएगा कर्टन्स ओके ओके oh my let's goodness just see because team axis especially जिस हिसाब से खेलते हुए आए हैं एक सिर्फ इकलौता हार हुआ था and that was even against godlike तो दोबारा जब godlike के साथ जा रहे हैं तो वो होमवर्क जिस चीज की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं वो गृह कार्य आज करके आएंगे जरूर बट देखते हैं इस मैच के अंदर किस प्रकार से टीम आगे खेलती है वी हैव एवरीवन टीम एक्सिस लेट्स ड्रॉप प्रिज्म अबुजादा रैंडम एंड वॉर्टेक्स को ये बेस्ट देना होगा अगले 15 से 20 मिनट के अंदर जी हाँ कहीं ना कहीं अपना बेस्ट एंड ए गेम प्ले इनको दिखाना पड़ेगा तभी ये विजेता घोषित हो सकते हैं लेकिन गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स इनके अपोनेंट में आने वाले हैं एंड हम सबको पता ही गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स कितने ज़्यादा डेडली हो जाते हैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सबको अपने दर्शकों को स्पेशल फोर्सेस में हमारे सामने है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स एंड यहाँ पे ग्रिल्ला स्कोर में हमें दिखाई देंगे टीम एक्सिस क्रॉसवायर के ऊपर एक बार फिर से हार्ड पॉइंट बनता हुआ सेंटर लाइन बिल्डिंग के अराउंड न्यूट्रिनो कल बात हमने की थी बताया था किस हिसाब से वर्ल्ड चैंपियनशिप का वो जो थोड़ा बहुत शिकस्त है कहीं ना कहीं टीम के थोड़े बहुत मेंटालिटी पे वर्किंग करते हुए नजर आया जरूर है बट इंस्टेंटली ट्रंक्स ने 2 फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला एंड ये हार्ड पॉइंट जो है ये सिर्फ इसीलिए बढ़ रहा है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ पे ट्रंक ने वहाँ पे 2 फिनिश पॉइंट निकाला बिकॉज गोरिल्ला स्क्वाड से टीम एक्सिस दे वर जस्ट अग्रेसिंग बट रोक के रखा गया बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं दर्शक को बता दूं ये BO5 मुकाबला होने वाला है जी हाँ बिल्कुल गॉडल के सारे प्लेयर्स मैं बोलना चाहूँगा एकदम सही पोजीशन लेके तैनात हो चुके हैं गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स को पता है कि आखिरकार कौन सा एंगल कहाँ से निकालना है देखिए ट्रंक्स जो है ऊपर तक नहीं बढ़ने दे रहे हैं अपने अपोनेंट्स को आने तक नहीं दे रहे हार्ड पॉइंट की शक्ल तक नहीं देखने दे रहे हैं कि आखिरकार हार्ड पॉइंट दिखता है कैसे लेकिन यहाँ पे ब्रोज आए हैं अपने प्राइस फाइटर्स के साथ और मेरे ख्याल से अगर 1-2 शॉट्स लगा दे इसे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी बिकॉज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अब जाके कहीं ना कहीं खाता खुला है टीम एक्सिस का एग्जैक्टली खाता खुल चुका है
धीरे धीरे करके बस अभी वो सिर्फ खाता ही खुला, अभी बहुत पीछे हमें नजर आएंगे। धीरे धीरे करके टीम एक्सिस की पॉइंट बढ़ जरूर है, बट अगर मिनी मैप की तरफ नजर डालें तो कहीं ना कहीं हंटर के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आ जरूर है अभी ज्यादा फ्रॉम द साइड्स ऑफ टीम एक्सिस। बट एक के बाद एक प्लेयर गिरते हुए नजर आ मेरे बर्न्स एक हार्ड पीक लेके ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट बर्न्स के साइड से एक बहुत बड़ी चूक एग्जैक्टली जो औदा है उनका, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्टली आपने देखा कि वॉटेक्स आए और उनके सामने थे, वॉटेक्स की एकदम मैं बोलना चाहूंगा वॉटेक्स जो निशाने पे थे, एडीएस पे थे, लेकिन वॉटेक्स ने स्लाइड कर दिया और आपने देखा स्लाइड शॉट एकदम कारगर साबित होता हुआ दिखाई दिया। बात करेंगे 38 रेशियो 20 का स्कोर लाइन बिल्डअप हो चुका है और यहाँ पे शानदार शानदार M13 का पोजीशन बाय गॉडलाइक लर्न। ऑलराइट ओके लेकिन ट्रंक से आके वो बचा दिया गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गॉडलाइक स्पोर्ट्स ने ये वाला हार्ड पॉइंट भी अपने नाम पे रख दिया। 40 रेशियो 26 एक्सपोर्ट चल रहा है, लेकिन हार्ड पॉइंट पे अब जाके कब्जा जो है वो हो चुका है टीम एक्सिस का। एंड उसका कारण बने प्रिज्म, बिकॉज उन्होंने गॉडल के 2 प्लेयर्स को अब इंस्टेंटली यहाँ पे ट्रेड में लेते हुए नजर आए। सिर्फ 3 पॉइंट न्यूट्रिनो के नाम पे भी सिर्फ 2 कटाना के साथ भागने की कोशिश थी जरूर, बट गन से कहीं ना कहीं कुछ कमाल दिखाना होगा। लर्न ही इज जस्ट वेटिंग, धाक ला के बैठे हुए, एक और फिनिश पॉइंट अपने नाम करते हुए। एंड अब वो हार्ड पॉइंट पूरी तरीके से ओपन है जहां पे कोई भी प्लेयर जाने के पसंद में नहीं है। उसका कारण बनता है बिकॉज अगले 4 सेकंड में अगला हार्ड पॉइंट बनने वाला है जहां पे पहले से ही हमें कुछ टीम कार्यरत नजर आएंगी, एंड दैट इज नन अदर देन न्यूट्रिनो फ्रॉम द साइड्स ऑफ गॉडलाइक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये 5 पॉइंट की लीड से मुझे टीम एक्सिस दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप खेल रहे हो गॉडलाइक के अगेंस्ट, बिकॉज गॉडलाइक के अगेंस्ट एक एक पॉइंट यहाँ पे अपने नाम पे करना एक बहुत बड़ी बात है। 47 रेशियो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 48 रेशियो 45 का स्कोर लाइन बिल्डअप हो चुकी है। 40 अभी भी सेकंड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट उनको मिल जाएंगी पूरी। अगर ये होल्ड करे जाता है गॉडलाइक के द्वारा तो मेरे ख्याल से एक बहुत भारी लीड जो है वो इनके पास आ जाएगी। एंड हाँ, तब मुश्किल वाला समय जो है टीम एक्सिस का हो सकता है, लेकिन ये क्या न्यूट्रिनो ने निकाल दिया कटाना, एंड कटाना से कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा यहाँ पे काट जरूर सकते थे, लेकिन लेजरा का थंब पर आता हुआ और यहाँ पे न्यूट्रिनो को शट डाउन कर चुके हैं वो। एग्जैक्टली एंड एक बार फिर से ये हार्ड पॉइंट का कंट्रोल गॉडलाइक के प्लेयर्स के द्वारा, इसका कारण हमने देखा वहाँ पे कुछ प्लेयर्स नजर आ जरूर थे। हंटर के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया ब्रोस ने, बट ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। अगले 16 सेकंड में हार्ड पॉइंट फिर से शिफ्ट होगा। इस हार्ड पॉइंट को पूरी तरीके से गॉडलाइक ने बुना दिया। अगर ये डिफरेंस जल्दी से जल्दी नहीं कवर अप किया जाएगा तो कहीं ना कहीं टीम एक्सिस भी आ जाएंगे। नाइस सिर्फ हार्ड पॉइंट, न्यूट्रिनो इज जस्ट मार्चिंग इन फॉरवर्ड अगले हार्ड पॉइंट पे प्रीएम्प्ट करके बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंचना, बिकॉज इसी एरिया के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हमें अगला हार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रंक्स बुलाने की कोशिश कर जरूर रहे थे, बट अभी ज्यादा ने वहां पे उनका ट्रेड ले लिया। बट स्टिल वो शतक का आंकड़ा से 1 पॉइंट दूर जो अब हासिल कर लिया गया गॉडलाइक के द्वारा इस फिनिश के साथ। जी हाँ, 52 सेकंड अभी भी बचेंगे। 52 सेकंड तक अगर होल्ड करके रख दिया गया ये वाला हार्ड पॉइंट तो समाप्त है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें टीम एक्सिस कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे पाएंगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ टीम एक्सिस की तो वो अपना पूरा एडी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए अभी ज़्यादा है और अभी ज़्यादा ने एक शानदार एनालिटर का प्रदर्शन करा, ब्रोस को डाउन कर दिया, रैंडम को भी लेकिन डाउन कर देगा, पनिश कर देगा। ट्रंक्स यहाँ पे दिखाते हुए अपने कर्तव्य, वो भी फेनिक के द्वारा फेनिक के साथ। लेकिन अभी भी देखिए जो गॉडलाइक है वो बिल्कुल भी इस वाले हार्ड पॉइंट को छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अभी तक 25 सेकंड बचे, 25 सेकंड में अगर इन्होंने होल्ड कर दिया मैं बोलूंगा इनके नाम पे ये राउंड जाने वाला है। न्यूट्रिनो आरपीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, थोड़ी देर पहले कटाना एंड बाकी दूसरे गन्स का भी हमें देखने को नजर आया है। अगर बात होगी तो मैं जरूर जानना चाहूंगा न्यूट्रिनो का क्या स्टैट्स चल रहा है, क्या डिफरेंट गन्स का इस्तेमाल, मे बी जस्ट ट्राइंग टू गेट ऑल दिस कॉम्बिनेशन राइट, जिससे भी एट द एंड ऑफ द डे वहां पे रिजल्ट आए। आपको क्या लगता है? आई मीन न्यूट्रिनो कम्युनिटी में मशहूर इसलिए कि वो आरपीडी चला रहे, तो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ठीक है यहाँ पे आरपीडी चलने वाली, बट थोड़ा सा मैं देखिए शॉक्ड भी हूँ बिकॉज हमें पता ही है कि वो अभी जो आरपीडी में रिसेंटली नर्फ मिला है तो कहीं ना कहीं उसको लेते हुए मेरे को लग रहा था कि नहीं चला सकते, लेकिन 150 का स्कोर लाइन टच हो चुका है और गॉडलाइक स्पोर्ट्स ने अपने नाम पे कर दिया है। एक शानदार लीड ली जरूर है, लेकिन हाँ कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। मेरे ख्याल से अभी भी वापसी कर सकती है टीम एक्सिस। एग्जैक्टली एंड काफी टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिला जरूर था। फिलहाल से अभी भी अगर आप देखिए तो न्यूट्रिनो सारे प्लेयर्स को हिदायत देते हुए कि क्या गलत करना है, क्या गलत जो है उसको सही करना है एंड अपनी गलतियों से बाज आना। बर्न्स, फेक, ट्रंक्स एंड न्यूट्रिनो, ब्रोस, एवरीवन जस्ट वेटिंग फॉर इट। वे ऑफ 5 मुकाबला रहने वाला है, श्रृंखला लंबा चलेगा। आई गेस कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक कहीं ना कहीं रिडेम्पशन का हो जाएगा टीम एक्सिस के साइड से। यहाँ से उनको किसी ना किसी तरीके से वो 1 ऑल करना होगा, बिकॉज अगर ये मैच दे बैठे फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से कमबैक करना गॉडलाइक के अगेंस्ट। आई मीन यस, बिल्कुल गॉडलाइक के अगेंस्ट कमबैक करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जरूर सकता है, लेकिन गॉडलाइक मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से गेम प्ले दिखा रही, कल मानते हैं थकी हुई थे गॉडलाइक की अगर मैं बात करूँ, कल WC खेल के आए थे तो काफ़ी हमें देखने को लगा प्लेयर्स भी थोड़े से दिक्कत में थे, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि अब अपना पूरा गेम प्ले पूरा 100% देते हुए ये पूरी टीम दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कल के वो जो फिटनेस थी वो हमें नजर आ रही थी, बट स्टिल
वो सीधा फाइनल के रास्ता में गए थे। स्टिल वो सीधा फाइनल में जाने वाली ये पहली टीम बनते हुए नजर आई थी। कल के दिन हमें देखने को मिला था गॉडले के साइड से। आज टीम एक्सिस गई जरूर है, बट कहीं ना कहीं वो सारे मैचेस जीतने के बाद जो आज के दिन वो खेलते हुए नजर आए हैं, महज कुछ सेकंड्स की वो देरी है जब हम उस दूसरे मैच की तरफ जाएंगे। वो BO2 का मुकाबला टोटल 5 मैचेस सीरीज में खेला जाएगा, बिकॉज इससे पहले लगभग वो टोटल 3 मैचेस खेले जा रहे थे, बट अब 5 मैचेस के बाद इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कमबैक करने का जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टीम एक्सिस के साइड से। अब जब रेवेनेंट के अगेंस्ट खेले थे तो रोक के रखे थे। अगर उस तरीके का हल्का सा लक फैक्टर अगर आ जाए ना कि लास्ट मोमेंट पे वो हार्ड पॉइंट शिफ्ट जो पहले से कैलकुलेटेड होता तो जरूर है, बट जस्ट इमेजिन करिए उस मैच में अगर रेवेनेंट के पास वो हार्ड पॉइंट 2 सेकंड या 3 सेकंड और होल्ड हो जाता तो कहीं ना कहीं चीजें बदल सकती थी। फिर वो BO3 में क्या पता हमें कुछ तख्ता पलट देखने को मिल सकता था, बट नहीं। जिस तरीके से फिर एक धावा बोला गया था रेवेनेंट के प्लेयर्स के द्वारा, जैसे एक सर्कल, जैसे एक वो हार्ड पॉइंट शिफ्ट हमें देखने को मिला था टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ टीम एक्सिस, उस मोमेंट पे फिर लेजा, प्रिज्म, अभिज़ादा एंड रैंडम ही वो प्लेयर थे जो अपने उस फोर्ट को ब्रीच होने से बचाने में बारंबार सक्सेसफुल हुए थे। एंड फिलहाल के लिए वॉर्टेक्स काफी अच्छे तरीके से खुद को पेसिफाई करते हुए हैविंग सम बेवरेजेस ऑल अराउंड। सेकंड मैच में महज हम कुछ ही सेकंडों के अंदर प्रस्थान करेंगे। अगले 5 सेकंड बाद ये मैच एक बार फिर से एक रौद्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, ये समिट का मैप रहने वाला है, ये हार्ड पॉइंट मोड रहने वाला है और 1 पॉइंट की लीड के साथ गॉड लाइक मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अब दूसरा मैच स्टार्ट हो चुका है, एक नया हार्ड पॉइंट बन के आएगा। नया हार्ड पॉइंट बनने में यहाँ पे 4 सेकंड मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और देखिए बनते ही यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गॉडल के ब्रोज आगे आ चुके हैं, उनके हाथ में फेनेक है, आगे बढ़े, एक प्लेयर को देखा और शॉट डाउन करना चाह रहे थे, पर अबीज दादा के पास भी उनको फेनेक की थी और आप देख सकते हैं कि उनका स्प्रे कनेक्ट हो गया और वहाँ पे ब्रोज को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे गॉडल की, क्योंकि उनके हो चुके हैं 8 पॉइंट। जी हाँ, 8 उन्होंने अपने नाम पर कर दिया और इसी के साथ खाता खुलता हुआ टीम एक्सिस का 1 पॉइंट अपने नाम पे करते हैं। लेकिन ये जो शिकस्त है, ये जो मैं बोलूंगा एक चूहे बिल्ली का खेल है, जो केओटिक मोमेंट है, ये हमें दिखाई दे रही है पहले हार्ड पॉइंट के अंदर। एग्जैक्टली, सेंट्रल लाइंस का ये हार्ड पॉइंट बहुत मुश्किल होता है कंटेस्ट करने का, बट उसमें गॉड लाइक ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वॉर्टेक्स आए जरूर थे, बट लर्न ट्रंक्स के सामने आप कहाँ टिक पाएगा। जिस एडी चोटी के दम से ये प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए हैं, एक बैक एंगल क्रिएट करने की कोशिश थी जरूर। टीम एक्सिस दे आर जस्ट नॉट एबल टू स्टैंड एट दिस मोमेंट। गॉडल न्यूट्रिनो अपने ओह माय गॉडनेस होल के 26 निकाल दिए। एग्जैक्टली, शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं जरूर। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात, 1 पे ही स्कोर रुक गया और मेरे बोलते ही बोलते ओके ठीक है, मैंने जैसे ही बोला 1 पे स्कोर रुक गया तो कहीं ना कहीं इनका खाता जो है उसमें पॉइंट्स आने शुरू हो चुके थे। तो हम देख पा रहे हैं एक नया हार्ड पॉइंट बनेगा और इस नए हार्ड पॉइंट में कहीं ना कहीं अब पता लगेगा कि टीम एक्सिस जो है इस पूरे के पूरे मैच में अपने नाम पे और स्कोर लेने वाली है या गॉड लाइक स्पोर्ट्स उनको एक भी मौका नहीं देगी। अब देखने वाली बात रहेगी जरूर। बर्न्स का इंस्टेंटली यहाँ पे 3 फिनिश पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे निकालते हुए नजर आए जरूर, बट फाइनली उनको टेक डाउन किया गया नन अदर देन रैंडम। एग्जैक्टली यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है पूरी पूरी गॉडल की लाइनअप। आप देख सकते हैं गॉडल ट्रंक्स जो है KRM चला रहे हैं और KRM वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉटगन है इस गेम के अंदर। जी हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर शानदार शॉटगन है और मैं अभी इसको यूज करता हूँ। थोड़ा सा पेचीदा इसको चलाना, लेकिन हाँ सब प्रो प्लेयर्स इसको यूज करते हैं, आराम से करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि 53 रेशियो 10 का जो स्कोर है वो बिल्डअप कर दिया गया है गॉडल की टीम के द्वारा। मेरे को ये लग रहा है कि जैसे आपने प्रेडिक्शन दी थी गॉडल यहाँ पे जीत सकती है, जिस हिसाब से गेम प्ले जा रहा है, सच में वाकई में मुश्किलें जो है वो क्रिएट हो चुकी है अब टीम एक्सिस के लिए। एंड अगर आप देखिए तो प्लेयर सिर्फ 2 प्लेयर इस पूरे हार्ड पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं। उस मिन मैप के देखिए तो सिर्फ 1 एंड 2 थे। तीसरे जिनको प्लेयर है बर्न्स, अब कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहे हैं उस सीन के अंदर 2 प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे रोक के रखे हुए हैं। लेजरा को रोकने की कोशिश थी जरूर, लेजरा रुकने वालों में से नहीं है फिलहाल के लिए। ब्रॉस के ऊपर हमारा POV 8 टिक चुका है, स्पॉन से ही बाहर नहीं निकले देने जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी जितने भी एंट्री पॉइंट्स है टुवर्ड दैट पर्टिकुलर हार्ड पॉइंट उसको ब्लॉक करने की कोशिश। अगला हार्ड पॉइंट भी बना एंड कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्पेशल फोर्स, बट दिस टाइम आई गेस टीम एक्सिस के पास ये हार्ड पॉइंट आ चुका है। अब ये छीनना बहुत मुश्किल, कुछ जो वेंट्स होते हैं वहाँ से कुछ ओपनिंग निकालने की कोशिश रहेगी जरूर, बट कैसे ये छीना जाए एक बहुत बड़ा सवाल। एंड उसमें सबसे बड़ा जो डेंट है वो लग चुका है वॉर्टेक्स एंड लेजरा के नाम पे, बिकॉज उनको रिमूव कर दिया है। गेस ये हार्ड पॉइंट बहुत ही जल्दी टीम एक्सिस से छीनते हुए नजर हमें आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल छीन चुका ऑलरेडी। एग्जैक्टली छीन चुका है। 33 सेकंड्स बचे हैं और कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि गॉड लाइक स्पोर्ट्स अपने नाम पे रख दिया था, एक थंपर आया और प्रिज्म को पनिश कर दिया गया है। लेकिन हाँ, अब रैंडम का एक थंपर आया, लेकिन उससे एक वैल्यू जनरेट नहीं हो पाई है। मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, एक सवाल रहेगा आपसे, ये मैं अकेला मैं ही हूँ जो ऐसा सोचता है या मेरे साथ आप भी हैं या जनता जो हमारे को देख रही है, जितनी भी यहाँ पे आवाम देख रही है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की कम्युनिटी देख रही है, वो भी मेरी बात से सहमत है? यार जो फेनेक है, जो फेनेक गेम जो गन है हमारे पास, इसका जो हिप फायर है वो
ज्यादा कारगर साबित होता है rather than हम अगर इसको एडीएस करते हैं, बिकॉज मैं देखता हूँ कि इसके हिप फायर से अगर आप दूर के भी अगर शॉट लेना चाहो तो आराम से कनेक्ट हो जाते हैं। मिड रेंज में भी आप देख सकते हो, क्लोज रेंज में तो हिप फायर इसका बहुत 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 प्यारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आते हैं। आपके क्या विचार रहेंगे इस पे? बिल्कुल मैं 110% अग्री करूंगा। जिस हिसाब से इस गन के अलावा तो मुझसे और कोई गन भी नहीं चलती है, बिकॉज हिप फायर पे खेलने का आदत है। जब तक मैं एडीएस ऑन करता हूँ तब तक मैं स्पॉन की तरफ वापस से लौट गया होता हूँ। तो कहीं ना कहीं फेनक वो मुझे अपॉर्चुनिटी देता हमेशा से है, बट फिलहाल के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा प्रिज्म के पास। स्पैरो के यूज से एक फिनिश निकाला जरूर था लर्न के नाम पे, बट लर्न फिनिश होते ही वहां पे न्यूट्रिनो ने वहां पे रैंडम को डाउन किया। एंड ये जो पॉइंट का जो डिफरेंस है, ये टीम एक्सिस कम करने में पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल, पूरा झोंक दिया गया है। बिकॉज आपको पता है, अगर आप देखिए फिलहाल के लिए गॉडलाइक के प्लेयर्स अब आप देखिए तो उस रेड कलर मार्कर में पूरे तरीके से उस हार्ड पॉइंट के अराउंड कंस्ट्रिक्टेड हैं, बारंबार वहां पे घूम फिर के वहीं पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता है अगर टीम एक्सिस को यहां से मौका मिला तो ये वो टीम है जो बारंबार कमबैक करने में पूरी तरीके से सक्षम हमें नजर आ सकती है। न्यूट्रिनो का स्पैरो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्टिव वैल्यू क्रिएट कर सकता है, बट फिलहाल के लिए हार्ड पॉइंट दोनों साइड से कंटेस्टेड है। जी हाँ, दोनों साइड से कंटेस्टेड जरूर है। किसी के पास भी यहाँ पे जा नहीं रहा था मैं बोलूंगा पॉइंट, लेकिन हाँ यहाँ पे अब कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है टीम एक्सिस ने अपने नाम पे एक सेकंड नहीं लगा था, लेकिन आ चुके गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स और उन्होंने वहां से उनको खदेड़ दिया। यहाँ ये जो हार्ड पॉइंट है ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कौन अपने नाम का जो है डंका बजाने वाला है, किसको कौन ऐसी टीम रहने वाली है, कौन ऐसी टीम रहने वाली है जो इस हार्ड पॉइंट को अपने नाम पे रखने वाली है। बात करेंगे 81:95 का हमें स्कोर लाइन देखने को मिल रहा है। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स अपना पूरा ए गेम पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे टीम एक्सिस भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ट्रंक्स अपने केआरएम का प्रदर्शन दिखाते हो, लेजरा को एक हिट मार का आ चुका है। लेजरा यहाँ पे दोबारा से शानदार गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए टाइप 25 का कहर जो है पूरे के पूरी लॉबी में दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिला, बट शतक आंकड़ा एक बार फिर से छूने वाली नन अदर देन गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स टीम एक्सिस को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि बारंबार वो बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कॉन्टेस्टेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने स्पॉन से अब इस सेंटर लाइन्स के अराउंड आ चुके हैं। अगला 18 सेकंड आई गेस कहीं ना कहीं किसी एक टीम के साथ हम देखने को मिल सकता है कि वो हार्ड पॉइंट छोड़ते हुए नजर आए जरूर से। एंड इट इज गोना बी गॉड लाइक जो उस हार्ड पॉइंट से रिट्रीट कर रहे हैं, दूसरे हैंड साइड पे जाने की कोशिश अभी ज्यादा को भी यहाँ पे रोका जाएगा जरूर बर्न्स के द्वारा। ट्रंक्स गोइंग डाउन बाय वोर्टेक्स, 13 फिनिश ऑलरेडी ब्रोज निकाल चुके हैं। 18 बर्न्स के नाम पे 27 न्यूट्रिनो। ही इज लुकिंग अनस्टॉपेबल एट दिस मोमेंट। एग्जैक्टली, काफी ज्यादा बड़ी तरीके से गेम प्ले दिखाया जा रहा है टीम गॉड लाइक के द्वारा। एंड मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए टीम एक्सिस को, काफी अच्छे गेम प्ले दिखा रहे हैं। देखिए 94 95 और ये स्कोर लाइन आगे ही जाने वाली है। मेरे को लग रहा है ये वाला हार्ड पॉइंट इनके नाम पे रहेगा, और अगर ऐसा हुआ, अगर ये हार्ड पॉइंट इनके नाम पे रहता तो काफी अच्छी लीड इनके नाम पे आ जरूर सकती थी। लेकिन अब गॉड लाइक स्पोर्ट्स के हाथ में आ चुकी है ये हार्ड पॉइंट और 44 सेकंड्स है, और मेरे ख्याल से काम जो है तमाम होता हुआ नजर आ रहा है मुझे टीम एक्सिस के लिए। एग्जैक्टली, एंड यहाँ से कम बैक करना बहुत ही मुश्किल। हार्ड पॉइंट एक बार फिर से शिफ्ट होते हुए नजर हमें आएगा जरूर, जो ये हमें ब्रिज के अराउंड फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे गॉडल का पूरी तरीके से बोलबाला नजर आ रहा है, बट कॉन्टेस्टेशन बारंबार देखने को मिल रहा है टीम एक्सिस के द्वारा। अभी भी शतक आंकड़े से एक पॉइंट हमें दूर नजर आएगी। चारों प्लेयर्स एक साथ आएंगे एंड कहीं ना कहीं फिर से जाएंगे अपने स्पॉन की तरफ। 142 143 17 सेकंड्स रिमेनिंग एंड अब जाके कंटेस्टेशन कर दिया गया। लेकिन हाँ, इसी के साथ न्यूट्रिनो आता है। न्यूट्रिनो बोलते हैं जल्दी से खत्म करो यार, क्या कर रहे हो। वो एक स्पैरो का यहाँ पे प्रदर्शन दिखाते हैं, शानदार तरीके से एनिमी को डाउन कर देते हैं 150 होते हुए, और यहाँ पे 100 पॉइंट भी टच नहीं करने दिए टीम। 2-0 ओह माय गुडनेस, 2-0 न्यूट्रिनो। आप देख सकते हैं वो जो खेल का प्रदर्शन इस मैच के अंदर। एक समय पे ऐसा लग रहा था 27 फिनिश पॉइंट शायद कहीं ना कहीं 40 में कन्वर्ट हो जाए अगर कुछ और फिनिश पॉइंट निकालते तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से था। हम कुछ डिफरेंट वेपन्स के भी इस्तेमाल देखे थे मैच के अंदर। जो वन शॉट किल हमें नज़र आ रहा था दैट वाज नो अदर देन ट्रंक्स एंड बर्न्स। अभी भी वार्तालाप जारी है कि कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं कि चलिए जल्दी से ये मैच खत्म करते हैं, रैप ऑफ द सीरीज। एग्जैक्टली, काफी अच्छे कॉन्फिडेंट तरीके से मुझे दिखाई दे रहे पूरे पूरे इनकी लाइनअप। और आप देख सकते हैं कि ठीक है अभी एक मैच जीते जरूर है, ज्यादा अच्छी इन्होंने यहाँ पे अभी सेलिब्रेशन चालू नहीं करी। इनको पता है कि यार हमें हमारे सामने जो टीम है टीम एक्सिस है, बिल्कुल भी अंडर पावर उनको नहीं करनी चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मैं देख पा रहा हूँ शानदार तरीके से जो पॉजिटिविटी है वो दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली, लेज़रा एक बार फिर से ध्यान मग्न अपने फोन के ऊपर। अगर आप देखिए तो वोर्टेक्स थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। एंड लाजमी बनता जरूर है, बिकॉज अगर यहाँ से हारते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो सीधा फिर बेस्ट ऑफ 3 फिर वो 4 में नहीं जाएगा, बिकॉज बैक टू बैक 3 राउंड्स कहीं ना कहीं अगर निकाल देती है टीम तो दे विल स्ट्रेट अवे मूविंग एज द विनर ऑफ दिस ताइवान एक्सेलेंस गेमिंग कप 2021। एंड उसी के साथ वो जो धनराशि है भी वो इनके नाम होगा, प्राइस पूल भी नाम होगा, एंड जो ब्रैगिंग राइट्स आता है
कहीं ना कहीं अपने इस पूरे रीजन में कॉर्डिनेटर है सबसे बड़ी टीम, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम अगर आप इनको बोलना चाहो इस पूरे रीजन के अराउंड, स्पेशली फ्रॉम द इंडिया। एंड कहीं ना कहीं ऐसे मिना में इनका बोलबाला रहता है, रिसेंट टाइम में भी इनका प्रदर्शन, ना ही सिर्फ इस कप में मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनके पूरे पिछले 6-7 महीने की जर्नी की तरफ देखिए, अनबीटेबल। काफी सारे बीच में हर्डल्स आए, काफी सारे आलोचना भी हुए, बट उन सबको साइड रख के अपना गेम प्ले में फोकस करना एंड फिर गॉड लाइक इस फाइनल के अंदर टीम एक्सिस के अगेंस्ट यहाँ पे डोमिनेट करते हुए नजर आई। बट मैं दाद देना चाहूंगा टीम एक्सिस के परफॉर्मेंस के ऊपर, ये फायरिंग रेंज कहीं ना कहीं एक द फाइनल नेल इन द कॉफिन ना बन जाए, ये ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा टीम एक्सिस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा सबको ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, हम देख पा रहे हैं कि फायरिंग रेंज मैप रहने वाला है और मोड हमारा वही फेवरेट हार्ड पॉइंट मोड रहने वाला है। और हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 58-57 सेकंड्स तक वो हार्ड पॉइंट रहेगा, लेकिन अभी तक किसी ने भी उस हार्ड पॉइंट पे कैपिटलाइजेशन करने की कोशिश नहीं करी है। बात करेंगे हम टीम एक्सिस की, जो टीम एक्सिस ने वहां जाके अपने नाम का जो बोलबाला है वो दिखाने की कोशिश करी है। उनके खाते में मुझे 8-9-10 पॉइंट्स जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। अब जाके कहीं ना कहीं कंटेस्टेशन करा गया गॉड लाइक के द्वारा, और हाँ, अब कहीं ना कहीं मेरे को दिखाई दे रहा है कि कंटेस्टेशन जारी रहेगा। एग्जैक्टली एंड 12 पॉइंट का लीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है गॉड लाइक जैसे टीम के साइड से। मे बी दैट इज टेस्टिंग द वाटर, या मे बी चाह रहे होंगे थोड़ा सा और मौका दे दे सामने वाली टीम को एक कमबैक करने के लिए, वो देखने वाली बात रहेगी जरूर। बट ऐसा होएगा या नहीं, देखने वाली बात रहेगी। एक ऑल्सो लेजरा ऑल्सो एक फिनिश निकालते हुए, 2 फिनिश पॉइंट ऑलरेडी लर्न अपने नाम करते हुए। एंड ये गन की एक खासियत है, ये वहाँ पे आपको नंबर ऑफ बुलेट्स दिखाती है, आपको स्क्रीन के ऊपर कितने बुलेट्स बाकी गन में है, तो कहीं ना कहीं दैट आल्सो कम्स टू वन गुड थिंग। लर्न अपने M13 से यहाँ पे जलवा बिखेरते हुए 7 सेकंड के बाद ये जब हार्ड पॉइंट शिफ्ट होगा ओपन से, कहीं ना कहीं कमांड सेंटर के अराउंड जो स्पेशली स्पेशल फोर्सेज का जो बेस होता है वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं किस प्रकार का बनेगा। बट नो, ट्रेलर के अराउंड ये मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है आपको मेरी लिस्ट? आई मीन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हार्ड पॉइंट रहने वाला है वो 56 सेकंड के लिए यहाँ पे चालू भी हो चुका है, और यहाँ पे टीम एक्सिस ने अपने नाम पे वो हार्ड पॉइंट कर दिया। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि टीम एक्सिस शुरुआती तौर से ही इस मैप के अंदर हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, सबसे अच्छी एक भारी लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ गॉड बर्न्स आ गए हैं, और वो आए थे लेकिन चले भी जा चुके हैं। 40 सेकंड अभी भी बचेंगे, 40 सेकंड के अंदर कुछ कमाल दिखाना पड़ेगा गॉड लाइक की टीम को। और मैं देख पा रहा हूँ अभी हमें स्कोर लाइन में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड में अपनी बात करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखाई दे रही है जिसका मुझे डर था। जी हाँ, गॉड लाइक स्पोर्ट्स हारते हुए दिखाई दे रही है। हमें दिखाई दे रहा है कि जो लीड है वो एक के बाद एक करके टीम एक्सिस के खाते में जा रही है। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं ये वाला हार्ड पॉइंट अब रहने वाला है गॉड लाइक के हाथों पे, लेकिन नहीं, खदेड़ दिया गया। और इसी के साथ दोबारा से ब्रोस पीछे की तरफ से आते हुए फेनेक का इस्तेमाल कर रहा है। वेनम कोयल की उनके पास स्किन रहने वाली है, काफी अच्छी यहाँ पे ये स्किन भी है। लेकिन हाँ, अभी भी जो स्कोर रेशियो है वो हमें दिखने को मिल रहा है कि 36, 37, 38 रेशियो 51। एग्जैक्टली, स्नाइपर नेस्ट का कंट्रोल इसीलिए लिया जा रहा है प्रिज्म के द्वारा, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रेलर के अराउंड वो अगला हार्ड पॉइंट बनेगा, जिस चीज की आप कल बात कर रहे थे। बिल्कुल स्पष्ट तरीके देखने को मिल रहा है कि अगर आपके पास वो स्नाइपर नेस्ट का कंट्रोल होता है तो कहीं ना कहीं ट्रेलर में जाना उतना ही आसान होता है। प्रिज्म के पास कंट्रोल है जरूर, बट क्या यहाँ पे टीम एक्सिस अंदर जा पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल। एंड फिलहाल के लिए वो जवाब हाँ लग रहा है। तो कल जो आप एक छोटा सा गेम रीड बताए थे, उसका एक बहुत ही बढ़िया मजारा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत करना चाहूंगा। देखिए, स्नाइपर पे प्रिज्म बैठे हुए, लेकिन प्रिज्म को हटाना चाहेंगे ट्रंक्स, लेकिन नहीं, ट्रंक्स का स्पैरो उनको नहीं लगता है, और प्रिज्म वहां पे ट्रंक्स को जो है पनिश कर देते हैं जरूर। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ गॉड जो लर्न है, जो न्यूट्रिनो है, उनके पास भी स्पैरो आ चुका है, बस उनके ऊपर उनको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। और जब न्यूट्रिनो स्पैरो के साथ आएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत जो है टीम एक्सिस के लिए वही टाइमिंग की बात हो जाती है। मैं जब इस कब वो आप अपने ऑपरेटर स्किल्स को यूज करो, कहीं ना कहीं उस हिसाब से देखने वाली बात रहेगी, या कब अपने स्कोर स्ट्रिक्स को यूज करो, व्हाटएवर बी द केस। बट फिलहाल के लिए देखने वाली बात रहेगी कब न्यूट्रिनो वो स्पैरो यूज करते हैं, बिकॉज हमने काफी बार देखा हार्ड पॉइंट की एकदम शुरुआती क्षण में जब आपको लगता है एक, अब हर हार्ड पॉइंट का कहीं ना कहीं कोई एक चोक पॉइंट होता है, कुछ का कुछ ज्यादा चोक पॉइंट होता है, कुछ का बहुत ज्यादा एंट्री होता है। उस हार्ड पॉइंट में जहाँ पे काफी कम एंट्री होती है, 1 या 2 एंट्री होती है, वहां पे आप बुला लीजिए एक XS1 को लाया था अगर आपके पास है, कहीं ना कहीं उसके बाद वो पूरा हार्ड पॉइंट आपके नाम जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल 73 रेशियो 76 चलता हुआ बहुत ज्यादा आमने सामने वाला मुकाबला हो गया है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से गेम प्ले जा रहा है, मुझे लग रहा है गॉड लाइक जो है लीड ले ही सकती है। यहाँ पे लीड लेने से उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, रोक दिया गया कंटेस्टेशन में हमें देखा जा रहा है। और इसी के साथ वुडन में बनता हुआ ये वाला हार्ड पॉइंट डिसाइड कर देगा कि किसके खाते में लीड जा रही है। एक फिनिश पॉइंट निकाला जरूर गया लेजा के द्वारा उस एनाइलेटर के साथ, बट यहाँ पे न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो की है जो जुगलबंदी है थोड़ी सी भारी पड़ सकती है इस प्रेडेटर मिसाइल के द्वारा।
जी हाँ, टीम एक्सिस को बिल्कुल भारी पड़ सकती है। प्रेडेटर मिसाइल भी हम देख पा रहे हैं, शानदार तरीके से खेल जरूर रहे हैं प्रेडेटर मिसाइल के साथ, लेकिन गॉडल बर्न्स आए हैं M13 लेके, न्यूट्रिनो लेके आ चुके हैं हॉलगर, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे LMGs का यूज करा जा रहा है, एयर गन का यूज करा जा रहा है इनके द्वारा, लेकिन जी हाँ, एक शानदार तरीके से मोबिलिटी भी इन दोनों गन्स के द्वारा। व्हाट अबाउट अगर यहाँ पे इस मोमेंट पे क्लस्टर स्ट्राइक आ जाए, बिकॉज़ न्यूट्रिनो कैन वहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, जिस हिसाब से वो ऑलरेडी स्कोर स्ट्रीक अब अपना बना चुके हैं। आई मीन न्यूट्रिनो यहाँ पे चीज करके दिखा सकता है कि अपनी टीम को एक बहुत ज्यादा मैसिव योगदान देते हुए नजर आ सकते हैं हमें। 120 और 118 उनके ऑलरेडी हो चुके हैं पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन हाँ, अब जो नेक्स्ट हार्ड पॉइंट आने वाला है, अगर ये कंट्रोल कर दिया ना टीम एक्सिस ने, तो कहीं ना कहीं मुझे लग पाएगा, हम सबको पता लग जाएगा कि टीम एक्सिस जो है लीड देने आई है, वो जीतने आई है ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप। क्लस्टर स्ट्राइक की बात कर ही रहे थे, आसमान से यहाँ पे बारिश होने की शुरुआत हो चुकी है, अगर आप देखें मेजर बीस। जी हाँ, बिल्कुल क्लस्टर स्ट्राइक का आग बरस रहे हैं आसमान से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ न्यूट्रिनो को पता है कहां से कौन सा एनिमी आएगा। आप देख सकते हैं कितने फिनिश पॉइंट, वाओ, लेकिन लास्ट में न्यूट्रिनो को डाउन जरूर करा गया, लेकिन ठीक है, बट उसके पहले बहुत जरूरी था वहां पे डाउन करना, हमने देखा, क्योंकि न्यूट्रिनो वहां पे जिस हिसाब काफी से लेट हो चुका है बट आई गेस। जी बिल्कुल, यहाँ पे गॉड लाइक ई स्पोर्ट जो है वो एक के बाद एक 3 राउंड जीतते हुए नजर आ जरूर सकती है, लेकिन 16 आप देख सकते हैं 15, और ये 15 सेकंड तक हार्ड पॉइंट रहने वाले हैं। टीम एक्सिस पूरा का पूरा ट्राई करने वाली है 15 सेकंड अपने नाम पे कर दे, लेकिन बर्न्स वो भी नहीं होने देंगे। बर्न्स चाहते ही नहीं है कि वो जीते, वो चाहते ही नहीं है कि वो 100 पॉइंट तक भी उनका एनिमी जो है वो पहुंच पाए। आप देख सकते हैं 148 हो गया है स्कोर, और इसके साथ साथ बर्न्स जो है अभी भी आपको उसी हार्ड पॉइंट में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। 149 ऑलरेडी हो चुका है, 3 सेकंड बचेंगे दोबारा एक नया हार्ड पॉइंट बनने में, और मेरे ख्याल से सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, और लीजिए 1 सेकंड की बात है तो लीजिए 1 सेकंड हो गया, और इसी के साथ जो विजयी है, जो विजेता है, वो हमारे सामने आ चुका है, टीम गॉडलाइक। बिल्कुल, इस जीत के साथ वो रकम, वो धनराशि, वो ब्रैगिंग राइट्स, कितने भी आप विशेषण ऐड कर लीजिए, वो गॉडलाइक के नाम पे रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल शानदार तरीके से गेम प्ले अपना दिखाया, और कहीं ना कहीं हमें बताया कि ये वो ही टीम है जो फैन फेवरेट है, जो बेहतरीन है, जिनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो और कोई नहीं है, टीम गॉडलाइक ही है। बिल्कुल, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद ये बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला शायद आगे जाए, बट ये तो शुरुआत होने से पहले ही कहीं ना कहीं इतना जल्दी ये रैप अप करते हुए नजर आए, गिविंग नो हरी, आई मीन बहुत जल्दी समाप्त किया इन्होंने। डिफरेंस इस मैच में थोड़ा बहुत हमें देखने को कम मिला, बाकी में तो उन्होंने कंप्लीटली वन साइडेड बनाया, जिस हिसाब से वो क्रॉस फायर में बढ़ते हुए नजर आए। एंड देयर वी हैव इट, Godlike Esports, the champions of Taiwan Excellence Gaming Cup 2021, कॉडम की दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा नाम, एंड उसी हिसाब से अपना काम दिखाते हुए Godlike Esports। एंड मैं जरूर चाहूंगा जितने भी दर्शक आ चुके हैं उस चैट सेक्शन में हैशटैग दिल से Godlike along with that heart spam करते रहिए, एंड ऑल्सो आप अपने फेवरेट प्लेयर्स को भी सपोर्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पे गेम प्ले जरूर दिखाया गया इनकी तरफ से, और मेरी तरफ से भी कंग्रेचुलेशंस इनको रहने जरूर वाली है, और शानदार तरीके से मैं बोलना चाहूंगा टीम एक्सिस ने भी यहाँ पे गेम प्ले दिखाया, यहाँ पे देखने को मिला है इन टीम्स के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स उसी के साथ हमारे विजेता, जैसा आपने बताया, हैव बीन क्लियर। हमारे विजेता इज गोइंग टू बी गॉडलाइक। हमने उनसे पहले इंटरव्यू भी किया था एक, जो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही थी, लेकिन अब पूरी टीम कचिंग के साथ में ऑफ कोर्स गोइंग टू बी फीलिंग वेरी प्राउड, एंड अगेन उनकी जर्नी इसके अंदर काफी स्विफ्ट रही, बिल्कुल कल से आज तक, मतलब कोई सेटबैक नहीं, सारी की सारी गेम्स इनके एग्जैक्टली इनविंसिबल गेम प्ले रहा इनका। एग्जैक्टली राइट, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना गेम प्ले दिखाते नजर आए हैं, और मैं एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि आपने भी अभी एक चीज बोली इनविंसिबल, ऐसा ही इनका गेम प्ले जो है हमें दिखाई देता है कम्युनिटी टूर्नामेंट्स में, जो भी टूर्नामेंट्स हैं, ये बिल्कुल अनडाउटली बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। एब्सोल्युटली, एंड अब हम ऑफ कोर्स यहाँ पे जब हमें पता चल चुका है कि कौन है हमारे विजेता, वी आर गोना गो हैव short little time to ourselves, because after this हम यहाँ पे सेगमेंट एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पे हम ऑफ कोर्स अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम इंटरव्यूज लेंगे, जहाँ पे हम गौरव के प्लेयर्स को भी बुलाएंगे, बट बिफोर वी कैन सेट दैट अप वी नीड टू गो ऑन अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक। फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास इंटरव्यू सेटअप है फॉर ऑल द गेम्स दैट टुक प्लेस। ऑफ कोर्स 10 लाख का प्राइस पूल था यहाँ पे, एंड ये टीम्स जो इतनी बेहतरीन तरीके से खेलती हुई रही हैं वैलोरेंट के अंदर, कॉडम के अंदर, R6 के अंदर, वेल दे आर ऑल गोइंग टू बी जॉइनिंग अस राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टिक अराउंड।
स्वागत है आप सभी का यहाँ पे TEGC के अवार्ड सेरेमनी में 2021 8th एडिशन ऑफ ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप। एंड यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे ऑफ कोर्स कॉडम से, जहाँ पे अभी हमने देखा कि कौन है विजेता, कौन थे विजेता ऑफ कोर्स। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो जर्नी थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने खेला वो थी टीम एक्सेस की, और वो जर्नी काफी दिलचस्प थी। सो लेट्स मूव ऑन टू ऑफ कोर्स आवर एनालिस्ट एंड कास्टर्स एंड उनसे भी थोड़ी वार्तालाप करते हैं इस बारे में, बिकॉज टीम एक्सेस अगेन परफेक्ट गेम प्ले दिखाया उन्होंने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट इटसेल्फ। अपर ब्रैकेट से जब उन्होंने स्टार्ट किया था अगेंस्ट ऑफ कोर्स वाइटैलिटी, लेकिन जैसे जैसे शुरुआत चलती रही तो गॉडल भी ऑफ कोर्स पीछे तो हटने नहीं वाली थी, तो थोड़ा सा टाइम एक्सेस के लिए वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लग गई, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस तो टीम एक्सेस का बेहतरीन लगा। बिल्कुल, I mean, हमने देखा कि उन्होंने टीम वाइटैलिटी को थोड़ा सा पछाड़ दिया था। yes. उसके बाद भी वो नहीं रुके। हमने देखा कि उसके बाद वो आगे बढ़ते और टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को भी वहाँ पे उनको हरा के आगे अपने आप को लाते हैं ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। जो जिस हिसाब से गेम प्ले दिखाया गया ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, बहुत अच्छा पोटेंशियल मुझे इस टीम के अंदर लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। They just lost 2 times and दोनों गॉड लाइक से, तो ये कहीं ना कहीं अब अगली बार जब आएंगे या जाएंगे वैसे द फ्यूचर टूर्नामेंट्स, अब ये वो कहीं ना कहीं ये इनके वो ऐसे एक फैक्टर ना बन जाए जिसके सामने वो बारंबार नतमस्तक हो जाए। ऑब्वियसली आई मीन एवरी डे इज नॉट अ संडे, टीम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी। वेल उसके साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो राइवलरी क्रिएट हो जाए जिससे मोमेंटम और ज्यादा मिले टीम एक्सेस के प्लेयर्स को। सो वही कॉन्वर्सेशन लेके चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। टीम एक्सेस के हमारे पास एक प्लेयर ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ पे, एंड इट इज गोइंग टू बी वेल परफेक्ट प्ले आपकी तरफ से दिखाया गया है। स्टार्टिंग से जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था आपके टीम वाज डूइंग वंडरफुल, लेकिन एंड के अंदर जो ये गॉडलाइक के अगेंस्ट, जो अभी जैसे मैक वाइपर भी बता रहे थे कि जब आप गॉडलाइक के अगेंस्ट खेले तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्रेक लगी आपकी परफॉर्मेंस में, उसका आपके वजह से क्या कारण है? थोड़ा कनेक्शन के अंदर मेरे को लग रहा है कि उनको वो नहीं हो पाया, लेकिन कोई ना, हम फिर से ट्राई करेंगे जरूर। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग वो कॉन्वर्सेशन है, बिकॉज एक होता है कि एक तो हमें सबको पता है कि ये जो सारे के सारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं काफी मोटिवेटेड होते हैं, काफी इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन जहाँ पे वो राइवलरी की बात आ जाती है तो वो कॉम्पेटिटिव स्पिरिट भी उनका निकल के आता है जब वो जलवा दिखाना चाहते हैं अपना। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई मीन वो बात हो जाती है कि यार सामने वाले टीम ने अगर हमें हॉलगर से मारा है तो क्यों ना उसकी हॉलगर उठा के बिल्कुल उसके ही प्लेयर्स को वहां पे धाराशायी कर दे। Also provided, जैसे अब मैं जैसा प्लेयर हूँ, I don't have those skins, मैं उस हिसाब से अब obviously जिस हिसाब से आपने ग्राइंड कर रखा है उस हिसाब से हम मुझसे अभी तक सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं हो पाया। वो फेनिक जिसकी आप बात कर रहे थे, अब उसमें कॉन्वर्सेशन लेट्स डाइवर्ट टू इट। कुछ गन जिस हिसाब से आपने बताया क्रॉसहेयर के ऊपर टिक के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं फेनिक उसमें काफी ऊपर उठते हुए नजर आया है। स्पेशली अभी की जो टाइप चल रही टाइप 25 जो मेटा में नजर आई है, एसएमजी में कहीं ना कहीं फेनिक नजर हमें आई है, एंड उसके ऊपर आप वो जो हिप फायर देते हो वो लॉन्ग रेंज डिस्टेंस में भी वो बुलेट ड्रॉप हमें नहीं देखने को मिलता है, एंड उसी के अराउंड ही सारी टीम्स खेलते हुए नजर आई है। जी हाँ, बेहतरीन तरीके से सब टीम्स को पता था कि कौन सी गन को हमें प्रेफर देनी है, कौन सी गन को प्रेफरेंस रखनी है किस मैप के अंदर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एब्सोल्युटली, यू हैव टू नो द गेम्स इन एंड आउट्स, एंड उसी से ही आप अपना एक्स फैक्टर बनाते हो कोई भी गेम के अंदर, कोई भी मैप के ऊपर, एंड उसके थ्रू ऑफ कोर्स कंफर्ट लेवल की भी बात आ जाती है कि हर एक गन का अपना अलग तरीका होता है यूज करने का, एंड वो बहुत जरूरी होता है कि प्लेयर समझे, वो प्लेयर अपने आप को समझे और अपनी स्किल को समझे। जब तक वो एग्जैक्ट वो ग्रास नहीं कर पाएंगे तब तक वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही रह जाएंगे, एंड वो समझना एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो आपने बिल्कुल सही में यहाँ पे बताया। लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जब आप मेटा की बात करो तो मेटा कीप्स चेंजिंग, तो उसके साथ प्लेयर को भी डायनामिक रहना पड़ता है। They keep on evolving. अगर अभी से पिछले 5 महीने के पहले जाइए, हमें बहुत सारे SMGs मेटा देखते हुए नजर आते थे, तब AR को पूरी तरीके से शांत रखा गया था, बट ऑल ऑफ अ सडन ये हमें हॉलगर का इंडक्शन देखने को मिला, एंड कहीं ना कहीं अभी जैसा कि आप बता रहे थे, काफी तारीफ हमने भी बैक एंड साइड पे कर रहे थे, टाइप 25 थोड़ा प्रकाश डालिए जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है उनके लिए। एग्जैक्टली, शानदार तरीके से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे WCG वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी काफी प्लेयर्स ने टाइप 25 का इस्तेमाल करा था, एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप खेल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे AR का मेटा अगर मैं बात करूं टाइप 25 वो तो काफी अच्छा है, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए कोई डेडिकेटेड स्नाइपर है तो काफी मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास स्कोप में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी गई है इस बार जो अपडेट आया है, और स्नाइपर्स भी एक अच्छी तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, DLQ, बट हाँ मैंने अभी आपको थोड़े मतलब आधे घंटे पहले आई थिंक लोकस से यहाँ पे अंकित रेज क्विट कर दिया था, बट
इट इज ओके, अच्छा अच्छा अरे पलक झपकाते अब मैं ऐसा स्लाइड कर रहा हूँ और आपको अगर हेडशॉट जड़ दिया जाए तो आप क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, फेवरेट रहेगी डीएलक्यू इज द ओजी स्नाइपर और जी। बहुत बेहतरीन तरीके से चलती है वो। लेकिन मैं आपसे आपकी फेवरेट स्नाइपर जानना चाहूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। स्नाइपर्स हैव बीन वर्स्ट विद इट। आप मुझसे एसएमजीज के बारे में पूछे, बट स्टिल डीएलक्यू 33 को काफी जबरदस्त तरीके से हमने यूज किया। बट ये तो कॉन्वर्सेशन थी हमारी इन सारी गन्स के अराउंड। अब जिस हिसाब से टीम एक्सिस को इस बड़े मंच पे ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप 2021 में मौका मिला, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से प्रदर्शित किए, हाँ गॉडलाइक से हार जरूर गया बट एक चैलेंज जो पुट अप किया इस पूरे, ऐसा नहीं था कि अब BO3 जो गया ये पूरे तरीके से वन साइडेड गया था। वी हैव एवरीवन दैट जो पूरी तरीके से पिछले BO3 में आगे बढ़ते हुए हमें नजर आए थे। लक्ष्य एब्सोल्युटली, और उसी के साथ जब आप बात कर रहे हैं टीम की, तो फिर से बढ़ते हैं वो इंटरव्यू की तरफ जो पहले हमारा थोड़ा सा रह गया था। एंड यहाँ पे हमारे पास में ऑफ कोर्स टीम एक्सेस के प्लेयर फिर से ज्वाइन करते हुए, सर्टेनली होप कि आपका यहाँ पे जो जर्नी थी TGC के अंदर वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आई होप, बिकॉज जो आपने हमें प्रदर्शन दिखाया है स्टार्टिंग गेम से एंड गेम तक वाज परफेक्ट हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए भी। I mean, definitely. Thank you, Taiwan Excellence. Actually, kya hua, like our team was disbanded quite a while back, and Taiwan Excellence was the reason our team came back. And you know, it all just started coming back to us, like all of our coordination and stuff. And I think we did amazing, regardless Yes. of what we achieved. नो डेफिनेटली जैसे हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे कि सिर्फ 2 गेम थ्रू आउट ऑल द गेम्स जो आपने खेली हैं, जस्ट 2 गेम्स ये गॉडल के अगेंस्ट आपकी टीम के अगेंस्ट जाती हुई। बट अलोंग विद दैट मेजर आपका क्या क्वेश्चन रहेगा? जी बिल्कुल, वॉटेक सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे, आप कैसा फील कर रहे हो? आपने वाइटैलिटी को यहाँ पे थोड़ा सा पछाड़ दिया। आपने देखा कि हम सबने देखा टीम रेवेनेंट को भी आपने हरा दिया था, लेकिन हाँ हम यहाँ पे देख सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, आप फील कैसा कर रहे हो इतने सब पाने के बाद? I mean, you can see the smile on my face. All right. This, yep, continue. like, it felt amazing being back with my team, and you know, defeating teams like Vitality, R&T without, like, you know, like what we didn't even warm up for the tournament. I'm being very honest with you. We did not even warm up, like no scrims, nothing. Like me and Lazra basically got back in the game like after 15 days straight up without warm up, and it all started coming back to be like we started progressing while we were playing the game. I can't explain the feeling how it felt to get back. मैं समझ सकता हूँ, वॉक इन द पार्क कर दिए तो टीम एक्सेस की तरफ से, बिकॉज जिस तरीके से बता रहे हैं कि बिना वहाँ पे प्रैक्टिस करे, बिना स्क्रिम्स करे, जस्ट जंपिंग राइट इन एंड गोइंग बैक टू द मसल मेमोरी, अब ये होती है स्किल। अंकित आपका क्या क्वेश्चन रहेगा? बिल्कुल, एंड कहीं ना कहीं इसी अराउंड मेरा भी एक सवाल रहने वाला आपसे। आपने बात की लेज़रा के बारे में, कहीं ना कहीं वॉटिक्स एंड रैंडम का भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। अब ये सवाल रहना इसलिए वाला बिकॉज इतने कम टाइम में, जैसे कि आपने बताया, वो प्रैक्टिस भी नहीं रहा था, वो सिनर्जी कैसे लाते हो? बिकॉज हमने देखे बड़े बड़े नाम यहाँ पे आपके सामने धाराशाही होते हुए नजर आए। शुरुआत की आपने इस पूरे ताइवान एक्सीलेंस कप का वहाँ पे वाइटैलिटी को मात देते हुए, फिर यहाँ फाइनल में और आगे रास्ता अग्रसर किया डिफीटिंग रेवेनेंट। तो ये कितना एक चैलेंजिंग फेस रहा आपके लिए? To be honest, we were not expecting much जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था खेलना, like these quarter finals and stuff. हम लोगों को बिल्कुल कोई expectation नहीं थी. But it was like as we started playing, like after the very first map win against Vitality, we knew it's getting back to us. We can do this. All right. और उसी time, like you know, everyone just started giggling on the voice chat, and everyone was basically enjoying the game. You know, like tense situation था ही नहीं बिल्कुल. Everyone was enjoying the game and very much into the moment. बहुत ही अच्छी बात है ये कि इतना परफेक्ट गेम प्ले आपने हमें दिखाया, एंड यू गाइस वर एंजॉयिंग थ्रू आउट ऑल ऑफ दैट। आई एम हैप्पी टू हियर दैट एंड ग्लैड दैट यू कुड मेक इट टू द इंटरव्यू। थैंक यू सो वेरी मच ऑफ कोर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग राइट हियर at TGC, and hopefully next year also we'll see you guys again. Most probably. Thank you so much for the opportunity you guys gave us. Thank you. Perfect. Right, all the best. And best of luck. Absolutely. Congratulations, and boy oh boy. Thank you. What a man. Exactly right. मतलब पूरा कहानी बता दिया। I mean, मुझे अभी भी पता लगा कि कोई प्रैक्टिस नहीं करी Yes. की तरफ से, मतलब ये उठे हैं और चलो भाई आज हमारा मैच है, अच्छा वाइटैलिटी कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, और Chill करेंगे, खेलेंगे। बताया डिसबैंड हुआ, ऐसा लगा कि आई मीन चोटिल हुए, उठ खड़े Wow. हुए, खुद को ऐसा झाड़ा एंड फिर पूरे इस मैदान के अंदर आ गए जहां पे बड़े बड़े नाम को इन्होंने शहमात देते हुए नजर आए। Oh my God. I mean, hats off to you टीम एक्सिस, जिस तरीके से। अब ठीक है, अब हार जीत हमेशा एक पहले होती है, बट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका इंटेंट। आप किस इंटेंट से किसी अंदर, चाहे कोई भी आप काम करे, ई स्पोर्ट्स हो या बीट बी एनी अदर थिंग, आपका इंटेंट क्या है? एंड वो काफी खुश भी थे, बता जरूर। Yes, उनकी स्माइल से पता चल रहा था ना। अगेन आई मीन जो मर्जी बोलो, इन द एंड आपको एंजॉय करते हुए आप 1 लाख रुपीस कमा गए।
ओह यस TGC के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा हो गई एंड होपफुली जैसे उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर आल्सो वो वापस आएंगे एंड टीम होपफुली विल स्टिक अराउंड बिकॉज इस तरीके का अगर टीम प्ले दिखा रहे हैं तो अगर प्रैक्टिस करके आए अगर पूरा डोमिनेटिंग फोर्स की तरफ से आए तो कोई बड़ी बात नहीं एक प्रॉपर टूर्नामेंट चैंपियन भी बन सकते हैं एग्जैक्टली हमें देखने को मिल सकता है कि कहानी कुछ और हो सकती थी अगर Yes. इन्होंने प्रैक्टिस जैसे कि बता नहीं करी, अगर प्रैक्टिस करी होती तो आज कहानी कुछ और होती। एग्जैक्टली एंड उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने स्पेशली तारीफ की, नाम लेके बताया लेज्रा की जिस हिसाब से, और फिर मैं ऑब्वियसली वॉर्टेक्स एंड रैंडम के अराउंड भी कॉन्वर्सेशन कर रहा था। कहीं ना कहीं जो सिनर्जी होता है, अब वही बात हुई, अगर इतने टाइम से आप अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हो, वो Yes. जो गेम के अंदर जो कॉम्स होते हैं, जो कॉल आउट्स होते हैं, अगर आप वो विश्वास दिखाते हो, वो बिलीफ दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से परिपक्व एक गेम प्ले बनता है। एंड हमने देखा था वो जब बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आए थे, एंड आई गेस कहीं ना कहीं जब फ्यूचर में आएंगे अब इसी मोराल के साथ जाएंगे। हारे हैं, किस टीम से हारे हैं तो जाना जाएगा इट वाज गॉड लाइक। एग्जैक्टली एंड वही वो कॉन्वर्सेशन की अगर बात करें, वो इन गेम कॉन्वर्सेशन, तो उन्होंने बोला कि टीममेट्स वहां पे गिगल कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि सही में हम वाइटैलिटी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये तो हार रहे हैं यार हमसे, ये क्या हो रहा है। तब उनको फिर प्रॉब्लम वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से आया होगा कि चलो ये तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़ी आराम से हो जाएगा। और वही सेम मोमेंटम्स के साथ चलते चलते उन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि कितनी बार ये होता है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप अपना बेस्ट दिखाते हो, आप बहुत सही कर रहे होते हो, लेकिन आपको एकदम से पता चलता है ओ अब मैं इस प्लेयर के अगेंस्ट खेलने वाला हूँ या इस टीम के अगेंस्ट खेलने वाला हूँ जो बहुत बड़ी दिग्गज टीम होती है। अब वहां पे वो सर पे चल जाती है बात, सर पे चल जाती है बात इस तरीके से कि आपका जो स्किल जो आपका है, आपको पता है, वो उस टाइम पे उस मोमेंट में एकदम से गायब हो जाता है। एग्जैक्टली राइट। मतलब लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि टीम एक्सिस के सर पे नहीं चढ़ा जब वो वाइटैलिटी के अगेंस्ट खेल रहे थे और रेवेनेंट के अगेंस्ट में खेल रहे थे, क्योंकि एक शानदार गेम प्लान की तरफ से दिखाया गया है और एक लाजवाब तरीके से यहाँ पे अपने आप को सेकंड पोजीशन में इस पूरे ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप में दिखाते हुए नजर आए हैं। एंड ऑल्सो आपके बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा, अब गॉड लाइक किसी टीम इतने बड़े नाम के साथ, जैसा आपने बताया, बहुत आसान होता है पेरिश करना। अगर आप याद करिए कल के भी दिन जब ये खेलते हुए नजर आए थे, हाँ वहां पे गॉडल जीत के फाइनल में पहली टीम बनी जरूर थी, बट वहां पे भी एक टफ फाइट हमें टीम एक्सेस देते हुए नजर आई थी। यहाँ पे भी BO3 गया जरूर, बट वो BO3 में आप देखिए कितने क्लोजनेस थी, वो सारे जितने भी हार्ड पॉइंट्स बने थे, ऑब्वियसली क्रॉसफायर समिट एंड फायरिंग रेंज के राउंड बने हुए थे, बट आई गेस कहीं ना कहीं अब वो ग्रूव्स में आ चुके हैं, ये बड़े टूर्नामेंट का स्टेज मिल चुका है, वो जो ग्लेयरिंग आप बोलते हो, आप जो भी बोल लीजिए, वो मिल चुका है कहीं ना कहीं। एंड अब जब ये आगे जाएंगे तो उनके पास काफी ज्यादा मौका रहने वाला है। एब्सोल्युटली, बस मैं यही आशा करता हूँ कि टीम डिसबैंड ना हो यार, जैसा उन्होंने बताया कि इतने टाइम बाद वो फिर से वापस आए। आई जस्ट होप कि वो स्टिक अराउंड रहे। पर उसी के साथ साथ ये थे हमारे रनर अप फॉर कॉडम, एंड अब मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द चैंपियंस। वो ऑफ कोर्स रहेंगे गॉड लाइक के प्लेयर्स, एंड उसी के साथ वी मूव ऑन टुवर्ड्स एन इंटरव्यू, एंड गॉड लाइक की सारी टीम यहाँ पे हम ज्वाइन करती हुई। कांग्रेचुलेशंस, 2 लाख कचिंग इन द बैंक। कैसा फील कर रहा है आपको? ऑलराइट, काफी खुश ऑफ कोर्स यार कैसे जाया करे इस बात को। यस ऑफ कोर्स, समझ में भी आता है बिकॉज इतनी आसानी से, मतलब स्मूथनेस फिनेस के साथ में आपने पूरा टूर्नामेंट खत्म किया है, एंड उसके लिए अगेन विजेता तो आप हो ही हो, लेकिन अब जो आपको ये TGC पे अपॉर्चुनिटी मिली है, आप ये 2 लाख के साथ क्या करने वाले हैं? क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस सेविंग्स करेंगे। ऑलराइट मेजर, ओके, सबसे पहले बात तो कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस यार, बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हुए आप आए हो, नजर आए हो। लेकिन मेरा सेकंड आपसे सवाल ये रहेगा, ऐसी कौन सी टीम थी जिसके सामने आपको खेलने के बाद लगा कि यार मतलब कंपटीशन देने की जरूरत नहीं लगी है? हम ऐसा कुछ मतलब बिलीव नहीं करते, हम सब टीम्स को एक जैसे ही ट्रीट करते हैं जी, एंड सबके सामने हम इक्वली खेलते हैं मतलब। ऑलराइट, मैं क्वाइट एक सवाल आपके लिए सबसे पहले, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। कल भी हमसे बात जरूर की थी न्यूट्रन आपसे, एंड आल्सो लर्न, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपने कल भी खेला था एक्सिस के अगेंस्ट, आज भी खेला, दोनों में से कभी ऐसा हुआ कि आप प्रेशर में गए हो, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि सामने टीम बहुत ज्यादा रियली ट्राइंग हार्ड है, या आप थोड़े बहुत अंडर द कर्टन्स जा रहे हो? हाँ मतलब समिट हार्डपन में हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट जी इन दी एंड हम लोग ये प्रेशर में खेलना जानते हैं, तो बस वही है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कल न्यूट्रिनो बता भी जरूर रहे थे, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की कहीं ना कहीं वो जो थोड़ी कम ज्यादा हो गई थी, कहीं ना कहीं आई गेस यहाँ से आप उस चीज से काफी ज्यादा संतुष्ट रहने वाले न्यूट्रिनो, स्पेशली फॉर यू। एग्जैक्टली, मेरा एक सवाल और रहेगा न्यूट्रिनो की तरफ से। ऑलराइट, या कंटिन्यू। प्लस मैं ये बोलूंगा कि समिट एचपी में और बाकी सारी जितने भी हार्ड पॉइंट्स है, उसमें जो प्रेशर डाला टीम एक्सिस ने, आई थिंक वॉटेक्स ने भी इंटरव्यू में बताया कि बिना प्रैक्टिस के वो ऐसा जी। तो मैं उनको बोलूंगा कि आगे भी प्रैक्टिस शुरू करें विद द टीम, यही टीम के साथ अगर आगे जाए और हमको ऐसे ही कंपटीशन देते जाए तो अच्छी बात है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यूट्रिनो, मेरा एक फन फैक्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यार। हॉलगर या आरपीडी, किसी एक को चुन लीजिए, आप चूज कर लीजिए प्लीज। मैं बोलूंगा कि मैप के वाइज होता है। क्रॉस फायर ऐसी जगह है ना जो मेरा होम ग्राउंड है, जी जहाँ पे मेरे पे आरपीडी रहता है। जी। तो आई थिंक टीजीसी में अभी जो 2 दिन में जितने भी मैचेस हुए उसमें क्रॉस फायर में मैं एमवीपी रहा था विद द आरपीडी। जी जी। तो कहीं ना कहीं लोग मेरे को आरपीडी गॉड ऐसे ही नहीं बुलाते, लेकिन अभी मेटा के हिसाब से देखो ये इंटरव्यू से मेरे को एक बात तो पता चल गई है, कंपटीशन टीम में ही है। यस डेफिनेटली कंपटीशन टीम के अंदर ही है, टीम के बाहर। जैसे हमने टीम इनसे पूछा भी गॉडलाइक से कि कौन सी एक ऐसी टीम थी जहां पे आपको लगा कि शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, नहीं कोई ऐसी टीम थी। अच्छा गन्स के बारे में बात करें कि ये कौन सी गन बढ़िया है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, बिकॉज कहीं पे भी हो जाए, लेकिन गॉडल हमेशा आगे निकल के आएगी, ऊपर निकल के आएगी। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स हम कांग्रेचुलेट करते हैं आपको। एंड ये स्किल आपने जो ऑफ कोर्स डेवलप करी है, इसको आप आगे बहुत दूर तक लेके जाइए ऑफ कोर्स। एंड उसी के साथ कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, ये हमारे कॉडम के विजेता हैं फॉर 2021 टीईजीसी के चैंपियंस। कांग्रेचुलेशंस गाइस, कांग्रेचुलेशंस। एब्सोल्युटली एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग गेम्स। व्हाट अ प्ले, व्हाट अ प्ले, व्हाट अ टीम मैं बोलता हूं, क्योंकि ऐसा सी वही तो जब आप बात करते हो सिनर्जी की, वो भाई की तरह वो जो एकदम परफेक्ट बॉन्ड बन जाता है, जी बिल्कुल। तब आपको पता है कि जब आप वो फाइट के अंदर भी घुसते हो तो आपको पता है कि आपका यार यहीं पे साइड में खड़ा है, एंड ऑलवेज आपको कवर फायर गारंटेड मिलती रहेगी। तो उससे एक के ऊपर एक कंधा डालते हुए वो टीम आगे बढ़ती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको वो हर एक प्लेयर को ना अपना रोल पता है, वो असाइंड है कि ठीक है यार तुम्हें स्नाइपिंग करनी है, तुम्हें शॉटगन चलानी है, तुम्हें एसएमजी चलानी है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव खेलना है, ये सब इन टीम को पता है। और कोई ना कोई मैं बोलना चाहूंगा आईजीएल को बताने की जरूरत नहीं होती कि भाई तुम्हें क्या करना है, हर प्लेयर अपनी रिस्पांसिबिलिटी जानता है। एंड ऑल्सो काफी प्रसन्न मुद्रा में थे, ऐसा नहीं था, आई मीन दे जस्ट रियली वॉन। एंड उसके साथ आपके जो क्वेश्चन थे, जो हॉलगर एंड जो आरपीडी की बात की, इसको बखूबी वहां पे न्यूट्रिनो ने टैकल किया। ऐसे ही नहीं मुझे यहाँ पे गॉड बोला जाता है। और उसके बाद वो खराश, वो जो जनरली हम अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ करते हैं, उसी चीज की बात कर रहे थे। जब टीम के अंदर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं अच्छा चलाता हूँ, तो ठीक है हो जाए एक 1v1 बैंटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी से ऑफ कोर्स आपका स्किल भी बढ़ता है, एंड आप अपने टीममेट्स को भी अपने साथ में ऊपर लेके आते हो, क्योंकि आपका भी स्किल उसके साथ में इंप्रूव हो रहा है। एंड वहीं पे वो बॉन्डिंग भी बनती है कि बिना बोले, बिना कम्युनिकेट करे, आपको पहले ही पता है कि जब हम वो फाइट लेंगे ओपोनेंट टीम के साथ में, तो ये प्लेयर ये करने वाला है और मेरे को पता है मैं ये करने वाला हूँ। ऑटोमेटिकली वो सिनर्जी बन जाती है, जो कि बहुत जरूरी है। एंड अगेन आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू द टीम। आई मीन परफेक्ट प्ले दिखाया है इन्होंने। एक एक गेम के अंदर कोई भी मौका नहीं था जहां पे गॉडल को कोई रोक सकता था। एंड यहाँ पे अभी इंटरव्यू में भी उन्होंने क्लियर बताया। बट वहीं पे ऑफ कोर्स ये थे हमारे कॉडम के विजेता। अब उसके साथ हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द R6 रेनबो सिक्स सीज, बिकॉज वो भी गेम हुई थी एंड उसके जो गेम्स हुई उसका भी प्राइस पूल रहा है, वो है ऑफ कोर्स 2 लाख। एंड वेल टॉकिंग अबाउट द गेम इटसेल्फ, यहाँ पे जो हमारे विजेता रहे वो रहे कीरा स्पोर्ट्स। लेकिन जो कीरा स्पोर्ट्स की जर्नी थी वो काफी पेचीदा थी। ओह माय गॉड। सो अपर ब्रैकेट जैसे हमने कॉडम के अंदर देखा, वैसे ही कीरा स्पोर्ट्स अपर ब्रैकेट के अंदर थे। उन्होंने फर्स्ट गेम खेला वहां पे, जहां पे उनको 0-2 के माध्यम से हराया गया। वहां से वो लोअर ब्रैकेट भेज दिए गए। अब लोअर ब्रैकेट से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है पहला गेम हारने के बाद में, एंड वो फिर वहां से धीरे धीरे ग्राइंड करते 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 ऑल द वे इनटू द चैंपियंस पहुंचे। एंड वहां पे मंकी हंटर्स के अगेंस्ट इन्होंने गेम खेला, जहां पे फाइनली जो गेम हुआ वो 2-1 के अगेंस्ट इनके फेवर में आया। तो उसी के बलबूते पे लेट्स मूव ऑन टू द इंटरव्यू। यहाँ पे हमारे साथ में मिलने वाले हैं मेरे ख्याल से डेथ अमन इज गोइंग टू बी जॉइनिंग अस। एंड कांग्रेचुलेशंस, काफी बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रहा। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे को ये बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, बिकॉज अभी हम वो जर्नी की बात कर रहे थे। स्टार्ट किया आपने अपर ब्रैकेट से एंड वहां से ऑफ कोर्स यू वर ब्रॉट डाउन टू द लोअर ब्रैकेट, बट फ्रॉम देयर picking your pace up, going all the way up against Monkey Hunters. How was the experience over there? Basically, like it's been a while since we played a like official tournament as a team. Of course, we were practicing and all. So Monkey Hunters, like, so it's a very good team and they have a lot of competitive integrity. So we know that they were going to be the challenge in the tournament. Right. But then when we played them yesterday, like they had the upper edge, their like aim was crisp and like it was close, but they still had the edge over us. So कल के मैच के एक्सपीरियंस था, so आज हमारा best of 5 था basically, right? Yes. And they had the map advantage as well. So we had a bit of pressure about it that we have to pack the first few maps. But then when we won the first map, our morale was like really high. And Bilkul. honestly, today I felt like after a long time that I played Siege
in its purest form, Oh like with the yes. team, Wow. and everybody's performance was like so crisp and on point. It was so good. Well, this is your day. This is definitely your day indeed. Of course, with the money in the bank, also must be feeling very, very proud right now. Again, जैसा आपने बताया, going up against a team like Monkey Hunters, definitely not easy. 2-1 का जो final score card था, of course, was in your favor. But now, as you move on along, आपका experience कैसा रहा throughout all the games that you played right here at TEGC 2021? Okay, experience. Because I want to take It the was conversation back to that first upper bracket game, right? जहाँ पे it did okay. not go in your favor, but still the morale was not lost with you or your team. तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ से starting के अंदर थोड़ा downfall रहा, but then जिस तरीके से आपने अपने आप को pick किया, वो journey आप team के बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका वो synergy and momentum जो आपने वहाँ से pick up किया. Okay, so जो हमने कल games खेले थे, right? Yes. So it was a BO3. So the first map, it was like really, really close, and I think that is one of the best maps the opponents we were playing, Yes. and we took it too damn close. So we were like, we knew, okay, like we have this, right? We've got this, so we can do it. But then when we played the second map, the performance quite didn't come out, right? We were shy, we weren't like that confident. So like, yeah, they packed the victory, right? But seeing that okay, like we could do it yesterday, like we can do it, definitely can do it today, and we actually did it. Honestly, like the only pressure was that they had the map advantage. As for it, like I had like complete faith in my team, and like our team had faith in ourselves, and we knew we could do this. Oh yes. Well, इससे बढ़िया कमबैक स्टोरी नहीं हो सकती. बिल्कुल, मतलब बिल्कुल. पहले मंकी हंटर ने आपको हराया और फिर आप वापस ग्रैंड चैंपियनशिप के अंदर आए. उनके पास में मैप एडवांटेज थी और फिर भी उनको हराते हुए यहाँ से बड़े शान से निकले, ऑफ कोर्स, एंड मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड. बट मूव ऑन टू, ऑफ कोर्स, अंकित, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते थे? बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल. आप विनर ब्रैकेट 2 में ऑब्वियसली वहाँ पे 2-0 से हारते हुए नजर आए थे मंकी हंटर्स, एंड जब आपको पता चला ग्रैंड फाइनल्स में एक बार फिर से आपका मुकाबला होगा, तो क्या डिफरेंट स्ट्रैट्स आप लेके आए, बिकॉज इस बार जीत आपके पास आई? Difference was not so much in strategy, because जी. like if we change things around like in a day, like a lot, right, even we won't be able to like acknowledge and cope Oh with yes. that. So our strategy was that we just do things slightly different, play the same strategy, but apply the difference in our gameplay, so that Okay. like the opponents will have to will come pre-prepared about it, but then like they will face different surprises at different stages of the जी gameplay, जी जी. जी. and which really did work for us today. Well, it definitely did. जैसा आपने पहले भी बोला, it is your day, mate. Congratulations to you and your team, Kira Esports, because आप हैं Rainbow Six Siege के, of course, champions right here at TEGC 2021. Once again, congratulations and best of luck for your upcoming tournaments. Thanks a lot. Well. Talk about comeback stories. Oh yes. Talk about comeback stories. अगर आज it's phenomenal Exactly. because आप जो हम बात कर रहे हैं, हम मोराल की बात कर रहे हैं, हम टीम स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, हम टीम सिनर्जीज की बात कर रहे हैं. इन द एंड हम वही बात कर रहे हैं कि हाउ कैन यू कीप योर मेंटल स्पेस क्लियर, जी. और Exactly. उसी से ही आप अपने आप को मोरल बूस्ट कर सकते हो. उसी से ही आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए, चाहे कितनी भी ज्यादा मुश्किलें हो जाए, एक गेम से दूसरे गेम पे हारते के बाद में भी एंड में भी जीता बन सकते हो. I mean, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपने कितना ज्यादा ग्राइंड कर रखा है, कितना Yes. ज्यादा आपको गेम सेंस है. अगर ये सब चीजें हैं तो आपके मोराल जो है वो हमेशा बूस्टेड अप रहेंगे. आपको पता है कि ठीक है, ये हमारी गेम है, हम इस गेम को ऑन करते हैं, यहाँ इस मैदान में हमें Yes. कोई नहीं हरा सकता, और वो मेंटल स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है. सो ट्रू. एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छी चीज जो हमारे प्लेयर ने बताया, रेनबो सिक्स सिक्स के अमर ने, अमर जी, उन्होंने बताया सरप्राइजेस. Yes. हारा एक बार जरूर वहां पे मंकी स्पोर्ट से वो WB राउंड 2 के अंदर, बट उसके बाद फाइनल्स के अंदर जब गए तो सेफ स्टार्ट था, ज्यादा चेंजेस नहीं करने वाली है, सिर्फ उनके सामने सरप्राइजेस थ्रो करने हैं, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं जीत उनके पास हमें देखने को मिली. Absolutely, that was of course Rainbow Six K champions right there, Kira Esports. उसी के साथ हम move on करते हैं towards Valorant के भी काफी phenomenal matches रहे थे, and अब हमारे पास में जुड़ने वाले हैं player as well, ex-player in fact I would say, more of the man behind the scenes, hacker right here joining us from Team EXO. Welcome to the stage, and again, first of all, I want to bring up the first and major question that your team put up a really phenomenal fight, but it lacked certain few things. आपके ख्याल से वो क्या है, and what exactly is it that stood out in those fights today? First of all, what I think went wrong was definitely that we were not able to close out the games. I mean, we were up 2 games and then we were not able to close it out. There were individualistic mistakes or team mistakes as well, but I think Enigma ने उसको fantastically
capitalize किया उसके ऊपर. So I think that you should give props to them for playing such a fantastic event, because it takes a lot of resilience, being 9-3 down on both True. maps Yes. and then coming back. Yeah, so that was something that was amazing on their aspect. Yes, we have been, at times not been able to close out. That is something that we are currently working on. Mental fortitude is not something that we lack. जो लगता है कि अरे choke हो गए, but that is नहीं, not the case. definitely. It's just that there are some things that click in our favor and there is something that doesn't click. Oh, yes. I think this was Enigma's event to win. Well, that Hunter, is what I can say. I have to say one thing. You're talking about finishes. मैंने आपको starting के hacker, my apologies, dude. Starting के अंदर ही मैंने आपसे थोड़ा सा tough question पूछा because I wanted to bring up this point. आप finishes की बात कर रहे हैं, मैं आपकी टीम की starting की बात कर रहा हूँ. Every single pistol round you start off, you pop in heads, dude. Yeah. Every single time. There was not even a single round जहाँ पे opponent team could do anything. So again, that I definitely think is in your favor, mate. Yeah, so the thing is, I'll tell you a funny story. So Okay. we are not afraid of winning the pistol rounds, to be very honest. Right. So we are actually scared of losing the second round. So there is a lot of the times where, EXO is known for losing the thrifties. And I think Haven also, we started off with winning the pistol in the first half, but we ended up giving up the thrifty. So that is something that is, we are actually working on, and in the future, I hope that thrifty is something that we do not hear. But yes, pistols, we have been working on it, and I think that we will definitely improve. I'm sure. Absolutely. And Major, you were talking about a question. Exactly. मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आज आपकी टीम से कौन से ऐसे प्लेयर ने खुद को आउटशाइन करते हुए यहाँ पे पाया गया है अपने रणभूमि के अंदर? I mean, Excali के लिए तो it is just another day in office. He is always the star guy for our team. But I believe that Wimp is someone who's absolutely underrated, जो limelight में आता नहीं है because he plays the sentinel role. But I believe that Wimp was exceptional today and yesterday as well for us. And I hope that he keeps that momentum on. And Sai तो obviously हमेशा से top fry कर रहा है. I saw Gopi missing. I mean Blackhawk. But that's okay. There are some days that you are not able to shine. That's absolutely fine. Ghost was doing fantastic as well. I mean, I cannot just give credit to one guy. To be very honest, I cannot be biased. All right. तो मतलब पूरी टीम ने ही अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी थी आज. Absolutely. I mean, we fought till the very end. Yeah, exactly. Definitely. That was showcased as well from the entirety of the team. And usi ke saath, of course, I do want to say a fantabulous run to your team because, again, ye journey sirf yahan ke khatam hui hai TGC ki. We know as a team, you are going to be showcased again in so many upcoming tournaments. And for that, I wish you best of luck and your team as well. Yeah, thank you. Thank you for having us. It was a great event. I enjoyed your casting, to be very honest. And I'm sorry for all the EXO fans who were hoping that we would win this event. Maybe next time, I hope we can win it against GBLT. Actually, I'm right now watching it on the other screen. I'm sorry. But, I have to because I am partial coach as well. Definitely. Team, I mean, no. You don't have to be sorry about any of that, Hunter, because after all, Hacker, because again, clearly हमें और आपके fans को ये बताता है that you are dedicated to the team. You're dedicated and you're wanting to get that work right around the corner. So let me not keep you waiting. Let the rest not keep you waiting. Sure. You go right ahead and continue on researching. उसी के साथ once again, thank you and best of luck for your upcoming games. Yeah. Thank you for having us. Bye bye. All right, so वो थे हमारे कोच टीम एक्सो के जो रनर अप रही वैलोरेंट के अंदर. काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस रहा. इट वाज अ BO5 जहां पे गेम्स 3-0 रहा, लेकिन जो ये बात कर रहे थे सो कैसे गेम्स हो रहे थे आई विल टेल यू बिकॉज तब आप बिजी थे दूसरे उसके अंदर तो आप देख नहीं पाए. इतने क्लोज. सो टीम एक्सो स्टार्ट ऑफ करती विल गो ऑल द वे टू 11-3 एंड 13 चाहिए विन के लिए, राइट? सो वहां तक पहुंच के and then suddenly the opponent team would come back. Oh, last moment. Right. So इतना close. और ऐसा हमने क्वार्टर में भी आज देखा. Yes. Exactly. The story is the same. Exactly. वो चीज हमें अब बार-बार देखने को मिल रही है. वो चीज दोहराई जा रही है आज कहीं ना कहीं. Definitely. पता नहीं कहीं ना कहीं ये अंकित का कर्स है या वो स्टार्स है, मेरे को आइडिया नहीं. बट स्टोरी लाइन, मैं सिर्फ स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ. स्टोरी लाइन तो एग्जैक्टली वही है जो अंकित ने डिफाइन कर दी थी फर्स्ट डे क्वार्टर पे. तो वही हम यहाँ पे this brings out of it. हम यहाँ पे वही निकालने के लिए तो बैठे हैं. Of course for that masala, and of course the viewers are here for that masala as well. लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हम TGC का पूरा एक्सपीरियंस रहा for Quadrim through R6 through Valorant, I'm sure the fans enjoyed as well. आशा करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. डू नॉट फॉरगेट टू ऑफ कोर्स सब्सक्राइब एज वेल एज
Well, spam karo heart, of course, please, because these teams are here to give you the wonderful games that they have. उसी के साथ-साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को कैसा लगा the entire experience for now? मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा. मैंने कॉर्डम के मैचेस पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय करे हैं. इनफैक्ट मैं मिलना चाहूंगा, अभी हमारे सामने मेरे ख्याल से एनिग्मा गेमिंग बच्ची है जिनका हम अभी इंटरव्यू लेना चाहेंगे. ओह यस यस यस, हम जाएंगे उस तरफ, लेकिन उससे पहले मैं वही आपसे पूछना चाहता था कि आपकी तरफ से जो एक्सपीरियंस रहा इस स्टेज पे, स्पेशली जैसे आपने बताया कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे वो किया, एंड बिल्कुल बताइए आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस पूरे ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप, जैसे कि आप बताए 8वां लगातार वो लेगेसी कैरी करते हुए, एंड इस तरीके का ये क्लोजनेस कहीं ना कहीं जब अगले बार हम जाएंगे इसी टूर्नामेंट को, इसी मंथ के अराउंड अगले बार भी हमें देखने को जरूर मिलेगा. दैट्स व्हाट ऑल आई होप. तो हमें फिर इसी तरीके के गेम खेलते हुए नजर आएंगे, एंड मे बी मोर डिफरेंट गेम, बट ऑल इन ऑल जितने भी गेम बैकलाइन से भी थोड़ा बहुत वैलोरेंट देख जरूर आता है. एंड काफी तारीफ एक्स के लिए एनसाई की भी की थी, एंड वो बिल्कुल वो दर्शाया गया था जैसा कि आप बता रहे थे. दैट वाज रियली टू गुड फॉर दिस कंप्लीट इवेंट. Absolutely, absolutely. I mean, exhilarating ride is what it was, is what I would say. From one game to the next, storyline इतनी close रही, neck to neck रही है games के अंदर, but still, of course, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में. There can only be one winner. Exactly right. Sadly, there can only be one winner. ऐसा नहीं होता कि you both are winners. मैं ऑनलाइन चिपका देता हूँ. You either win or you learn. Oh my goodness. True, very true, very true indeed. And उसी के साथ again, biggest thing that we need to talk about in esports is कि अगर आप जीत भी जाओ तो जीत को अपने सर पे मत चढ़ने दो. जी. वो बहुत जरूरी चीज है. Because अगर आप अगर आप जीत भी गए हो तो भी there is so much to learn. और हमने देखा अब गॉडल जीती है, ऐसा कोई भी लाइन नहीं. जब सवाल उनसे पूछा गया कौन सी टीम को आप कम आंक रहे थे, साफ शब्दों में एक जवाब मिला, कोई भी टीम ऐसी नहीं जिनको हम कम आंकते हैं, सारी इक्वल है. क्यों ना वहाँ पे टीम एक्सिस, कि अब टीम एक्सिस के प्लेयर्स ने बताया वहाँ पे एक नई लाइनअप जो थोड़ी देर पहले डिसबैन हुई थी, न्यू करंट इन द सीन, जैसे कि उन्होंने बताया, उसको भी उतने ही रेस्पेक्ट से खेलते हुए नजर आए. एंड कहीं ना कहीं वो टीम की मेंटालिटी बन जाती है. एंड ऑल हर ई स्पोर्ट्स के वो तो मेंटालिटी स्ट्रांग होती ही होती है, बट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग आप अपने ओपोनेंट को कितना रेस्पेक्ट देते हो, सारी टीम्स हमें वो देखने को मिला. एंड यही तो स्पोर्ट्समैनशिप है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है जो हमें इन सारे प्लेयर्स के साथ देखने को मिला है. अंकित के मुंह से ये बात सुनते हुए अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज़ अंकित इज द मैन जिसने रेज क्विट करा है. अंकित इज द मैन जो वहां पे स्पेसिफिकली, जब मैं प्रेडिक्शंस के लिए पूछता था, स्पेसिफिकली अपने वहां पे वो जादू करके बताते थे कि ये वाली टीम होने वाली है गारंटेड, ये वाली टीम होने वाली है गारंटेड. तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्समैनशिप, वील कम बैक टू दैट अगले साल, जैसा आपने बोला टीजीसी नेक्स्ट ईयर. हमने हमारे दिल की सुनी, हमें बाकी नहीं पता. ओके ऑलराइट, बट यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मैं बोलना चाहूंगा, हर गेम में हर एक टीम ने अपना परफॉर्मेंस दिया और एक टॉप नॉच गेम प्ले दिखाने की पूरी कोशिश करी है. डेफिनेटली हमने ये गारंटेड देखा, हर एक गेम के अंदर भी हमने ये देखा. फ्रॉम वन राउंड टू द नेक्स्ट, प्लेयर्स अपने आप को वन अप करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अगेंस्ट, अपने आप से वो लड़ाई करने में लगे हुए थे कि आई वांट टू डू बेटर. एंड जब वो दिखता है तो ही हमारा कंपटीशन इतना ज्यादा क्लोज हो जाता है. उसी के साथ साथ जब वो क्लोज मैचेस की बात करें तो अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द क्लोजिंग, जहां पे हमारे पास में आ गए हैं एनिग्मा गेमिंग, द चैंपियंस ऑफ वैलोरेंट, एंड दिस टीम हैज बीन फिनोमिनल. जिस तरीके का इन्होंने आज प्रदर्शन दिखाया है हैज बीन एब्सोल्युटली टू गुड टू बी ट्रू. बट उसी के साथ में राइट ऑफ द बैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, हाउ डू यू गाइस डू इट? यू आर, जब मैच स्टार्ट होता है, वेल द राउंड्स आर रनिंग अवे फ्रॉम यू, एंड देन जब वो क्रिटिकल मोमेंट आता है, यू जस्ट फ्लिप अ स्विच एंड वहां से एक के बाद एक even though it's under high pressure, आप come back देते हो. How is it that you're able to do that? Well, basically, I think we were very calm and composed throughout the game. Even though we were losing rounds, today we were not playing to win. We were playing to have fun with each other. Like, we were enjoying ourselves today. So that's where we got the groove. We know that we can do this as a team. We were having fun. We were laughing here and there. Also because everyone has a great fighting mentality over here. Right. All of my teammates are crazy. Everyone kept their cool. Everyone was calm. No one got tilted. Like it was amazing. It was like the best game I've played in, like, with this team. Well. That is all thanks to, I guess, TEGC then. TGC पे of course you were able to participate in a game जहाँ पे आपने enjoy भी किया, वो part of the tournament, and ended up being up on top. So again, a beautiful gameplay being showcased from your side. A 3-0 scorecard in the end जहाँ पे BO5 था. कहीं पे भी ऐसा आपको लगा कि शायद ये वाला गेम हमसे निकल सकता है? There were moments where we thought, okay, we might lose this. But it was at the end of it was like, okay, even if we lose this, so what? We're just having fun. We lose a round, okay, laugh about it. We win a round, okay, laugh about it. So that mentality, I think, slowly round by round, we're starting to win. We were laughing, we were having fun. I think that mentality actually
won this game for us, because this was the first time we played with this mentality. We're going to have fun and we're not going to play to win. If we win, that's good, but we're going to have fun for sure. So I think that mentality got us here today. I think all the comebacks, it was because of that, and insane kills by these guys, insane individual gameplay. Also the IGL, insane calling. He kept his cool, gave us match stats, like on the fly calls. It was amazing. बिल्कुल बिल्कुल एंड वहीं पे हम डेस्क पे भी यही बात करते हैं, हम मेंटालिटी की बात करते हैं कि कितना जरूरी होता है टू कीप दैट काम एंड कंपोज. सो उसी के साथ मेजर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? एग्जैक्टली, मतलब सिंस बहुत सारी गेम रिलेटेड बातें हो चुकी हैं, मेरा एक फन क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से. मतलब क्या कीजिएगा इतनी सारी जीती हुई धनराशि के साथ? Pardon? I didn't hear. My teammates were talking. Okay, Can you repeat the question? Yep, sure. मेरा क्वेश्चन यही था कि आप जो अमाउंट जीते हो, आप उनके साथ करेगा क्या? मतलब क्या आपका प्लान है उस जीते हुए अमाउंट के साथ करने से? Abhi to we have not had a plan, to what to do with the prize money. But of course, there'll be some plan in the coming days. We might do something as a team, obviously, some activity or something. So let's see. But not thought about that yet. Need to still focus on the other tournaments we have coming up. So yeah, I think December end should be fun, with the team. Definitely. Once again, though, thank you so very much because काफी interesting gameplays आपकी तरफ से दिखाए गए and that was so very entertaining for us. Once again, best of luck to you guys and congratulations, for you guys are the champions of the EGC 2021. And well, I certainly do hope that you guys are coming back for the next year's games as well. Oh yeah, definitely. We are going to be there next year, and to all the teams that will take part next year, watch out first. We are coming for that victory again. All right, you've heard that. Thank you so much. All right. Well. I like it. That was definitely. And guys, thank you for having us. Thank you so much. Thank you so much. All right. All right, Enigma Gaming. You guys stay awesome. Adios. That is what we're talking about. Keeping it cool, keeping it chill. Enjoy करो, लेकिन बेस्ट गेम प्ले भी दिखाओ. Exactly right. वही है ई स्पोर्ट्स का मतलब, यही है. यही होता है, आपको अपना गेम प्ले भी दिखाना है, साथ साथ में चिल भी करना है, एंजॉय भी करना है, और वो चीज करते हुए दिखाते भी ये सारे के सारे प्लेयर्स. एंड एक स्टेटमेंट भी दे दिया उन्होंने ब्लॉट जाते थे, वी आर कमिंग नेक्स्ट टाइम मोर स्ट्रॉन्गर. राइट, टॉक अबाउट इट. मतलब बस उनको मौका चाहिए था दूसरी टीम्स को बताने का, हम वापस आने वाले हैं, तैयार हो जाना. हम वहाँ पे एंजॉय करने के लिए आएंगे, लेकिन हरा के जरूर जाएंगे. उसी के साथ यहाँ पे हमारा TEGC का 2021 का जर्नी समाप्त होता हुआ. बट इट इज़ नॉट इट, बिकॉज जितनी बारी आप ताइवान एक्सेलेंस गेमिंग कप की बात करें, वहाँ पे यू हैव सो मेनी ब्रांड्स, यू हैव गॉट सो मेनी ब्रांड्स दैट ऑलवेज सपोर्ट अस. एंड उसी के साथ में वी स्टार्ट ऑफ विद, आई बिलीव दिस साइड और दिस साइड, वेल नेवर माइंड, ये रहा. Yes, that was the one that I was wanting to talk about. Zadak वहाँ पे जो अभी पीछे आया था, that is the thing जो हमारे को यहाँ पे of course is going to provide a wonderful water looking water cooler वाला वो. But उसके साथ ही साथ again इतने सारे products हैं, one after the next. We are talking about now Zixel. Now Zixel is something जो आपको ये Wi-Fi, dual Wi-Fi देता है, and this has a quad core CPU in it, so super fast रहेगा. Exactly. Super duper fast रहेगा, and connectivity की घर पे कहीं पे भी हो कोई इशू नहीं रहेगा. उसी के साथ साथ जैसे आप मूव ऑन करो to Evermedia. Now Evermedia again is a very known brand in the entire industry hardware के लिए, and they are bringing in this beautiful microphone. Now plug and play microphone है, very simple, just laptop में लगाओ and बटन दबाया and वहीं पे चालू हो गया, बटन दबाया वहीं पे म्यूट हो गया. कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. एंड अगेन आपको प्रॉपर हाई क्वालिटी ऑडियो मिलेगा एंड बिना लेटेंसी के, जो बहुत जरूरी होता है अपनी गेमिंग इंडस्ट्री में. अगर लेटेंसी कहीं पे थोड़ी सी भी हो जाए तो वो एंड गए वहां पे मर गए. तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है. बट उसी के साथ साथ टू फाइनली मूव ऑन, वी आल्सो डू हैव सिलिकॉन पावर का आर्मर A60. नाउ दिस थिंग इज सुपर कूल, सुपर डुपर कूल, बिकॉज इसको आप 3 मीटर की फीट से भी नीचे गिराओ, कोई दिक्कत नहीं है इसको. IPX4 का वाटर प्रूफिंग है इसके अंदर, प्रॉपर रबराइज्ड वो है कि बिल्कुल रगड़ रहेगा, एकदम सेफ रहेगा. एंड आपको ऑफ कोर्स इससे ज्यादा बेहतरीन मिलिट्री ग्रेड, एक तरह से मिलिट्री ग्रेड आपको हार्डवेयर मिल रहा है, तो इससे ज्यादा आपको रिलायबल चीज कहां मिलेगी? वेल अगेन दिस इज सिल्वर पावर का आर्मर A60. विद दैट, wow, what a journey, what a 2-day journey this has been at Taiwan Excellence Gaming Cup. But उसी के साथ आशा जरूर यही रहेगी कि नेक्स्ट ईयर हम आपके पास लैंड पे मिले. यस, 2 साल पहले मैं मिला था, लेकिन अब होपफुली 1 साल बाद हम लैंड पे मिले. तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे ऑसम.
We're Zycel, and we're your networking ally. Immerse your audience with clearer, richer, and warmer recorded sound. The AM310 is a plug-and-play USB microphone that lets you record high-quality sound for podcasting, streaming, gaming, and more. It's perfect for music performers and live streamers who long for studio-quality sound. Sounds are picked up directly in front of the microphone, delivering detailed, full body, and clarity. Welcome to Mike's World Podcast. Today we'll be talking about summer travel. The AM310 has a driver-free plug-and-play design. Simply plug it into a USB port on your Mac or PC, and you're ready to record. You got a charm that's unlike any other. Better yet, the AM310 comes equipped with a mini headphone jack that allows you to either listen to what you're recording in real time or what's playing on your computer, all at the toggle of a switch. It's also great to bundle with AverMedia's video capture devices for streaming, making you a professional content creator. I'm going to show you this natural makeup look. Stream yourself into the spotlight.